Neither Lahore Blues nor Faisalabad have had the starts they wanted in Pakistan Cup 2023. Lahore Blues pace attack ripped through the top order of whites, sending rippers to remove the likes of Ahmed Shahzad and Umar Akmal. But Lahore Whites would have had the last laugh as Ahmed Danial entered List A cricket with a dream debut of a fifer clinching them to a victory. Danial bowled him! That's a fifer for him! Faisalabad were blown away by an explosive 69-ball century of Shajil Khan in Multan colours. Despite leading his side to a decent score, Faisalabad lost by 4 wickets. For what's it worth, skippers Fahim Ashraf and Imran Butt would know one thing for sure. One team today will definitely kick off with the points on the table. Good morning, it's bright, it's sunny, it's beautiful Rawalpindi Stadium and the city of Rawalpindi where a lot of pace battery of Pakistan belongs, the likes of Shoaib Akhtar, the likes of Azhar Mahmood, Muhammad Amir, Sohail Tanveer, Muhammad Akram and Haris Rauf, the latest sensation. Faisalabad versus Lahore Blues, it is the round 2 of the Pakistan Cup 2023-24. And these are the remaining games which will be played in the other grounds today. Peshawar versus Rawalpindi, Faisalabad versus Lahore Blues, that is here today. Lahore Whites versus Multan, and Fatah take on Karachi Whites. The teams have arrived here at the Rawalpindi Stadium. Fahim Ashraf there in the warm-ups and the captain Imran Butt. There's Kashif Bhatti stretching his arms for another spell. And the boys going through their stretches. It's bright and sunny today and the pitch, Ali Yunus is there and let's say what he has to say about the 22 yards. $1,600 feet above the sea level is where we are at the moment. Rawalpindi Cricket Stadium, and the sun is beating down. That's a good news for the batters, because last time when the cricket match was played here at Rawalpindi, the ball did seemed and swung for the whole day. And as far as the pitch is concerned, it looks like the same surface as it was the day before yesterday. Very neat, very clean. There are a few cracks, but they are of not much importance because there are very thin spots or the cracks we can say. You can see here, there are cracks available, but still they are not much dangerous cracks. First half hour will be dangerous for the batters. Other than that, I'm expecting batters to dominate. So the pitch looks good and the toss over here has been pretty even. Sides batting first and bowling first. Both have won 2 matches each. So we will see what happens at the toss today when the captains get a chance. Noman Chaudhary was there with the 2 captains. Pakistan Cup moves to the day number 2 at the Rawalpindi Cricket Stadium. The games coming up between Lahore Blues and Faisalabad region. I've got the 2 captains in the middle for the toss. For Lahore Blues, we have Imran Butt. For Faisalabad region, we have Fahim Ashraf along with the match official, Mr. Nadeem Ashraf. Right, then Faisalabad region will be flipping the coin. Fahim Ashraf, give it a go. Heads is the call. Tails it is. Fahim Ashraf. Fahim, toss जीत लिया, क्या कर रहे हैं? बॉलिंग करेंगे. क्या वजह है बॉलिंग की? देखें जी, ये हमारे जो वनडे शुरू हो रहे हैं, ये थोड़ा सा टाइम ऐसा कि अर्ली शुरू हो रहे हैं, तो पिच में दिखने में थोड़ा सा मॉइस्चर लग रहा है, तो कोशिश है कि जो इससे हेल्प मिल सके. फहीम, कुछ टीम कॉम्बिनेशन का बताएं. पिछले मैच में हमने देखा कि 3 अंडर 21 बॉयज़ खिलाए हैं. कितना इंपॉर्टेंट होता है ये कप्तान के लिए कि अपने यंगस्टर्स को इतना बैक करें? देखें जी, हमारे जो 21 प्लेयर हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अंडर 19 की तरफ से खेल चुके हैं, तो वो खुद भी अच्छी क्रिकेट खेले हुए हैं. तो मुझे कुछ ऐसा वो नहीं है कि इनको यार लेके चलना, बल्कि वो खुद मुझे साथ लेके चलते हैं कि हम करके देंगे. अच्छा फहीम, कप्तानी के प्रेशर में कुछ लोगों की परफॉर्मेंस अपनी ख़राब होती है, लेकिन आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में कायद आज़म ट्रॉफी से लेकर पाकिस्तान कब तक बड़ा निखार आया है. कप्तानी के प्रेशर में खुश हो रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए, मैं कहता हूँ कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कप्तानी का, क्योंकि जितने भी लड़कियाँ सारे सपोर्ट करने वाले हैं, सारे जिसको जहाँ पे कोई रोल दिया जाता
है वो उस रोल पे पूरा उतरता है, तो मैं कहता हूँ उस वजह से मुझ पे कोई ऐसा एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है। सिर्फ प्रेशर ये है कि आगे टॉस करना है या टीम को बनाना है, और कुछ ऐसा नहीं है कि लड़के सारे इतने अच्छे हैं कि जिसको जहाँ पे जो प्लान दिया जाए वो उस प्लान पे पूरा उतरे। इस वजह से मैं कहता हूँ कि कोई प्रेशर नहीं है इस टीम पे। फहीम, रावलपिंडी की विकेट हमेशा बैटर्स को सूट करती है, लाहौर के पास बैटर्स भी अच्छे हैं, कितने पे रोकने की कोशिश करेंगे? देखेंगे, हमारी तो कोशिश होगी मैक्सिमम जितने इनको कम से कम रन्स में पकड़े, लेकिन ऑन द डे जो टीम अच्छा खेलती है वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारी कोशिश है कि जितने कम से कम रन्स में इनको पकड़ा जाए। चलें फहीम, ऑल द बेस्ट फॉर द गेम। थैंक यू जी। इमरान, नॉट लकी विद द टॉस, आप टॉस जीते तो आपने क्या करना था? ऑब्वियसली जब इतना जल्दी स्टार्ट होता है तो आप बॉलिंग का ही सोच रहे होते हैं, बट समटाइम्स इट्स गुड टू लूज अ टॉस। पिछले मैच में एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक परफॉर्मेंस हो नहीं पाई, अगरचे बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन बैटिंग उस तरह क्लिक नहीं कर पाई। जी बिल्कुल, एज बैटिंग यूनिट हम उस तरह अप्लाई नहीं कर सके विकेट के ऊपर, और कोशिश करेंगे कि उन गलतियों से सीखें और इस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दें। टीम न्यूज़ क्या है आज के मैच में? वी गॉट 2 चेंजेस, उमर सदीक रिजवान की जगह आए हैं और इब्तिसाम मेकिंग डेब्यू फॉर काशिफ भट्टी। विकेट को देखते हुए क्या टोटल करने की कोशिश करेंगे? हम देखेंगे सबसे पहले तो जाके विकेट का बिहेवियर क्या है, उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि इस पे पार स्कोर क्या होना चाहिए। चलें इमरान, ऑल द बेस्ट फॉर द गेम। थैंक यू वेरी मच। दैट वाज इमरान बट, द कैप्टन ऑफ लाहौर ब्लूज। खबर यह है कि फैसलाबाद की टीम ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। So here are the teams. Lahore Blues over here, Imran Butt, and there are only 2 changes in the team. Umar Sadiq comes in, and along with him, Iftisamullah makes his debut. And the guys who go out or miss out are Rizwan and Kashif Bhatti. And we have along with us Ali Yunus. Good morning, Ali. What do you think about the teams? Good morning, Salman. I think much needed change. 2 batters coming in, Umar Sadiq and Iftisamullah, and Rizwan Hussain and Kashif Bhatti going out of the game. I think this is a better balance as far as Lahore Blues are concerned. We saw that in the last game. They were 1 batter short. Changeless, Faisalabad team, without the change in this game. Very good batting side also, and a very good bowling side too, Faisalabad. We discussed about Mohammad Salim when we were seeing the 4-day game in the final, and he is somebody who looks really good, technically very sound, and he is the one who got runs in the previous game, scored a 50. So we'll have our eyes on this youngster, and the rest of the team pretty young and seems pretty similar. An important game as far as Lahore Blues are concerned. They lost the first game to Lahore Whites. They will try to make amends in this game. The 2 openers, Imran Butt and Hashim Ibrahim, very talented Hashim Ibrahim. We saw that in the 4-day game also. Here also, yes, in the previous game, he showed some glimpse of brilliance, but could not play that long inning, the big inning that was expected of him. Faisalabad, on the other hand, they won a good toss because this is an early start, 9:30 start, and we've seen that the ball do move around and seam around, especially in the first hour or so. But Salman, in the first game, it did seem and swung for the whole day. That will be in the mind of Lahore Blues. Yes, Ali, you're absolutely correct. The weather has changed. We are in November. The nights are cooler, the days are cooler as well. And especially talking about the previous game, there was a bit of overcast conditions, which definitely helped the fast bowlers more than everybody expected. And today again, this Faisalabad winning the toss and deciding to bowl first is absolutely to take the advantage of the initial presence of this moisture on top of the surface. And if they can bowl well, they will definitely have Lahore in trouble. Hashim Ibrahim there, 36 runs he scored in the previous game, and he took a lot of chances, and that is what he needs to curb down on. He needs to be sensible. Any team that can play good in the first 10 overs and avoid fall of wickets can win a game over here. Imran Butt, 68 matches, he averages 36, and he has scored 400s at a strike rate close to 80, which is all very good. Khurram Shahzad, 46 wickets at this level, best of 3 for 17. He's somebody who's more of a long format bowler. He'll keep on bowling at 1 line and length with good pace also. Very good prospect, Khurram Shahzad, still very young. Yes, both these bowlers are very experienced first-class cricketers, and they have the advantage of this early morning start, winning the toss and opting to bowl. And I think the batters will have to be careful. If these bowlers can bowl the right channels, there will be a handful over here. Khurram Shahzad to start off the proceedings for the second game of Pakistan Cup. Swing early on, a bit late swing
And this is what we expect, and this is what we hope here at Rawalpindi. This first hour or so, batters have to play their best cricket, technically best cricket, in the first half hour or so. Yes, I think as the things move along, they will learn that this start of the game is quite early and the weather has changed and it has its effect on the pitch. So they have to adjust. They have to make that early adjustment for a few overs, get settled, and then obviously they can play their shots when the time is better. Two slips also in place for Khurram Shahzad. The length again, it was there to be hit. Teasing line and length, drive me length, and this is what you want a batter to do, drive early on. That is where the bowlers should be, and spot on is Khurram. The difference today is that the sun is much more stronger. There is nothing like an overcast condition. There's not a cloud in the sky that you can see at the moment. So the pitch definitely has more sunshine today, a stronger sunshine, and hopefully less movement for the batters. Runs nicely played. First run on the board, one to Hashim Ibrahim. They're off the mark with that single. Khurram Shahzad bowled 3 maidens in the last game against Multan, against the batters like Shajil Khan and Hasibullah. So we know that he's such a good bowler when it comes to line and length. He will keep it check, he'll keep it within the stumps. Yes, Ali, you expect first-class cricketers to be as good as him. And he's someone who's been playing in the circuit for 4 or 5 years now. He started playing for Habib Bank, and then he carried on to the next system, and now we see him playing for the regions. And he certainly has done a great deal for the teams that he has played for. Important knock as far as the captain is concerned. The 2 umpires for the match. Zulfikar Jan, still early ages, early times for him at umpiring level. He's been a good cricketer, and we all know who he is. Aleem Dar, the most experienced and the most extraordinary umpire at this level. It's definitely for somebody like Zulfikar Jan, it's great schooling to be alongside Aleem Dar. Good run. This is something that was missing in the last game from Lahore Blue batters. The rotation of the strike, those quick singles. I think as you just suggested, they will realize, team will learn. Yes, the batters need to take those runs and keep rotating the strike and make it difficult for the bowlers to keep adjusting. And when this all happens, the fielding side also needs to realize that they are there in the circle to stop the singles. And they need to be on their toes. This time, the fielder was behind Aleem Dar. Not a chance from there to stop a single like this. Beautifully clipped, but straight to the man. And with the first over, 2 for no loss is Lahore Blues. Yeah, we've been talking about the conditions and the weather changing, Salman. It was a similar sort of situation in the last game when we did the pitch report. The sun was out, when suddenly it all changed. It was cloud cover after that, and the ball did seam and swung all day long. And that is why probably Imran Bhatt said at the toss that sometimes it's good to lose the toss. Well, definitely, when you're not sure what to do, when you're not very confident, then obviously losing a toss becomes much better. Muhammad Ali, 23 games, 24 wickets. A higher average, 36.87. Economy rate is decent. And best bowling of 3 for 31. And he has a lot to do in this version of the game. And I believe the first-class appearances will definitely help him. Absolutely. We've been talking about the importance of first-class cricket and players giving importance to it. We have a lot to talk about it. But at the moment, Muhammad Ali is ready to deliver his first ball. On target. This is where you want your bowlers to be early on, Saman. Yes, they've been on target. They've been within the stumps. And one thing that I've noticed in the 7 balls which have been bowled so far is that this pitch seems a bit slower than the previous one, because we saw a lot of balls carry really well in the previous game. They went above waist high to the keepers. But today what we have seen is the pitch a bit on the slower side. We have seen the ball bounce before the keeper as well.
And this one again, although maybe they are just warming up, there we see. And another apparent difference is the cracks are much more visible on this pitch. This one is left alone by Imran, but he definitely would be more careful. Last time he just happened to become the coach while he was batting, gave a lot, very decent practice to the slip catchers. And he must have thought, what have I done? Because he was looking good. And So not similar to the shape we had the last game. It was similar in shape. There was no grass, but cracks, you said, are the different. yeah, it's much more evident. They are very visible. In the previous game, the cracks were not that visible. That shows that the pitch was much more compact. The fielder this time on square leg was much more quicker and was alert. And that's the way they should be, because if the ball is doing a bit, you don't want the batters to get off strike that easily. Interesting changes made. Lahore Blues, will talk about them more because we thought that they were a batter short in the last game, and they've added 2 batters today. Ibtisam ul Haq making his List A debut alongside Umar Siddiq also coming in. That has strengthened the batting lineup. Good Yorker, good Yorker. This is a good start from Muhammad Ali. Yes, the bowlers are looking to take wickets, and that's a very good sign for the bowling side. And that is why you win the toss and you opt to bowl, because you look to take wickets. And this was delivery, certainly was dangerous ball, well negotiated by Imran Butt. And talking about the changes in the team, there we see Umar Siddiq and Ibtisam, both are openers, both are left-handers. So it would be very interesting to see which number they bat at, because bringing in 2 openers and already having 2 in the side, it's not easy for an opener to go and bat down the order. Beautifully driven, but not quite timing it. Imran Butt not quite finding the gap also. It's a good matchup between 2 sides. We see Faisalabad full of quality fast bowlers, and on the other hand, Lahore Blues are full of quality batters. So it's going to be a good matchup between the quality of Faisalabad bowling and the quality of Lahore Blues batting. And I believe Lahore Blues have chosen this team considering that they're going to bowl first, because they've strengthened their batting lineup, shows that they were hoping and expecting to bowl first and chase down any total, because once you strengthen your batting lineup, this is what it suggests. Good leave. But can be a blessing in disguise. We'll come back to it later. 3 for none Lahore Blues at the end of 2 overs. Lahore Blues camp. Kashif Bhatti, Ali Shafiq, both not included in the side. Good to see Mr. Zaidi sitting there in the dugout, the manager, always very elegant, very choosy with the clothes that he puts on. And he likes when he's appreciated for his clothes. And why not? He does a great job at the selection. Nicely clipped. This time he has found the gap. Beautifully timed and placed. Imran Butt might not have the legs. It has. First boundary of the game going to Imran Butt. Beautifully placed. Straying on the legs this time, and Imran Butt not missing. Well timed. For a moment, the fielders might have thought they were in it. Then the ball won the race. And this is something that the bowlers need to avoid. Not to stray on the legs. You are bowling first, you have to be in the right channels. Shajil Khan scored a century against this bowling lineup in the last game, playing for Multan.
6 sixes he hit. So that thing definitely will be in the mind of Faisalabad bowlers. This is a different batting pair. Imran Butt and Hashim Ibrahim, both more technically correct, both take their time. But definitely that thing will be in their mind, getting a beating from Shajil Khan. Well, Hashim is somebody who likes to play very freely and at times more freely than what is required. And so freely that he set the bat free. Well, he just needs to spend time. He's such a talented boy. He's so fit, so eager to do well, and he has done well this season. He made his debut in the first class side, scored 100, scored a couple of 50s, but each and every time he brought upon his own demise. I haven't seen a bowler get him out till now. Absolutely correct. Yeah, if you look at his stance also, his intent, he looks set to score runs, to score a big one. He's all set, he's ready to score big runs. But yes, as you said, sometimes he just got carried away and lost his wicket. I like the look of him. He looks very fit. And very rarely do you see a Pakistan player with the sleeves as fit as his. And that's a good sign. You need players to look like David Miller. Talking of the game, power hitting, you need power in your head. So you need to have power in your arms to get it into your strokes. The last delivery, nipping back in, cutting in. We saw the similar couple of deliveries in the first game by Hussain Talat when he got that big wicket. We are in that time in the subcontinent when the ball does start to move around. We are also watching the World Cup where bowlers early morning and in the evening spells are getting a lot of movement. And the same is happening here as well. This one was not intended to be played here, inside edging it, and will be an easy two. So played by a batsman from GIC and fielded by a fielder from the GIC as well. 10 for none after 3. Yeah, top right, you're talking about Mr. Azhar Zaidi. Very vibrant, always involved, very good colors. He likes bright colors. Absolutely. And they look good on him. He carries them well too. Yeah. With him are Hunain Shah and Salman Ashad, the two very skillful fast bowlers, and the ones who Lahore Blues will be relying on later to defend whatever they get. Yeah, this is good captaincy by Fahim Ashraf, keeping the slips in. 2 slips still in place. He believes there still is movement. Going down a bit high also. Muhammad Ali has been within the stumps most of the time, and here we see this one coming back in and just a bit high. We could see the leg stump as the batter tries to play this one. So obviously not going down the leg, but definitely going above the bails. And rightly so, umpire Aleem Dar, the very experienced, legendary umpire, gives the decision in the favor of the batter. Beautiful. That is beautiful from Muhammad Ali. Just kicking on. It's not extra bounce this time. And that's absolutely correct from Imran Butt as well. Playing the in swing, playing it closer to his body, keeping the bat very close to his body is the key. Just thought about for a moment to play the ball and then just brought his bat back. Quick enough making this decision. And he has to be like that, especially for the first hour or so. The pitch will have something. And the batters, they should learn from the previous game. There were too many bad strokes played in the last game. Again, beautifully bowled.
outside the off stump. He's inviting Imran Butt to go for the drive. And that is the quality Muhammad Ali has. He will keep poking at you. He will keep bowling you in those areas. It's a good bowling. He's a good bowler. Good skillful bowler he is. Look at that, tailing in. Just touch of outswing. Yes, and squaring up Imran Butt. This ball, definitely good areas, good line, good length. Imran Butt being smart enough to keep his bat really close to his body. Once again, pace, bounce, swing, brilliant. Muhammad Ali, absolutely brilliant this delivery. A Jaffa. And again Imran Butt, full marks. Keeping the bat close to his body is the key over here. Yeah, this is majestic from Muhammad Ali. Third in a row, same area, same sort of deliveries. Wonderful to see. This is exciting stuff from test fast bowler Muhammad Ali. The extra bounce also. Well, that's good cricket from the batter, from the bowler, and also the keeper who took it way above his head high. No, says Hashim Ibrahim, and rightly so, because Ali Asfund was very quick to the ball. It's sort of a pitch and conditions where you need a technically skillful batter. A batter for the long format is required in these conditions, where you can take your time, where you can get your eye in, like Imran Butt is playing, as you were mentioning, keeping the bat close to his body, leaving anything outside. That is the skill you need in these conditions and on a pitch like this. But for how long will he survive like that? That's the question. Well, he has to keep going for himself, for his side. A maiden. Wonderful over from Muhammad Ali. Spot on. 4 gone, 10 for none. Ali going back to his fielding after bowling a terrific over. He was all over Imran Butt in this over. There we see this one, the first one, hitting him, beaten on the second one. Absolute carbon copies, the next 3 deliveries, and this one just took off. And then we saw some variation in the bounce when he bowled the last delivery. This one was a single refused, and there is this one which stayed low. So there is definite variation in the pitch at times. Beautifully driven, but again, no timing from Hashim Ibrahim. But it's important that you keep on rotating the strike. It's important to learn at this stage, at this age, that Hashim Ibrahim is the importance of rotating the strike against quality fast bowlers. Khurram and Muhammad Ali, from both operating from both ends, been marvelous, been fabulous with their line and lengths. And that is what you expect from these bowlers who've been around for a while here in domestic circuit. So we see a good fielding change there, because he flicked the one that went to the boundary. That was in the air for quite some time, and now we see a short mid-wicket catching position. And the bowler exactly bowls at the same place, and Imran Butt knows that now he has to play a bit straighter. So now they're at this stage. They've taken 4 overs, scored only 11 runs. It's about time when they start looking for runs, because their eyes is set, because they don't want to be leaving lot for the remaining batters. Relax, Ali. It's still a lot of time. It's 45 overs to play. And the runs, you only need a few big overs. Nothing much more. The important thing is the first hour, they don't lose too many. And we saw what happened with both the teams. Yeah, they were 22 for 4 in the last game. But still, I strongly believe that they should be looking to get some runs, because the ball will do a little bit. So these fielding restrictions, I'm pretty much sure that they should get used to it. And Ali, to be honest, there wasn't enough coming on the bat as well at the moment. The ball is not coming on the bat. It's stopping a bit. Maybe the pitch is a bit sticky because of the moisture.
And that is why we have seen that the batters have not been fluent. Yeah, that's my question. For how long will this stick around like this? That's my only concern. I totally agree, these are not easy conditions. The ball is doing a bit, but then again, for how long can they keep on blocking? That's the question. Because we were talking about that modern day technique. Hashim Ibrahim, you were comparing him to David Miller. So, you know, you got to start scoring runs. Let's talk about modern day cricket now. The highest run getters in the World Cup are South African team. Every time in the first 10 overs, they have been under 5 or 6 runs in an over. But they haven't lost early wickets. And then when they start after the 20th over, and they've got the power to finish it big, and that's what they have been doing. So every team plays and designs their tactics according to their resources. And over here, these two are the batters, especially Imran Butt is the experienced one. He has the defense, he has played test cricket, so he needs to lead his team out of the early trouble. They've lost a game by playing poor shots previously. So there's no harm in playing out the initial overs. Definitely, when the ball is there, they have to go for it. That is the modern part, the positive thing. But at the moment, the bowlers are bowling well, and the batters are not getting much to do. We will definitely see them going after the bowler. But at the moment, I think the important part is that this section of wicket does not go too much higher. Yeah, straying towards the leg side. Salman said you need to have enough firepower at the back end. But the question is, do Lahore Blues have enough firepower coming down? They've got Umar Siddiq, who's more of a technical correct batter. Hussain Talat, yes, we can expect. Qasim Akram, Junaid Ali, Ihtisam on his debut. So they'll have to find the balance. Yeah, that's a big one. In the air, but not long enough. It's right there between the fielders. It was a good effort by the fielder. Faizan that time, but it landed right away from him. So there goes the modern bit. Once again in the air, and once again lucky. So he has been riding his luck a lot since the time he started playing. And today is the first instance. There were 3 like these in the previous match. And Hashim, definitely there's something in his mind, which obviously he premeditates the ball before, and then he goes for his stroke. He just lines up a bowler and does not have any second thoughts, which is a good part. But at the moment, because the pitch isn't responding really well to the batters, so the timing isn't there. But the intent definitely is there. Mohammad Ali will continue. He's bowled beautifully so far. Wow, that is beautiful. We were hoping and looking to see this one through the covers for 4. Hashim Ibrahim announcing himself. So there you see width provided and taken full advantage. It was wide, and the batter extending his arms and going for the stroke and connecting it beautifully this time. And the first real powerful stroke of the day, and Hashim Ibrahim sends it to the boundary in a flash. Yeah, that was why I said it's about time that they start looking for runs, and you can see the urgency and the intent coming into Hashim Ibrahim. Squared him up again. This is a good matchup. Hashim Ibrahim, young and vibrant, against Muhammad Ali, who's experienced, who's very skillful as a bowler. He won't let you get away for long. We know that Hashim Ibrahim, he gets excited sometimes, plays too many shots, and in doing so loses his wicket. And now probably is the time that he starts using that handle, start looking for runs, because you don't want to be leaving too many for the batters to come. Good cricket. Yeah, it's about time. If Ali can manage to bowl the same line and length, a couple of more deliveries, then we might see Hashim going for the big heave over mid-wicket, which we have seen pretty regularly in the previous occasions that he has been batting. He's already has 1 let off today. The one he mistimed and it fell between the fielders.
Well, to be honest, the fielder just didn't have a clue where the ball is going because he ran around the ball and then obviously couldn't reach it. Khurram Shahzad possibly could have been the first wicket for him, not to be. Picked up nicely. There is a fielder there, but he won't be stopping that one. So runs now coming thick and easy for Hashim Ibrahim. Wrong line by Mohammad Ali. So there's the patience paying off. You waited there for the good balls, and then the bowler gets impatient and throws one full on the legs, and then Hashim takes full advantage. Top shot this. Man of his experience, Mohammad Ali, should be patient enough. He just bowled 2 balls. He saw the batter having trouble. He saw the movement is available, and then he just wanted to take a wicket of this particular ball, and in the end giving a 4. Yeah, this is what intent does. Hashim Ibrahim's intent is pretty clear that he's going to go after the bowling. So the line changes accordingly. Previously, in the last over, it was Imran Butt who was leaving anything outside the off stump. It gets easier for the bowler to bowl him at one line and length. And when a batter is moving around, the intent is pretty clear to go after runs. It gets difficult for the fast bowler. Yeah, and what happens is, if you have a look at it the other way around, if you keep bowling bad balls that go for runs, when you bowl the good ones, the batter will be at ease. He will not take a risk. So it's important for the bowlers to be patient and consistent, and then ask the batters to take the risk. But here what we see, the bowlers get equally impatient. Again, got heavy on him. Some extra bounce for Mohammad Ali again. Surprising Hashim Ibrahim. The intent was there to be hit, but not to be. 6 overs gone, 22 for none. अच्छी इब्तिदा लाहौर ब्लूज़ के लिए, इसलिए ज़्यादा फिक्र नहीं है इस खेमे में जहां पर अजहर जैदी मौजूद हैं, जो हमेशा से नौजवान क्रिकेटर्स की मदद के लिए पाए जाते हैं। और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में यहाँ पर नौमान चौधरी, उनका खैर मकदम है। अच्छा आगाज दोनों ही ओपनर्स की जानिब से। शुक्रिया तारिक भाई। जी हाँ, बिल्कुल कदरे ठहराव देखने को मिला है इमरान भट्ट और हाशिम इब्राहिम की बारी में। इनिंग्स के आगाज में अगरचे बड़ी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली थी। फहीम अशरफ कप्तान, 95 लिस्टे विकेट्स 80 मैचेस में। आज पहली तब्दीली पे आए बॉलिंग करने के लिए फहीम अशरफ, जो इस सीज़न में नई गेंद करते रहे थे। खुर्रम शहजाद के साथ इस टूर्नामेंट के पहले मैच में शिकस्त हो गई थी फैसलाबाद की टीम को मुल्तान के हाथों, लेकिन मजमूई तौर पर ये अच्छे कुछ हफ्ते गुजरे हैं। इस टीम के फाइनल खेला कायदे आज़म ट्रॉफी का बड़े अरसे के बाद फैसलाबाद ने। अली वकास भी उस टीम में थे। ये दोनों नहीं खेल रहे, काशिफ भट्टी और अली वकास, दो मुख्तलिफ टीमों के खिलाड़ी हैं। और शानदार पुल शॉट, इस बार ये अपने टैलेंट की झलक दिखा रहे हैं हाशिम। इनके पास खासा ये इन स्विंग हुई और बल्ले से लगी, और उसके बाद स्टंप्स जो हैं वो धर्म भरम रह गई। फहीम अशरफ ने फौरन ही हिसाब चुकता कर दिया। बड़ी जबरदस्त गेंद फहीम अशरफ की। गेंद पड़ने के बाद कदरे अंदर की जाने भाई, थ्रू द लाइन खेलने की कोशिश, और जो बल्ले और पैड के दरमियान गैप था, गेंद उसके दरमियान से गुजर गई। कामयाबी दिलाई फहीम अशरफ ने फैसलाबाद की टीम को। हाशिम इब्राहिम 17 रन बनाकर डगआउट की जानिब वापस। 27, 1 विकेट का नुकसान।
इस पाकिस्तान कप 2023 में हम कुछ नए खिलाड़ियों को देख रहे हैं मुख्तलिफ टीम से। इब्तिसामुल हक उन्हीं में से एक हैं, आज अपना पहला मैच खेल रहे हैं लिस्ट ए करियर का। बड़े स्टाइलिश लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं इंज़िमामुल हक के ये साहबजादे इब्तिसामुल हक, और इसमें कोई शुबा नहीं है अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं, लेकिन ये ऐसी कंडीशंस हैं जिनको रिस्पेक्ट पे करना होगा। जो आसान नहीं है नई गेंद को यहाँ पे आकर खेलना। जी हाँ बिल्कुल, और जिस तरह अर्ली ऑन हमने मूवमेंट देखने को मिली थी मोहम्मद अली और खुरम शहजाद की गेंदों पे, तो यही तवक्को की जाती है इब्तिसामुल हक से कि थोड़ा वक्त गुजारें क्रीज पे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी इनिंग्स को बिल्ड करने की कोशिश करें, लेकिन इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इनका सामना है फहीम अशरफ से। अच्छी डिफ्लेक्शन लॉन्ग लेग पर अरहम, ये एक और नए खिलाड़ी हैं अरहम नवाब। और ये कामयाबी बहुत ज़रूरी थी यहाँ फैसलाबाद की टीम को, क्योंकि सेट होकर खेल रहे थे। हाशिम इब्राहिम ये लूज शॉट खेल गए क्योंकि थोड़ा सा ये कैरिड अवे हो गए। पिछली गेंद पर चौका लगाया था बैकफुट से। फहीम अशरफ उनकी इन स्विंग की इस बार ताब नहीं ला सके। रन्स हैं इस पिच में, अच्छी आवाज आती है जब ये बल्ले से गेंद टकराती है। आज रन्स ज्यादा बनने चाहिए पिछले मैच के मुकाबले में। 28 पर 1। इब्तिसामुल हक इंज़िमाम की जो इनके वालिद हैं उनकी बड़ी यादें हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से, और पिंडी स्टेडियम जो है ये इनके लिए भी संग मील। ये सुबह इस मैदान पर ये याद रहेंगे इनको लम्हात। इनको आज इनकी डेब्यू कैप पेश की हुसैन तलत ने। जहाँ एक बाएं हाथ के बैट्समैन ने दूसरे बाएं हाथ के बैट्समैन को कैप पेश की, और ये बड़ा यादगार लम्हा होता है जब आप अपना पहला मैच खेल रहे हो। ऐसा लेंथ से लीव किया, और यहाँ आप कर सकते हैं इस पिंडी की पिच पर। पाकिस्तान के दीगर इलाकों में आप लाहौर कराची में आप ऐसा नहीं कर सकते। ये अच्छा लीव था। जी हाँ, बड़ा नजदीकी मामला भी हो सकता था। बड़ी अच्छी गेंद, ये तवातर से इसी एरिया में गेंद कर रहे हैं सुबह से मोहम्मद अली, और इन्हें विकेट से मूवमेंट भी मिल रही है। गेंद हल्का फुल्का हिल भी रहा है, और इसी वजह से इन्होंने 2 स्लिप्स ले रखी हैं मोहम्मद अली ने। यहाँ स्लिप्स के फील्डर हैं वो खासे फाइन खड़े हुए हैं क्योंकि अराउंड द विकेट आ रहे हैं लेफ्ट हैंडर को अली। उन्नीस 1991 में जब इंज़िमामुल हक ने अपना पहला उस सीजन खेल रहे थे पाकिस्तान के लिए, तो यहाँ रावलपिंडी में आकर उन्होंने शानदार सेंचुरी स्कोर की थी। इस स्टेडियम पर खेला जाने वाला वो पहला बैनुल अक़वामी मैच भी था पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान। बाद में उन्होंने पाकिस्तान को कई मैचेस जितवाए। यहाँ रावलपिंडी में हमेशा शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाया करते थे अजीम इंज़िमाम। इस गेंद को निकाल दिया ऑन साइड में, और ये मोहम्मद अली का भी जो इंटरनेशनल डेब्यू था वो रावलपिंडी में ही हुआ इंग्लैंड के अगेंस्ट। और अगरचे उस मैच में इंग्लैंड की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही, लेकिन आप वक्त के साथ साथ सीखते हैं। जिस तरह आप क्रिकेट खेलते हैं, जिस लेवल पर आपको एक्सपोजर मिलता है, तो मोहम्मद अली ने भी उसके बाद काफ़ी सीखा। मुल्तान टेस्ट में इनकी बॉलिंग काफ़ी इंप्रूव दिखाई दी, और इस सीजन में भी बहुत इंप्रेस किया है मोहम्मद अली ने।
अपनी लाइन से हट गए थे क्योंकि नए बैट्समैन खेलने के लिए आए हैं, इसलिए थोड़ी सी विकेट के लिए जो कोशिश है वो ज़्यादा कर देते हैं कई बार बॉलर। और यहाँ पर स्विंग को कंट्रोल करना भी इतना आसान नहीं है नई गेंद के साथ। गो कि आज धूप ज़्यादा तेज़ निकली हुई है, आसमान पर बादल नहीं है। 2 दिन पहले यहाँ और ज़्यादा मुश्किल था नई गेंद को कंट्रोल करना, उसकी स्विंग को। ये आप देख सकते हैं रावलपिंडी में धुंध है, धुंध के आसार हैं, लेकिन जो धूप है वो बेहतरीन क्रिकेट के खेल के लिए। यह चमकती धमकती सुबह है रावलपिंडी की, जितना आपने कहा कि क्रिकेट के लिए बड़ा साजगार मौसम है, और ख़ास तौर पे बैट्समैनों के लिए, क्योंकि अगर आप इस विकेट पे वक्त गुजारेंगे तो आपके लिए रन्स ही रन्स हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली रावलपिंडी के विकेट ने हमेशा बैट्समैनों को सपोर्ट किया है। आप पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर लीजिए या रावलपिंडी में गुज़िश्ता कुछ सालों में खेले जाने वाले टेस्ट मैचेस की बात कर लीजिए, हमेशा से इस विकेट ने बैट्समैनों को भरपूर अंदाज से सपोर्ट किया है। यहाँ अच्छी टाइट जो टेक्निक है वो दरकार होगी। यहाँ ये अच्छी बैटिंग विकेट है, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन आपको इब्तिदा में जो अच्छी दिफाई तकनीक है वो ज़रूरत होती है। इब्तिसाम HSN कॉलेज से इन्होंने तालीम हासिल की है, और अब से कुछ साल पहले जो है जब ये खेल रहे थे तो वहाँ यही तासुर था कि ये उस कॉलेज के बेहतरीन बैट्समैन है इब्तिसामुल हक। और अच्छी टेक्निक दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी अच्छा गेंद की लाइन में आ रहे हैं, कदावर हैं, इनके पास स्ट्रोक्स की बहुतात है। ये मैं बात जो है ये बिल्कुल आपको सीने पे हाथ रख के बता सकता हूँ। 29 पर 1। एक विकेट के नुकसान पर लाहौर ब्लूज। ये आखिरी ओवर शुरू हो रहा है इस पावर प्ले का। फैसलाबाद की टीम जो है वो ज्यादातर नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। इसमें 2 टेस्ट क्रिकेटर जरूर हैं। फहीम अशरफ क़यादत कर रहे हैं और ये टेस्ट कैप के मुंतजिर हैं। इनमें मोहम्मद हुरैरा, फहीम अशरफ जो है इससे पहले फर्स्ट क्लास टीम के भी कप्तान थे। या 26 विकेट्स हैं फहीम अशरफ की ओडीआई क्रिकेट में। और इनसाइड एज नहीं, अंपायर ने फौरन ही उंगली उठा दी। एक और कामयाबी, इस बार फिर ऑफ द विकेट गेंद कट हुई अंदर को और दोनों ओपनर्स को चलता किया फहीम ने यके बाद दीगरे। ये बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी फहीम अशरफ की। अब की बार फिर ये इन डिपर था और इमरान भट्ट के पास कोई जवाब नहीं फहीम अशरफ की इस गेंद का। एक मरतबा फिर गेंद पड़ने के बाद कट हुई और लेट कट हुई, कॉट इन द क्रीज, और अंपायर ने वक्त जरूर लिया लेकिन अपनी उंगली फिजा में बुलंद की। दूसरी कामयाबी दिलाई कप्तान फहीम अशरफ ने। इमरान भट्ट सिर्फ 9 रन बना पाए। इनकी मुज़ाहमत का इख्तिताम किया फहीम अशरफ ने 29, 2 विकेट के नुकसान पर।
उमर सिद्दीक इस चैंपियनशिप में पहली बार एक्शन में है। पिछले मैच में रिजवान हुसैन को खिलाया गया था और अब इस पिच पर दो ऐसे खिलाड़ी होंगे, ये दोनों ही पहला मैच नहीं खेले थे, उमर सिद्दीक और इब्तिसामुल हक। तो दोनों जो बाएं हाथ के बैट्समैन हैं उनका पाला पड़ेगा फहीम अशरफ से, जो दो राइट हैंडर्स से छुटकारा पा चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल 2 स्लिप्स ले रखी हैं। उमर सिद्दीक के 2000 से जायद लिस्ट रन्स हैं, 40 से जायद की औसत। ये भी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी अरसे से सर्व कर रहे हैं। 2 स्लिप्स ले रखी हैं फहीम अशरफ ने। दो अब नए बैट्समैन हैं, बॉलिंग और ज्यादा बेहतर हो जाती है खुद ब खुद ही ऐसे हालात में। फहीम अशरफ जो है ये हमेशा से उनका खासा रहा है, यही उनकी सुपर स्ट्रेंथ है, इन स्विंग करना, सीम करना गेंद को अंदर की तरफ। जुल्फकार जान का ये अच्छा फैसला, गेंद पिछले पैड पर लगी थी, क्योंकि इस पिच पर एलबीडब्ल्यू आउट देना ये इतना आसान नहीं होता। रावलपिंडी में बाउंस होता है अंपायर के लिए। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन जिस एंगल के साथ फहीम अशरफ गेंदबाजी कर रहे हैं और खास तौर पे जो अर्ली ऑन मॉइस्चर का बेहतर अंदाज से फायदा उठाया है फैसलाबाद की टीम ने। शुरू में हमने देखा कि खुरम शहजाद ने अच्छी गेंद की, मोहम्मद अली भी राइट एरियाज में बॉल करते दिखाई दिए, और जो प्रेशर बिल्ड किया था खुरम शहजाद और मोहम्मद अली ने, उस प्रेशर को बेहतर अंदाज से कैरी ऑन किया है फहीम अशरफ ने। 2 बड़ी कामयाबियां दिलवाई हैं। खुरम शहजाद को सिर्फ 3 ही ओवर्स के बाद हटा दिया था कप्तान ने। तो फैसलाबाद की टीम में बेशतर नए और नौजवान खिलाड़ी हैं, और हम एक तारुफ जो है उनका पेश करना चाहेंगे। इनमें से बेशतर से जाहिर है कि आप वाकिफ नहीं होंगे। इसमें आसिफ अली या फहीम अशरफ, ये ऐसे खिलाड़ी हैं, मोहम्मद हुरैरा, जिनको ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन बेशतर नए हैं फैसलाबाद के। अच्छा स्ट्रोक, पंच किया इसे डाउन द ग्राउंड, और ये गेंद जीत जाएगी। आउटफील्ड हमेशा की तरह तेज है पिंडी की। इस जबरदस्त टाइमिंग उमर सिद्दीक की, यकीनी तौर पर इस बाउंड्री के साथ उनके एतमाद में इजाफा जरूर होगा। थोड़ी ओवर पिच गेंद थी फहीम अशरफ की, और इसको खूबसूरती के साथ स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेले सीधे बल्ले के साथ उमर सिद्दीक। और यही वक्त की जरूरत थी कि आप विकेट पर ठहर के बारी करें, और उम्दा हैंड आई कोऑर्डिनेशन यहां पर देखने को मिली। बड़े जबरदस्त अंदाज से उन्होंने वेट ट्रांसफर किया इस बॉल पे, और आउटफील्ड रावलपिंडी की हमेशा से तेज ही रहती है, और इस बाउंड्री के साथ ओवर का अख्ताम किया उमर सिद्दीक ने। और बहुत अच्छा लगा, फैजान जो हैं आखिरी मौके तक एड़ी चोटी का जोर उन्होंने लगाया। अच्छा लगा, इससे जो टीम स्पिरिट है वो जाहिर होती है, एक नौजवान क्रिकेटर की स्पिरिट जाहिर होती है। शानदार आगाज नए ओवर का, बुरी तरह बीट किया लेफ्ट हैंडर को अली ने। ये सूरत हाल इतनी आसान नहीं है, अगरचे बड़े बासलाहियत खिलाड़ी हैं इब्तिसामुल हक, ये हुनर जानते हैं कि क्रीज पे ठहरना कैसे है, वक्त कैसे गुजारना है, लेकिन उनका सामना एक टेस्ट क्रिकेटर से है जो बहुत बासलाहियत है। पावर प्ले हालांकि तमाम हो चुका है, लेकिन अभी भी 7 फील्डर्स जो हैं वो दायरे में मौजूद हैं। ये अच्छी कप्तानी फहीम अशरफ की, क्योंकि जानते हैं दोनों बैट्समैन अभी तक उनकी नज़र जमी नहीं। ये आज पहले बैटिंग करना पड़ी लाहौर ब्लूज को। इमरान खेलने को आए थे, उनके साथ दूसरे एंड पर मौजूद थे हाशिम इब्राहिम, जो अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं, उन्होंने 3 चौके पे लगाए।
और उसके बाद अपनी विकेट से हाथ धो बैठे। फहीम अशरफ ने एक के बाद एक विकेट हासिल की। अच्छा स्पेल किया है अब तक फहीम ने, और उसके बाद ये इख्तिताम किया था चौके से। जल्दी करनी पड़ेगी और इस बार देखना होगा, और अंपायर ने सोच समझकर आउट करार दे दिया इब्तिसामुल हक को। यह आसान रन नहीं था क्योंकि गेंद तेज से गई थी मिड ऑफ के फील्डर के पास। जी हाँ, ये दोनों बैट्समैनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग और नतीजे में एक विकेट मिल गई फैसलाबाद की टीम को। फील्डिंग आज बड़ी जबरदस्त दिखाई दे रही है सुबह से ही, और बड़ा अच्छा रन आउट यहां पर। अपने पहले मैच में रन आउट हुए इब्तिसामुल हक, खेलते ही दौड़ पड़े थे यस और नो, और ये डायरेक्ट हिट नॉन स्ट्राइकर एंड पर। जी हाँ, मोहम्मद अली जो हैं, क्योंकि वो इनके रास्ते में आ गए थे और वही फर्क पड़ा। वो जो एक लम्हे का, क्योंकि ये बॉलर हैं, उनने इनका रास्ता काट लिया था। जिस राह ये भागते हुए आए थे इब्तिसाम, बदकिस्मत रहे, लेकिन जो है अच्छे लगे थे। हालांकि रन एक ही बनाया था 10 गेंदों पे, दिफा अच्छा था 33 पर 1। देखिएगा भाई 2 लेग। तीन विकेटें गवा चुकी है लाहौर ब्लूज की टीम। उमर सिद्दीक और हुसैन तलत, इन दोनों पर अब भारी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि ये काफी क्रिकेट खेल चुके हैं, काफी तजर्बा है इन दोनों खिलाड़ियों को पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का। हुसैन तलत ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पहले ही लेफ्ट हैंडर मौजूद हैं, एक लेफ्ट हैंडर आउट होकर गए हैं। यहाँ कासिम अकरम जो हैं, ये बआसानी इनको भेजा जा सकता था। दाएं और बाएं हाथ का जो कॉम्बो है वो परेशानी का सबब बनता है, लेकिन यहाँ देखिए ये बॉलर जो है, ये उनने इनका रास्ता काटा, और वही एक लम्हे का जो फर्क था वो बहुत बड़ा फर्क था। अच्छा फैसला यहाँ दिया अलीम डार ने। थोड़ा सोचा जरूर, लेकिन आखिर में वो जानते थे कि बैट्समैन शॉर्ट हैं। शानदार अंपायरिंग। उम्दा शॉट, इसे स्मैश कर दिया पॉइंट के सामने। 4 रन्स। अच्छी फॉर्म में लगे हैं उमर सिद्दीक। या दूसरी बाउंड्री उमर सिद्दीक के लिए। इस खराब गेंद को भरपूर अंदाज से बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। ऑफ स्टंप के बाहर विड्थ मिली और उम्दा अंदाज से गैप में खेले इस गेंद को। और यही वक्त की जरूरत है कि जब बाउंड्रीज गिर रही हैं तो आप काउंटर अटैक कीजिए, प्रेशर अपने ऊपर ना आने दीजिए। दूसरी बाउंड्री उमर सिद्दीक की इनिंग्स में। अभी भी 2 फील्डर्स को देखा जा सकता है स्लिप पोजीशन पर, पॉइंट कवर और मिड ऑफ। उसके अलावा ये बेहतर गेंद थी और उतना ही अच्छा छोड़ा भी उमर सिद्दीक ने। इस ओवर में 4 रन्स और 1 विकेट अली के लिए। 37 पर 3। जी, अगर हम पिछले मार्के की बात करें लाहौर ब्लूज और लाहौर व्हाइट्स के दरमियान, तो लाहौर ब्लूज ने 23 रन पर 4 विकेटें खोई थी, और आज लाहौर ब्लूज की टीम ने 37 रन पर। लाहौर व्हाइट्स की टीम ने 23 रन पर 4 विकेटें खोई थी और लाहौर ब्लूज ने 60 रन किए थे। आज लाहौर ब्लूज ने 37 किए हैं।
बॉलिंग जो है वो अच्छी है लाहौर ब्लूज की, लेकिन बैटिंग में इनके मसाइल हैं, और इसीलिए उमर सिद्दीक को टीम में शामिल किया गया। कासिम अकरम जो है आज भी नंबर 6 पर आएंगे। ये कुछ समझ से बालातर है, इनके कोच और कप्तान की जो सोच है। हुसैन तलत जो हैं ये अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि पहले ही एक लेफ्ट हैंडर थे, तो राइट और लेफ्ट हैंड का जो कॉम्बिनेशन है ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये बाउंड्री है, ये फिर हर ओवर में ही जो है आपको बॉलर को परेशानी रहती है, क्योंकि एक तरफ से बाउंड्री जो है अगर राइट और लेफ्ट हैंड का कॉम्बो हो तो वो बाउंड्री शॉर्ट ही मिलेगी। जी हाँ, ये पिछले मैच में लाहौर ब्लूज ने 60 रन किए थे पावर प्ले में, और आज लाहौर ब्लूज की टीम ने 37 किए हैं। अगर से एक विकेट ज्यादा खोई है और रन्स भी कम किए हैं, तो मुश्किलात में कमी नहीं हुई लाहौर ब्लूज की टीम की। जिस तरह आप बात कर रहे थे कासिम अकरम की, तो आज उनकी प्रमोशन बनती थी। उसकी वजह यह है कि एक तो टीम स्ट्रगल कर रही है, दूसरी तरफ जो लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड बैटिंग का कॉम्बिनेशन था वो बेहतर अंदाज से यूटिलाइज कर सकते थे लाहौर ब्लूज की टीम। अब एक खिलाड़ी को स्लिप से कम किया गया है, गली अभी भी है। अच्छा आगाज फैसलाबाद रीजन के लिए। ये अरहम नवाब हैं, नए खिलाड़ी, ये ऑफ स्पिन करते हैं, लेग स्पिन करते हैं, मिस्ट्री करते हैं। खुरम शहजाद ये इस टीम के आजमूदाकार बॉलर हैं। ये आपके सामने मोहम्मद फैजान, जो एक ज़माने में लाहौर कलंदर्स के लिए खेले थे, ऑलराउंडर हैं, ओपनिंग बैट्समैन इस टीम के। आसिफ अली, अलीशान विकेट कीपर हैं फैसलाबाद की टीम के। ये आप देख सकते हैं इरफान न्याजी, ये उनके लिए ये अच्छा फर्स्ट क्लास सीजन गुजरा है इरफान न्याजी के लिए। ये मोहम्मद हुरैरा, जी हाँ, पिछले 2 फर्स्ट क्लास सीजन में बहुत रन्स किए हैं मोहम्मद हुरैरा ने। ये अली असफंद है, ये मिस्ट्री स्पिनर लेफ्ट आर्म, और ये 3 अंडर 21 प्लेयर्स खिला रही है फैसलाबाद की टीम, जो कि बड़ा काबिल तहसीन काम है। ये मोहम्मद सलीम है, ये बहुत ही बासलाहियत बैट्समैन है। ये मोहम्मद सलीम जो हैं ये सीजन उनका भी अच्छा तारुफ हो सकता है। मिड इन ओवर फहीम अशरफ का 37 पर 1। ये मोहम्मद सलीम जिनका जिक्र हो रहा था, ये बड़े बासलाहियत बैट्समैन हैं, और अभी इन्होंने पहले मैच में निस सेंचुरी स्कोर की, 50 रन बनाए, क्योंकि बहुत लो स्कोरिंग डे था, आसान नहीं थी रावलपिंडी में बैटिंग करना। शोएब अख्तर स्टेडियम पर इन्होंने 50 रन की इनिंग्स खेली मुल्तान के खिलाफ। जी हाँ, बिल्कुल नॉर्मली यही होता है केआरएल स्टेडियम में कि बैटिंग इतनी सहल नहीं होती, खास तौर पे जब अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होता है। बड़ी ज़बरदस्त निफ सेंचुरी स्कोर की अपने लिस्टेड डेब्यू पर। तो ये टीम नौजवान बासलाहियत खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है फैसलाबाद की। इन्होंने हाल ही में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल भी खेला, और इस टीम के सिपा सालार फहीम अशरफ ने बड़े बेहतर अंदाज से इस टीम को लीड किया है। कि फहीम की अपनी परफॉर्मेंस भी बड़ी ज़बरदस्त रही फर्स्ट क्लास सीजन में, 400 से ज़ायद रन, 16 विकेटें, और ये बड़ा ज़रूरी होता है कि कप्तान खुद भी परफॉर्म करे और टीम को बेहतर अंदाज से लेके चले।
जहां इस टीम के जो हेड कोच थे तनवीर शौकत, उनकी भी वापसी हुई थी अरसे के बाद किसी फर्स्ट क्लास टीम के साथ। जाहिर है ये क्रेडिट जो है उनको भी जाता है, इनकी कोचिंग स्टाफ को। तनवीर शौकत, खुर्रम शहजाद जो फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, अतीकुर रहमान ये फील्डिंग कोच फैसलाबाद की टीम के, नौजवान टीम के साथ जो है वो फाइनल तक पहुंचना कायदे आजम ट्रॉफी के। जाहिर है ये मामूली कारकर्दगी या मामूली काम कारनामा नहीं। शानदार शॉट इस बार ऑफ द टोज और गेंद छोड़ती जा रही है दो फील्डर्स को पीछे और पार भी उतरी। आज रन्स बाउंड्रीज में आ रहे हैं उमर सिद्दीक के लिए, उनका तीसरा चौका। बड़ा दिलकश आगाज उमर सदीक की इनिंग्स का। कतई खराब गेंद थी, पैड्स पे बॉल किया मोहम्मद अली ने और कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल, उम्दा अंदाज से टाइम किया इस गेंद को। रावलपिंडी की आउटफील्ड अगर गेंद एक बार निकल पड़े तो बड़ा आसान होता है गेंद को बाउंड्री के पार जाना। आज गेंद जो है इनके बल्ले में अच्छी मिडल हो रही है और सिद्दीक के ऑफ स्टंप के बाहर जाहिर है हद दर्जा मोहतात हैं, अच्छी गेंदों को छोड़ रहे हैं, रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं अच्छी गेंदों को, खराब गेंदों के मुंतजिर हैं। पिछले ओवर में शॉर्ट गेंद को कट किया था, इस बार जो हाफ वॉली मिली पैड्स पर उसको ऑन साइड में चौका लगाया, लेकिन अच्छा तवाजुन है इनके स्ट्रोक प्ले और इनके दिफा के दरमियान। जी अभी तक जो 11 गेंदें खेली हैं उसमें बड़े कंपोज दिखाई दिए हैं, किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं कर रहे। इस इनिंग्स को कैरी करना होगा, जो आगाज मिला है इसको बड़े रन्स में कन्वर्ट करना होगा। उमर सिद्दीक पर बड़ा इन्हिसार है जहां तक पूरे 45 ओवर्स बैटिंग का ताल्लुक है। लाहौर ब्लूज की टीम पिछले मैच में ये 32वें ओवर में ये टीम ऑल आउट हो गई थी लाहौर वाइट्स के सामने। 27वें ओवर में ऑल आउट हो गई थी। तो आज अगर 45 ओवर्स खेलने हैं, हालांकि ये पिच बेहतर है पहले दिन की निस्बत, कंडीशंस ज्यादा बेहतर हैं। जबरदस्त गेंद छोड़ती हुई गई उमर सदीक को और नो बॉल का इशारा अलीम डार की जानिब से। ओवर स्टेप कर गए मोहम्मद अली इस मौके पर। बड़ा जबरदस्त स्पेल कर रहे हैं और बड़ी अनयूजुअल चीज है मोहम्मद अली के लिए वो ओवर स्टेप करें, लेकिन इस मौके पर जो पांव हैं वो पॉपिंग क्रीज के बाहर लैंड किया। जहां मुश्किल इनका पाँव जो है आगे सरक गया, क्योंकि इस वक्त मुकाबला चल रहा है मोहम्मद अली का उमर सिद्दीक के साथ। वो इन्हें बाउंड्रीज लगा रहे हैं, इसलिए ये भी अपने पूरे जोरों पे आना चाहते हैं और उसी में पाँव आगे को गया। और फ्री हिट और इसे चलता कर दिया और ये गई सीधी स्टैंड में। शानदार हिटिंग उमर सिद्दीक की, जो हौसला अफजा है लाहौर ब्लूज के लिए। 48 पर 3। जी हाँ, एक्स्ट्रा गेंद का भरपूर फायदा उठाया उमर सदीक ने। ये स्लॉट में बॉल था और इसको उठाकर फेंक दिया मिड विकेट स्टैंड्स की जानिब। एक जबरदस्त छक्के के साथ इस ओवर का इख्तिताम किया। बिल्कुल स्लॉट में गेंद कर गए, तैयार थे इस गेंद के लिए। भाग फुट पर गए और भरपूर अंदाज से क्लियर किया मिड विकेट फेंस को। छक्के के साथ 12वें ओवर का इख्तिताम 48, 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी फील्डिंग
कल अब तक फैसलाबाद के बॉलर्स की बात करें तो पेसर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया, अपनी जिम्मेदारी को निभाया। और कैपिटल ऑफ पाकिस्तान अब तक ओपनर्स ने कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखाई। इस वक्त उमर सिद्दीक और हुसैन तलत पे काफ़ी इन्हिसार है कि एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई जाए। स्टंप से थोड़ा सा बाहर था, सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए। और सलमान अब तक फैसलाबाद के जो पेसर्स हैं उन्हीं पे इन्हिसार किया और मेरे हिसाब से जो जिम्मेदारी थी बॉलर्स ने वो बखूबी अंजाम दी। जी हाँ, बॉलर्स ने अभी तक अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ को मेंटेन किया है। विकेट लेने में कामयाब रहे हैं फ़हीम अशरफ और बड़ी इंपॉर्टेंट 2 विकेट्स इन्होंने ली और सिर्फ 10 रन दिए हैं, अपने चौथे ओवर में हैं अभी। और मोहम्मद अली भी थोड़ा कहिए कि अनलकी रहे हैं, लेकिन अच्छा स्पेल उन्होंने 6 ओवर का किया। और लास्ट बॉल जो नो बॉल हुआ उसके ऊपर छक्का लगा उन्हें और 25 रन हुए, वरना बहुत ही इकोनॉमिकल उनका स्पेल रहा ये। और इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे बिकॉज पिच के अंदर हमने देखा मॉइस्चर था, शॉट इजीली लग नहीं रही थी और ऐसे में फास्ट बॉलर्स को कैरी ऑन रखना सही किया है कैप्टन ने। और प्रॉबेबली ये भी हो सकता है कि जो ग्रिप है उससे स्पिनर्स को मदद मिले। अगर ये ग्रिप रहती है पिच में तो स्पिनर्स का बॉल भी ग्रिप करेगा। बट अगेन आज धूप काफ़ी तगड़ी है और जब धूप तगड़ी होती है तो फिर पिच जल्दी ड्राई होने के चांसेस होते हैं। वो एक स्वीपर कवर है जो कि लॉन फील्डर कहना चाहिए, ऑफ साइड पे डीप में। फ़हीम अशरफ की अच्छी बात ये रही है कि तीनों स्टंप्स के में अटैक किया है इन्होंने और जो इन्होंने विकेट्स लिए हैं वो भी जाहिर है एक बोल्ड किया है, लेग बिफोर किया है, स्टंप टू स्टंप बॉलिंग की है। और जो भी बॉलर इन कंडीशंस में स्टंप्स में अटैक करेंगे वो बहुत डेंजरस हैं बैटर्स के लिए, क्योंकि जहां गलती हो गई वहां पे बचना मुश्किल होगा। और फ़हीम अशरफ का जो एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट का, काफ़ी बरसों से खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, उसको पूरी तरह उन्होंने इस्तेमाल किया है अपनी आज की बॉलिंग में। स्टंप से थोड़ा बाहर, लेकिन प्रोटेक्शन इस वक्त मौजूद है। बॉलर्स की जहां तक बात की कि विकेट जिस तरह से आज फ़हीम अशरफ या पेसर्स ने इनफैक्ट हासिल की। जी बिल्कुल, फ़हीम अशरफ की जैसे हमने कहा कि जो विद इन द स्टंप्स, यहाँ देखिए बहुत ही शानदार बॉल और हाशिम ने बिल्कुल अपनी फ्रंट लेग का इस्तेमाल नहीं किया और इमरान बट भी खड़े खड़े खेल गए और ऐसा लगा जैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बॉल ऑफ द पिच मूव करेगा, अंदर आएगा। और यहाँ इब्तिसाम देखिए अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं थे, बैकफुट पे बॉल खेला है। जब आप बैकफुट पे बॉल खेलते हैं तो आप ऑलरेडी क्रीज में पीछे होते हैं, तो आपको डिस्टेंस कवर करने के लिए ज़्यादा वक्त लगता है। अगर आप फ्रंट फुट पे हों तो आप जल्दी निकल जाते हैं, आपको 1-1.5 यार्ड का एडवांटेज होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल उन्होंने वो नहीं किया जो उनकी स्ट्रेंथ थी और डेब्यू पे थे, अच्छा खेल रहे थे, टाइम उनके पास नज़र आ रहा था और बहुत सारा टैलेंट था जिसे शायद आज वो डिस्प्ले ना कर सके अपने इस गलत कॉल की वजह से। कॉल भी इब्तिसाम की अपनी थी। यहाँ देखिए हालांकि एक कदम चले हैं लेकिन जब शॉट खेली है तो वेट उनका आगे नहीं था और बॉल भी खासी तेज गई और फील्डर को भी क्रेडिट है कि बहुत ही अच्छा वन फ्लो में पिकअप एंड थ्रो और डायरेक्ट हिट किया उन्होंने। और काफ़ी वक्त लेने के बाद अंपायर अलीम डार ने ये फैसला किया कि आउट है। ड्रिंक्स इस वक्त प्लेयर्स जो है अपनी प्यास बुझाते हुए
ओह, क्या बात है इस खाने की, रावलपिंडी, जहां पर आपको मिलेगा कुलचा नान, चने और उसके साथ साथ निहारी, ये तमाम तर चीजें खाकर तकरीबन इस वक्त 10:30-39 है। मेरा ख्याल है नाश्ते का वक्त है। और जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं मॉनिटर्स पर या ओवरऑल, उनको बताते चलें कि पिंडी में ना सिर्फ लाहौर बल्कि पिंडी में भी लोग खाने पीने के अच्छे खासे शौकीन हैं। देखिए, ये ज्यादती है कि कमेंट्री बॉक्स में बट हो और आप स्क्रीन पे चीज दिखाएं और वो सामने ना आए, ये बहुत सख्त ज्यादती है। पकड़ खुद ही, वेल डन, गुड स्टार्ट। वैसे कहा तो बिल्कुल सही सलमान भाई। इसके साथ 51 रन इस वक्त मुकम्मल हो चुके हैं। और बहुत ही अच्छी फील्डिंग, यहाँ पे रन आउट का चांस हो सकता है और वापस पहुंच गए हुसैन तलत, लकी रहे। आउटस्टैंडिंग फील्डिंग इरफान न्याजी, जो कि जाने ही अपनी फील्डिंग के लिए जाते हैं और नियरली एक और रन आउट इफेक्ट करने लगे थे। लाहौर इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता। मजीद विकेटों का गिरना लाहौर ब्लूज के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। थोड़ा आपिश खेले हुसैन तलत, शायद कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे और टाइम नहीं कर सके, मिडिल नहीं हो सका बॉल और एक रन आसानी से हासिल किया। तो इजाज भाई, ये नाश्ते का शौक आपको भी है? नाश्ते का शौक तो है, लेकिन जो अभी हमने देखा चने, कुलचा और इस तरह की निहारी, बस बार बार ना कहें ना, फिर मुश्किल हो जाएगा बैठना इधर। चले फिर कल ऑफ है, कल आपको ये नाश्ता कराते हैं। फिर नाश्ते का तो कोई ऑफ नहीं होता, तो कल पे डाल के तो बात ना करने वाली बात है। चले कोई बात नहीं। लेकिन सलमान भाई, जिस तरह से आपकी फिजिक है, फिट लग रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कभी आपने इस तरह से इतना हैवी नाश्ता अपनी जिंदगी में जमा के किया हो। नहीं, मैंने बहुत बार किया और वीकेंड पे आप कर सकते हैं ऐसा, और अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो फिर इतना कोई मैटर नहीं करती है चीज़, एज लॉन्ग एज कि आप जो खा रहे हैं उसको आप एक्सर्शन उतनी करें और उसको आप एक्सरसाइज से उसे बर्न कर लीजिए। यूसैन बोल्ट दुनिया के फास्टेस्ट एथलीट है और दुनिया का फिटेस्ट एथलीट है, और वो अपनी किताब में उन्होंने ये लिखा है कि एथलीट्स डोंट डाइट, दे ईट एंड ट्रेन। तो ये जो खाना खाना उसके बाद एक्सर्शन करना, आप देखिए कि एक मजदूर सबसे ज़्यादा खूबसूरत जिस्म का मालिक होता है। सारा दिन वो क्रॉसफिट करता है जब वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा होता है, और जब पहली मंजिल डालते हैं, वो जैसे कहते हैं लेंटर डल गया है, तो उसके बाद वो 5 किलो की मिठाई 6-7 मजदूर खा जाते हैं। सो इट्स अबाउट ईटिंग एंड वर्किंग आउट। एक्सीलेंट। और ये हुसैन तलत की जो खुशी है, इन्होंने भी काफ़ी हद तक जो अपना काम है वो कर दिया यहाँ पर। अब आपने खाने की बातें छेड़ दी हैं तो मुड़ना मुश्किल है यहाँ से। मैं रात को इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और इफ्तिखार ने भी कहा कि जब हम मैच जीत जाते हैं तो तब बिरयानी नहीं तंग करती, लेकिन जब हम हार जाते हैं तो लोग बिरयानी का जिक्र करते हैं। इस दफा बैकअप लाइन बॉल था, इसको खेल दिया स्केलर की जानिब। वैसे ओवरऑल अगर हम इस इनिंग की भी बात करें तो बड़ा वॉचफुल आगाज था। 5 ओवर तक कुछ विकेट नहीं गिरी थी, लेकिन जैसे ही रन्स की तरफ गए वहां पर अपनी विकेटें गंवाते गए। शायद उन्होंने अली की बात सुन ली। अली बहुत इंटेंट का जिक्र कर रहे थे, मॉडर्न क्रिकेट का जिक्र कर रहे थे, लेकिन पिच खासा मुश्किल था। पिच में बॉल होल्ड अप कर रहा था, बॉल ग्रिप हो रहा था, उस तरह से बैट पे आ नहीं रहा था। तो जब तक वो केयरफुल रहे, स्कोर बना, थोड़ा बना, लेकिन द मोमेंट ज़रा उन्होंने फ्रीडम के साथ खेलने की कोशिश की तो फिर कुछ ऐसे बॉल थे जिन्हें अगर कॉम्पैक्ट खेलते तो शायद बच जाते, जो 2 विकेट्स फहीम अशरफ ने लिए हैं। लेकिन ये बहुत खूबसूरत शॉट है, बहुत ही कंट्रोल के साथ पुल किया इसे मिड विकेट के ऊपर से, और उमर सिद्दीक बहुत ही शानदार और फ्लुएंट लग रहे हैं खेलते हुए। बहुत ही आला शॉट, 4 रन हासिल किए। और फहीम इस दफ़ा शॉर्ट बॉल उन्होंने की और इसमें कोई इतनी ज़्यादा पेस नहीं थी,
बहुत ही बासानी इसको खूबसूरती के साथ प्लेस किया है उमर सदीक ने। वेल, इस पिच की जब आप बात कर रहे थे तो वेट एंड प्लेस का बेहतर ऑप्शन होगा बैटर्स के लिए कि थोड़ा सा जब हमने देखा कि टच शॉट या बैकअप लेंथ बॉल था और वेट किया उन्होंने अपनी क्रीज में, लेकिन जो बॉल आगे पड़े हुए है उसमें थोड़ा मुश्किल जरूर हो रही है प्लेस करने में। लेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल बजा बात की आपने। ये बॉल थोड़ा पीछे था जिसको आराम से प्लेस किया, और जब अच्छी लेंथ पे करते हैं तो बैटर रिस्पेक्ट देता है जैसे अभी हुआ है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई दफ़ा फिर बैटर्स अपने लिए जब सेट हो जाते हैं फिर लेंथ क्रिएट करते हैं। जब वो बॉलर की तरफ एक आध कदम चलते हैं तो डेफिनेटली बॉलर फिर लेंथ को थोड़ा पीछे खींचता है, थोड़ा शॉर्टर लेंथ पे आता है और वहाँ पर फिर बैटर के लिए स्ट्रोक बनाने में आसानी होती है, क्योंकि आज पिच इतना तेज़ नहीं है और फ़हीम अशरफ भी कोई लाइटनिंग फास्ट नहीं है, इज़ मीडियम फास्ट बॉलर। और ऐसे में अगर आप सेट हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आप रन्स बना सकते हैं और अपनी मर्जी से खेल सकते हैं, लेकिन इस तरह के पिच पे थोड़ा वक्त गुजारना ज़रूरी है। लेंथ की आपने बात की, लेकिन इस दफ़ा जो लाइन थी वो लेग स्टंप पे पिच की, गो के एक स्लिप ले रखी है फ़हीम ने और ऑलरेडी इतना ज़रा एक्सप्रेस नहीं है। तो जो 2 विकेटें अभी हमने ऑलरेडी देखी उसमें भी हमने देखा कि विकेट टू विकेट उन्हें ज़्यादा कामयाबियाँ मिली। बिल्कुल, विकेट टू विकेट जब भी आप बॉल करते हैं और स्पेशली अगर पिच में हल्की फुल्की मूवमेंट है, बॉलर को सपोर्ट कर रही है पिच, तो बैटर के लिए खासे मसले बन जाते हैं। और अगर आपकी लेंथ भी अच्छी हो तो फिर तो आइसिंग ऑन द केक है। और फ़हीम ने दोनों चीज़ें आज अच्छी की और उसके नतीजे में उन्हें 2 विकेट्स भी मिली। डॉट बॉल के साथ इस ओवर का इख्तिताम किया, क्योंकि इस वक्त भी मुश्किलात ज़रूर हैं लाहौर के लिए, लेकिन एक रीबिल्डिंग प्रोसेस है। 3 विकेट अब तक गिरे 60 रन पे और बॉलर्स ने अच्छा काम किया। जी खुरम, 3 ओवर 13 रन्स, कामयाबी कोई नहीं मिली। मोहम्मद अली ने भी बहुत शानदार बॉलिंग की, 6 ओवर्स में 25 रन दिए, इकोनॉमिकल रहे। फ़हीम अशरफ वाहिद कामयाब बॉलर, 5 ओवर्स में 2 विकेट्स हासिल किए 20 रन देके। और अरहम 1 ओवर किया अभी और 2 रन दिए और 1 रन आउट हमने देखा। और अभी तक काफ़ी अंडर कंट्रोल है फैसलाबाद की बॉलर्स के ये मैच। देखना है कि लाहौर ब्लूज़ कोई बड़ी पार्टनरशिप लगा पाते हैं। खुरम, उमर सदीक जिस तरह सेट खेल रहे हैं, तो अगर ये बड़ी इनिंग खेल पाते हैं तो ये डेफिनेटली लाहौर ब्लूज़ को एक अच्छा टारगेट दे सकेंगे। थोड़ा सा पीछे हटकर खेलने गए थे, प्लेसमेंट बेहतर नहीं थी, लेकिन लक यहाँ पर काम कर गई। अभी भी पिच पर थोड़ा सा ग्रिप मौजूद है, जिसकी वजह से ये बॉल को वो टाइम नहीं कर सके जिस तरह करना चाहते थे, और इसीलिए बैटर्स जो है वो पूरे फ्रीडम के साथ अभी नहीं खेल पा रहे, क्योंकि पिच में कोई बॉल थोड़ा सा रुक के आता है और कोई बॉल नॉर्मल आता है। स्वीप किया और काफी बेहतर रहा, गो के चौका शायद ना मिल पाए, लेकिन प्लेसमेंट बेहतर है, सोच अच्छी है। तीसरे के लिए भी पलटे, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और यही इस वक्त जरूरत भी है लाहौर की टीम को, क्योंकि ऑलरेडी वो 3 विकेट गंवा चुके। यहाँ पर रीबिल्डिंग प्रोसेस है और एक अच्छी शराकत चाहिए। अच्छा खेले, और देखें कितनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, इतना ज्यादा उन्होंने स्पेस अवेल नहीं किया, बिल्कुल स्ट्रेट रनिंग के साथ बआसानी 3 रन मुकम्मल किए। किसी हद तक अभी हमने ये 2-3 बॉलें देखी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो भी रह रहा है स्पिनर का बॉल। बिल्कुल थोड़ी वेरिएशन है पिच के अंदर। ये अच्छी लाइन, स्पिनर्स भी जब स्टंप्स के अंदर बॉलिंग करते हैं और अच्छी जगह पर बॉल को पिच करते हैं तो बैटर्स इतने कंफर्टेबल नहीं हैं अभी तक। जैसे जैसे सेट होंगे, अडेप्ट करेंगे पिच को, रन मेकिंग इजी होती जाएगी। यहाँ देखिए एक लूज स्ट्रोक था और आखिर में एक ही हाथ से ये स्ट्रोक को एग्जीक्यूट किया, और बहुत ही चांसी, खतरनाक हो सकता था मामला। और न्याजी फील्डर भी लंबे हैं, लकी रहे कि उनके ऊपर से बॉल गुजर गई।
एग्जैक्टली इससे पहले भी हमने देखा कि लेट कट पे उमर सिद्दीक को एक लाइफ मिली। यहाँ पर भी जो बॉल है वो फील्डर के सर के ऊपर से गई, कदम निकाले, चार्ज किया ऑन साइड पे, और इस दफा फिर बॉल फील्डर से थोड़ा सा आगे गिरी। वेल कोशिश है कि रन्स तेज बनाए, लेकिन इसका टाइम सही नहीं कर पा रहे। 16 ओवर गए, 66 पे 3। वेल 33 रन ये दोनों फील्डर्स जो है वो सॉरी बैटर्स जो है वो जोड़ चुके हैं। मोहम्मद फैजान 17 मैचेस में 6 विकेट, 5.97 इनका इकॉनमी है। ऑन साइड पे खेलने गए, डायरेक्ट हिट, क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, लेकिन अंपायर ने कहा कि नॉट आउट। फैसलाबाद के फील्डर्स की खासी प्रैक्टिस लग रही है डायरेक्ट हिटिंग की, और ये दूसरी बार है कि हमने डायरेक्ट हिट देखी। पहला रन आउट इब्तिसाम की सूरत में, और यहाँ पे अब हमने एक बार फिर स्टंप्स को हिट किया, लेकिन इस बार हुसैन तलत जो थे बासानी अपनी ग्राउंड में पहुंच गए। ये देखिए एक अच्छा पिकअप और 1 गो में थ्रो भी, बहुत ही शानदार फील्डिंग, और थोड़ा सा भी अगर चूकते या डिले स्टार्ट होता तो रन आउट हो जाना था। बहुत शानदार फील्डिंग। मोहम्मद फैजान ऑलराउंडर हैं ये भी, और PSL में लाहौर कलंदर्स को इनिशियली ये रिप्रेजेंट कर चुके, और पिछले 1-2 सीजन से बड़ी अच्छी वाइट बॉल क्रिकेट ये खेल रहे हैं, और रन्स खासे बनाए इन्होंने, और बॉलिंग भी डिसेंट कर लेते हैं। ऑल्दो कि कोई बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है इनकी, लेकिन एक्यूरेसी अच्छी है, स्पेशली चेंज ऑफ पेस और यॉर्कर्स डेथ बॉलिंग में खासे कामयाब रहते हैं। देखिए चेंज ऑफ पेस, इमीडिएटली जो अपनी स्किल है उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं, लेकिन बड़ा ज़रूरी है इस वक्त लाहौर के लिए कि पीछे इतनी लंबी बैटिंग लाइन नहीं है, और अभी इसके बाद 28 ओवर्स का खेल बाकी है। तो 28 ओवर्स का मतलब है कि 168 बॉल्स, तो अगर आप 168 बॉलों में 180-85 रन्स भी करते हैं तो 250 के करीब टोटल होता है, कि जो यहाँ पर अच्छा टोटल हो सकता है, लेकिन उसके लिए खेलना पड़ेंगे ओवर्स। और एक बार फिर ख़तरनाक मामला हो सकता था। इन द एयर शॉट खेला, कंट्रोल बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन 4 रन होंगे। न्याजी के या ऊपर से गुजर रही है या दाएं से या बाएं से करीबी मामला चल रहे हैं न्याजी साहब के साथ। इस बार बॉल को फ्लिक किया, अच्छा टाइम किया था, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे जब स्ट्रोक खेला। ये देखिए, और न्याजी बेस्ट फील्डर है, कॉन्स्टेंटली बैटर्स जो हैं वो अपनी लक को राइड कर रहे हैं। न्याजी भी सोचते होंगे आखिर कब तक। एग्जैक्टली काफी बिजी फील्डर हैं इरफान न्याजी, लेकिन यहाँ पर आपको जो दोनों बैटर्स हैं उनकी लक, उनकी जो बैटिंग है उसको भी देखना है, क्योंकि काफी देर से साथ हैं, लगभग कोई 39 रन बना चुके 44 बॉलों में। रीबिल्डिंग प्रोसेस है। डॉट बॉल के साथ ओवर का इख्तिताम हुआ, 17 ओवर गए, 72 पे 3। और अब तक जैसे आपने बात की कि जो बकाया ओवर्स हैं, लेकिन जो अब तक का प्रोसीडिंग है 65 डॉट बॉल्स। जी बिल्कुल, 21 सिंगल्स हुए हैं, एक ही बार 2 रन्स बने, एक बार 3 रन्स, 9 दफ़ा 4 रन्स लगे और 1 छक्का, और 65 डॉट बॉल्स। ये अक्कासी करता है इस चीज़ की कि इस पिच में
बैटर्स जो है बहुत फ्रीली स्कोर नहीं बना पा रहे, बॉल को टाइम नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो डॉट बॉल्स का कॉलम है, यहाँ पर थोड़े सिंगल्स ज़्यादा होने चाहिए थे। लेकिन बैटर्स जो है वो बड़े शॉट्स की तरफ ही ज़्यादा फोकस्ड हैं। जबकि अगर ऐसे पिच के ऊपर अगर आप की रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी है और स्ट्राइक रोटेशन आप करते रहते हैं, तो ज़्यादा चांसेस आपको मिलते हैं शॉट्स मारने के लिए भी। जाहिर है फिर बॉलर जो है वो सिंगल अवॉइड करने की कोशिश करता है और उसमें आपको बॉल्स मिलते हैं। जो और बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि बहुत से बैटर्स ऐसे हैं जिनका आगाज़ थोड़ा स्लो होता है, लेकिन जैसे ही वो 20-25 बॉलें खेलते हैं उनका स्ट्राइक रेट इम्प्रूव होता है, बेहतर होता है, एवरेज बढ़ता है। उमर सिद्दीक और हुसैन तलत तकरीबन आप समझ सकते हैं कि माइट भी इनके पास भी एबिलिटी है कि अपना जो स्ट्राइक रेट है विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव कर सकें इस पिच पे। जी बिल्कुल है, दोनों ही बहुत टैलेंटेड बैटर्स हैं, दोनों ने बहुत सारी क्रिकेट खेल ली, हर फोरम के ऊपर खेले। हुसैन तलत तो इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुके हैं और यहाँ 4 रन्स बनेंगे। कट किया है गैप में और थोड़ी सी विड्थ मिलती है तो वहाँ पर फ़ायदा होता है। कई दफ़ा बैटर्स को विड्थ क्रिएट करनी पड़ती है और स्पेशली जब आप अपने फ्रंट फुट की जो फॉरवर्ड प्रेस है अगर आप उसके ऊपर आते हैं तो अक्सर यंग बॉलर्स जो हैं वो ये समझते हैं कि शायद आप बाहर निकलने लगे और वो फ़ौरन लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींचते हैं और ये एग्जैक्टली वही हुआ इस बॉल के ऊपर। आप देखिए थोड़ी सी विड्थ आई और फ्रंट लेग को फ्री करते उन्होंने इसको गैप में खेला और आसानी से 4 रन्स हासिल किए। तो अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी अगर पार्टनरशिप लंबी हो तो बैटर भी अपने आप को डिस्कवर करता है कि वो किस तरह से स्कोर करता है, किस तरह का पाथ कंस्ट्रक्ट करता है एक बड़ी इनिंग के लिए। और अभी स्पिनर्स के अगेंस्ट काफी हद तक सहल लग रही है बैटिंग। पीछे हटकर इसको मिड विकेट की जानिब खेला, फील्डर का ताक़ुब, लेकिन बेसुध 4 रन हासिल किए और गैप अप पिक करना शुरू किया स्पिनर के अगेंस्ट। एक और शॉर्ट बॉल जो कि स्लाइटली शॉर्ट था, पिच इतना वक्त दे रही है बैटर्स को। ये देखिए रॉक ऑन द बैक फुट और उसके बाद उसे बहुत खूबसूरती से उन्होंने प्लेस किया है मिड विकेट के ऊपर से और वो जगह सारी वेकेंट है, बहुत बड़ा गैप है वहां पर। बॉलर के लिए बहुत कम मौके हैं गलती करने के, बिकॉज 5 फील्डर्स दायरे के अंदर हैं, बड़े बड़े गैप्स हैं बाहर। 18 ओवर्स का इख्तिताम, 80 पे 3 लाहौर ब्लूज। Right, Umar Siddiq holds the key here. Conditions have eased up just a little for the batters. And this is what intent does. Umar Siddiq has shown that intent, then anything in his zone is going to go after. And it is definitely paying off for him. Trying to be cheeky, just decided pretty late that the ball was not quite full. And the pace was not quite there to be hitting that shot. Hussain Talat. This is an important partnership building for Blues. This time it was there. Not quite connecting it, Hussain Talat. The idea was right because the fielder of fine leg is inside the circle. Once you get the connection, you're going to get the boundary. Naman Chaudhary alongside me. A very good morning. Absolutely good morning, Ali. And you were spot on in terms of intent, the approach, the adaptability. That has become the norm of international cricket now. And about the intent, that's what we have seen from this partnership, this pair, especially Umar Siddiq. That's what we've been lacking from the Lahore Blues batters. 47 of 54 is the partnership. And these two, they need to stick around for quite some time. They need to make sure that they somehow take Lahore Blues to a good total. Yeah, but the question, Naman, is that what is the good total? Because conditions are easing up. It's getting easier for the batters. The exaggerated movement is not quite there. And yes, as you mentioned, the intent, it's very important.
And Umar Siddiq, I was really surprised not to see his name in the first game. And bringing him back in this side, I think it has created more balance. He's a wicket keeper also. So the balance is better for Lahore Blues in this side. Well, absolutely. And you've mentioned about the right total. What I personally believe is you got to set the benchmarks for certain number of overs. For example, if you are batting out till 30th over, you need to assess the situation till 30th over. Make sure the partnership lasts till that. And after that, you can go on and accelerate in the last few overs. Showing some intent, but not quite connecting it. Yeah, that's the trouble of batting first, that you don't quite know how to go about and what's the good total. That's why the chasing becomes easier in planning and strategizing. But at the moment, Lahore Blues clearly struggling to find what is a good total, because this partnership, as you mentioned, is building. But how much score is enough? That's the question. Because this Faisalabad side have quite few explosive batters in their side. We'll talk more about it because it's the end of 19 overs, 82 for 3. Salman Rashad will have an important role in the second inning, because they'll have to learn from Danial, Ahmed Danial, the way he bowled in the first game, took a fifer, the first of him on his debut. Salman Rashad is going to be equally good. Hunain Shah also. A lot depends on how they bowl in the second inning. Aram Nawab, an off spinner. A rare sight these days in domestic cricket. Well, absolutely. Off spinners seems to have just disappeared from the domestic structure. It's so good to have Aram coming in the ranks. Sweeps it beautifully, right between the two fielders. Umar Siddiq is playing on a different level altogether as he brings up a 50 partnership with that magnificent sweep shot. Well, absolutely. Just down on one knee, sweeping that one. That was a poor ball on the leg stump. All Umar had to do was to help the ball on the onside. He gets a boundary. And I tell you what, in this half-century partnership has been dominated by Umar Siddiq throughout. 42 runs from the blade of Umar Siddiq in the stand of 53. That shows that he is surely on a different level. Oh, has to be very close. Yes, the finger is raised. Just as we are praising Umar Siddiq's quality, he's played a false shot. And it gives the first wicket to Arham Nawaz, the youngster. This will surely give him a lot of confidence, Noman Chaudhary. That was a brave ball. That was definitely a brave ball. A flighted delivery, inviting the batter to play. It was in the zone, trying to play that one across the line. Was trapped in front, Umar Siddiq. And a timely breakthrough this for the Faisalabad region. Umar Siddiq, he looked settled, he looked well on the crease, but he has to take a long walk back to the heart. 46 is what Umar Siddiq has managed. 86 for 4, Lahore Blues. The most promising youngster in Pakistan domestic circuit, Qasim Akram, moves in at an important time, because as you just said, Aram Nawab has taken that wicket at a very important time. He's breaking that partnership which was looking threatening for Faisalabad, and a wrong shot selection. Good numbers. These will improve because he's just played 47 games, 34 the average, the best of 131. Couple of hundreds also. Strike rate also very impressive, 95.26. But Noman Chaudhary, what a time to get your first wicket in List A career.
Arham Nawab, it was his first wicket. Well, absolutely, and that too after conceding a boundary. That was a very brave ball, not hesitant to fly the ball up, inviting the batter to play a shot. And sometimes these are the forced errors. You invite the batter. Well bowled, yeah. Yeah, kar shabash. There's a fine line. Got to be brave, but not overconfident. At that occasion he was, but this is the wicket. Tossed up, flighted, was not that quite full to be hitting that shot. In fact, it was too full to attempt that shot even from Umar Siddiq. Not a good time to lose that wicket. Arham Nawab, Naman Chaudhary, we first saw him in school championship. It was a couple of years before. Thanks to TPT, that we could see him ball in school championship, and now we are able to talk about him. Also played Pakistan Junior League for Bahawalpur, so he's come through the ranks. Played school cricket, PJL, and now representing the region. So that's the proper way of playing cricket. That's Ali Asfand, another very talented left-arm spinner, coming through the ranks, coming through. This is Arham Nawab. And we were impressed for the very first time that we saw him in that school championship. Naman, I think you were there too, and we were all praises for him. Well, absolutely. We have seen number of players who have featured in that school championship. Tayyib Arif, Arham Nawab, Ali Asfand. So it's just about the fact that how you develop players from school level. It's the age group cricket that you carry on. You give chances to these players, and most importantly, the players, they pounce on those chances, they perform on the occasion they've been given. Qasim Akram is also one of those players who comes from the age group under 16, under 19, is captain Pakistan under 19 side as well. He's captain in the last domestic season, the Central Punjab side as well. So it's just the fact that you give confidence to young players and they back that up with their performances. Yeah, you make a good point. You need to back them up. And a lot of credit has to be given to Mohammad Salman, the former Pakistan wicketkeeper batter from Faisalabad. He was the coach at that time. That school championship, or it was a college and school mixed competition that we witnessed at Gaddafi Stadium, where we first saw Arham Nawab. And we were of this opinion that at least he's in good hand, is in safe hands of Salman, the way he has managed this young lot of Faisalabad. That's a good sign for Pakistan cricket, involving people like Salman at school level, at college level. That is where you need to pick your talent from. You are absolutely spot on, and that's what we have seen in international cricket as well, that the teams who develop players from the school level. Seen that on numerous occasions. Joe Root is one of those examples, was so good during the school cricket. Beautifully clipped, beautifully timed too. Better than he thought actually. And the placement also, taking the ball towards that mid-wicket boundary. So Qasim Akram is off to a very confident start. Couple of boundaries already. Yeah, stepping out of his crease on this occasion. Good roll of the wrist there by Qasim Akram, playing in the gap, getting his second boundary. And that shows the confidence he has. That shows the oozing class Qasim possesses. The intent, Naman. Searching for runs. 21 gone, 97 for 4. Yeah, that's something that I don't like. The first thing, dots, 78 of them, 26 singles. That's a lot of difference. You got to be converting those dots into ones. That's the minimum. Just 1, 2, and 1, 3. 14 boundaries. 78 dots means you have wasted 13 overs, Noman. That's a lot of overs, considering this is a 45-over game. Earlier in the first session, I was having this debate with Salman.
that you need to be able to rotate the strike continuously. And now when you lose your wickets, when you lose a Hashim Imran Butt, the pressure comes to the batters coming down the order. And now they have to play shots like this because the runs have not been scored top of the order. The intent has not been shown. And we've seen that anyone who has shown intent, like Qasim Akram already has shown, Umar Siddiq did the same, showed intent, forced the bowler to bowl those wrong deliveries. Oh, beautifully bowled. There's an appeal. No, says umpire, but spin available for him. That is a good news. Off spinner who can spin the ball. Oh, what a delivery. Sharp turner went away from the left-handed batter. Look at that. Beaten in the air, beaten in the flight. Not hesitant to flight the ball is Aram Nawab. Beautifully done. Trying to bring that switch hit in play was Hussain Talat. Coming back to your point, Ali Yunus, the number of dot balls, the batters, they need to cut down on that. And also there's a fine line between going berserk right from the word go and just playing out the number of deliveries. Look at that. That was the stumping chance. Ali Shan collected the ball, dislodged the stump. That was a very good decision by the square leg umpire. Zulfikar Jan making sure that he gets everything right. So coming back to the point of dot balls, you need to cut out on the dot balls. You need to show intent, but you do not have to be overly aggressive. That's for sure. Play bat to ball, try to rotate the strike. That's gone through. Ali will not be able to cut it. A boundary towards third for Qasim Akram. This is what intent does. A boundary to complete their 100 runs for Lahore Blues. Yeah, going on the back foot on this occasion was Qasim Akram. Played late, played in the gap, and gets a boundary. His third one. Qasim moves to 13, and Lahore Blues move to 102 at the end of 22 overs. Junaid Ali, Umaid Asif, Usman Qadir to follow. But this is a very crucial partnership between Hussain Talat and Qasim Akram. Okay, there you see the top openers, both of them. 22 deliveries Imran Butt took for his just 9 runs. 21 deliveries for Hashim Ibrahim. This was all right because the conditions were not quite easy. But Imran Butt, having so much experience behind him of Test cricket, he was unable to rotate the strike on a regular occasion. I'm not saying you just go out and start hitting big hits, difficult conditions, but at this level you should be able to rotate the strike because, as you just mentioned, 13 overs have been played in dot deliveries. That is not on. That is not modern cricket because cricket is changing. So you got to be changing your approach with time. And that's what the level demands, Ali. You're playing at the premier listed tournament of Pakistan. And after that, there's international cricket. So you've got to show that you stand out. Being an international cricketer, you stand out in terms of your methodology, in terms of the way you adopt to get out of the pressure. Unfortunately, we have not seen that from most of the players in this tournament. They eat up the number of balls, but they do not convert that into scoring shots, and they do not convert the start they get into the bigger ones. See, this is what happens. Once you take so many deliveries, and then you get out. And then you put a lot of pressure for the batters to come. That is why intent has to be there from ball one. I know the conditions were not easy, but you got to be showing your intent. You got to be able to, play with the mind of the bowler. This is what Umar Siddiq did. And he scored runs, 46 or 41, because he was moving around, he was hitting anything that was there in his zone. That did not happen with the openers. They were too reluctant. 2 is the call. They should be able to get it. Oh, there was definitely 2 available. That is not good cricket. That is not good running between the wickets from these two. You got to take the first run quickly, and
Once you do that, you put the pressure on the fielder. Dabbing on the onside. They got the first run. Yeah, seems like they were not ready for the second run. Qasim Akram, he expected a lot better from him. Come on, Qasim Akram. You're the most promising youngster. You got to be running hard. You got to be converting these ones into twos. Single there on the onside to end the over. Partnerships move along to 20. 23 done, 106 for the loss of 4 wickets. जल्दी 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 Qasim Akram and Hussain Talat, the two batters in the middle. Talking about Qasim Akram, you have mentioned the most promising talent in domestic cricket. Last game against Lahore Whites, he came into bat in the 10th over. Score was 60, they lost 3 wickets, and he went out in 12th over. So that's what we've been talking about, that this level demands you to be a lot more confident in your approach, to build the innings when the chance has been provided to you. You got to make sure that you pounce on the opportunity. And today, he bats in at kind of same time. In 19th over, the team was 86 for 4. Another opportunity has been provided to him to showcase his talent. So let's see what he is going to do today. Yeah, you compared the last inning with this one. The conditions were pretty difficult when he came to bat in the last game, but these conditions are quite easy. The sun is out, pitch has dried up a little, so ball is coming nicely onto the bat. You just got to execute your plan here. How do you want to play? How do you want to take this inning forward? As we see the change in the bowling, Ali Asfan, another very promising left arm spinner. We're seeing him for the first time here in List A. He gave away too many runs in the final of Quaid-e-Azam Trophy. Ali, also about the conditions you've rightly mentioned, but isn't it just about the way you get dismissed? Qasim was trying to clear, the mid-off fielder was caught inside the circle. So being a mature batsman, you got to make sure that you adapt to the situation well, because his team was not chasing a huge target. There was only 200 to chase, and you have around 36 overs. And the way you get dismissed, that does not show the class you have. Yeah, you make a good point. It's not about you, how you get out. It's about how you get out. And what are the conditions? What was the game demanding from you? So yeah, definitely a good point raised by you, that you got to be playing for the team. 24 gone, 107 for 4. Interesting. It's on time. Innings over timer, because we know now the teams are being penalized if they're not on time. And that can make a difference, having one fielder inside the circle at the end, even for 1 over, that makes a difference. You're absolutely spot on. And good teams, they make sure that they're always spot on in terms of time and in terms of making sure that they get the thing sorted and calculated. Khurram Shahzad is back. He bowled 3 overs for 13 runs, without a wicket though. Fahim Ashraf has done a good job so far, taken 4 wickets for the team, couple of wickets for himself, just gave away 20 runs in 5 overs. Akram Nawab getting 1 wicket. Ibtisam running himself out. Agali in place for Khurram. And this is good captaincy. Why I say, because we know that Hussain Talat likes playing that shot towards third area. He plays it late, he guides it towards third. So yes, very good captaincy by Fahim Ashraf.
Well, Ali, there are general talks about the players who get bogged down by the pressure of captaincy. That was not the case with Fahim Ashraf. He led Faisalabad to the final of Qaid-e-Azam Trophy, scored over 400 runs, got 16 wickets as well. So some players, they boom under the pressure of captaincy. Only if they had played more games at Gaddafi Stadium, then it would have been a definite test for his captaincy. They did not play one game before the final at Gaddafi Stadium. They were playing in conditions which were bowling friendly, and they had a quality bowling lineup too, and we saw that they did struggle in finding the right length at Gaddafi Stadium. But for himself, for his own personal grooming and growth, he scored 100 there at the final. Definitely it was a huge moment for Faisalabad region qualifying for the finals. Pulled beautifully right between the two fielders. This is fantastic by Hussain Talat. Yeah, that was not a bad ball. He had two fielders at the fence for this sort of a shot. But look at that for a timing by Hussain Talat. He's picked up the length and has placed in the gap between the two fielders to get a much needed boundary for his side. That's good calculated risk by Hussain Talat, playing in the gap and getting a boundary. Yeah, you can already tell the ball is coming nicely onto the bat now. The early scares are gone. And if you're sensible enough, you'll take this opportunity. You got the start, you've played 39 deliveries. Qasim Akram has taken 15 deliveries. So now if you play sensible cricket, conventional cricket, and maybe look to go big in last 7 or 8 overs, that will go by the plan. Ali, that's where the right approach and the mindset comes into play. That's how you build the innings. That's how you tell yourself to build the innings. Down the track, over the head of mid-off fielder. It has enough legs. Yes, it has, for a boundary. So now the boundaries are coming quite easy for Hussain Talat. Yeah, that's what happens once you spend time at the wicket. You make sure that you get your eyes settled in. Things become a lot easier for you. Stepping out of the crease on this occasion was Hussain Talat. And once again, good game awareness shown. He understands that the fielder of mid-off was inside the circle. All he had to do was to get over the infield. Consecutive boundaries for Hussain Talat and Lahore Blues. Another partnership building, 31 at the moment. And I strongly believe that this is the partnership for Lahore Blues. Although there is Junaid Ali, definitely can bat. But this partnership holds the key. Good run again. Soft hands. 25 gone. 118 for 4. चार हो गए अंदर अली असवंत कंटिन्यू करते हुए ऐसा शफल किया गया, स्लिप हुए, चांस क्रिएट हो सकता था, लेकिन ऑल सेटल्ड. पे खेलने गए थे, देखिए थोड़ा और स्लिप हुए. यस एंड नो की इस कॉल में खुशकिस्मत रहे कि रन आउट नहीं हुए, क्योंकि ये पार्टनरशिप काफी बेहतर है और काफी इंपॉर्टेंट भी है
लाहौर की टीम के लिए। हुसैन तलत जो है ये मुश्किल इनिंग्स इनके लिए रही है अब तक, और इस मौसम में आप जितनी भी गेंदें खेल रहे हैं आपको थकना नहीं चाहिए, जिसका ये तासुर दे रहे हैं हुसैन तलत। अभी तक फास्ट बॉलर्स को ज्यादा एतमाद के साथ नहीं खेल सके हैं। अच्छी बैटिंग पिच है, यहाँ पर रन्स बहुत ज्यादा मौजूद हैं। कासिम अकरम ये बेहतर दिखाई दे रहे हैं। नंबर 6 पर आज भी इनको खिलाया गया। अभी हाल ही में जब ये पाकिस्तान शाहीन के साथ जिम्बाब्वे और उसके बाद श्रीलंका गए थे जूनियर एशिया कप खेलने के लिए, तो वहां पर भी ये नंबर 6 नंबर 7 पर खेलते हुए नजर आते। एक मैच में नंबर 8 पे इनको जिम्बाब्वे में बैटिंग मिली थी। ये उससे बहुत बेहतर बैट्समैन है। कोचेस को इस बात का एहसास करना चाहिए कि अगर किसी खिलाड़ी में आपको पोटेंशियल नजर आ जाता है, जो कि इनमें था, क्योंकि ये पाकिस्तान की अंडर 19 टीम के कप्तान थे और वहाँ एक मैच में इन्होंने सेंचुरी और 5 विकेटें हासिल की थी, तो ऐसे खिलाड़ियों की जो डेवलपमेंट है वो शायद ये इससे बहुत बेहतर बैट्समैन है। नंबर 6 से ये ज़्यादा बेहतर बैट्समैन है। और फिर इनके मिडिल ऑर्डर में जो 3 बाएं हाथ के बैट्समैन हैं, इब्तिसाम, उमर सिद्दीक और हुसैन तलत, इसलिए भी इनको उनके दरमियान इस्तेमाल करना और ज़रूरी हो जाता है कई बार, क्योंकि दाएं और बाएं हाथ का जो कॉम्बिनेशन है उससे मुश्किल हो जाती है बॉलर्स को। अभी ये वाइड इसीलिए हुई थी अली असफन की कि दाएं और बाएं हाथ के बैट्समैन को एक वक्त में उनको बॉलिंग करना पड़ी। 121 पर 4, 122 पर 4 दादा। आज सिर्फ 3 ओवर्स के बाद खुरम शहजाद को हटा दिया गया था बॉलिंग से, तो पुरानी गेंद पर अभी इतना ये मौसर लगे नहीं है। नई गेंद पर कई बार अनप्लेएबल हो जाते हैं। इनका बड़ा हाथ था फैसलाबाद को कायदे-आज़म ट्रॉफी के फाइनल तक लाने में। फ़हीम अशरफ जो है उनको 3 ओवर्स के बाद हटाकर खुद बॉलिंग करने के लिए आए, उन्होंने विकेटें हासिल की और अब ये वापस आ गए पवेलियन एंड से ही बॉलिंग करने के लिए, लेकिन उतनी काट नज़र नहीं आ रही निस्बतन पुरानी गेंद के साथ। एग्जैक्टली और मेरे ख्याल से उस वक्त का जो फैसला था वो बेहतर था कप्तान का। तमाम तीनों पेसर्स ने अच्छा रोक के रखा और इस वक्त माइट बी कि वो कहीं ना कहीं उनको टेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो स्पिनर्स हैं अब इस वक्त फैसलाबाद की तरफ, वो कहीं ना कहीं जो रन्स हैं वो दे रहे थे। काफ़ी आसान हो चुका है पिच भी और उस पार्टनरशिप का जो कॉन्फिडेंस है वो अब हमें नज़र आ रहा है इन दोनों की बैटिंग में भी, कि आसानी के साथ अपने शॉट्स जो हैं वो तमाम इतराफ खेल रहे हैं ग्राउंड के। स्क्वायर लेग डीप है, मोहम्मद अली लॉन्ग लेग बाउंड्री पर, अरहम नवाब है। अच्छी डिलीवरी, इस बार पेस बाउंस शस्तर रह गए। कासिम अकरम लेग साइड में जो है ये बाउंड्री बड़ी है, लेकिन क्या ये पुल शॉट खेलने के लिए जाएंगे कासिम अकरम? लेकिन इस लेंथ पर इनको परेशानी हुई। सोचा था क्यों ना गेंद को थर्ड मैन को खेला जाए, और यहाँ पर गलती करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि 27वां ओवर है और रन्स के एतबार से बेहतर है। तकरीबन 4.5 रन पर ओवर की रफ्तार से अब तक रन बनाए हैं। इसको थोड़ा सा कैपिटलाइज करना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे जैसे आखिरी ओवर आएंगे और दोबारा से जो बॉलर्स हैं, इनफैक्ट पेसर्स, फ़हीम अशरफ, उनके भी 5 ओवर हैं, अरहम के पास 5 ओवर हैं, फैज़ान के 6, तो किसी एक आध बॉलर को भी पिक करना होगा कि जिसके अगेंस्ट वो थोड़ा तेज़ खेल सकें।
ये आनम नवाब को आज जिन्होंने हदफ बनाया था, उनके 5 ओवर्स में जो 29 रन बनने की वजह भी ये थी कि उनको टेक आउट करने चले गए थे लाहौर के बैट्समैन, क्योंकि जानते थे कि पेस के सामने रन आसानी के साथ आ नहीं रहे थे। अलबत्ता अब बन सकते हैं क्योंकि सीम मूवमेंट जो है अब वो नहीं रही है इस पिच से। एक रन बन सका। हुसैन तलत जो हैं ये मनूवर करने के लिए नहीं जाने जाते हैं। सामने का इलाका बिल्कुल बाउंड्री का खाली पड़ा हुआ है, दोनों तरफ जो एक्स्ट्रा कवर के फील्डर हैं उनके दोनों जानिब इनके पास चौके का ऑप्शन है। इसके अलावा जो है मिड विकेट के पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं। खासे बड़े गैप्स भी थे, लेकिन वो बैटिंग में साजबाज करनी आनी चाहिए बैट्समैन को, अभी तक वो नज़र नहीं आई इनकी बैटिंग में हुसैन तलत की। इसलिए हाथ पांव मारते रहे, गेंदों और रन्स के दरमियान फ़र्क भी ज़्यादा है। 47 गेंदों में इनके 29 रन हैं, 125 पर 4। वेल 39 रन्स की पार्टनरशिप है, 44 डिलीवरीज, और इन दोनों को थोड़ा कैपिटलाइज अप करना है क्योंकि जुनेद अली किसी हद तक बैटिंग कर सकते हैं। उमैद से उस दिन हमने देखा कि खातिर ख्वाह बैटिंग नहीं हुई। दो स्पिनर हैं, 2 फिंगर स्पिनर फैसलाबाद के स्क्वाड में। अली असफंद को जो है बहुत बाद में बॉलिंग दी गई। 24वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए आए। क्योंकि चौथे पेसर हैं मोहम्मद फैजान, उनसे 4 ओवर कराए गए। ये विकेट कीपर हैं जुनेद अली, इनको अभी खेलने के लिए आना है। पिछले मैच में इन्होंने बेहतर बैटिंग की थी लाहौर ब्लूज के लिए। उसे तारिक साहब, अली असफंद का जो बॉलिंग स्टाइल है स्पिनर का, वो काफ़ी ज़्यादा बाजूज हैं। वो राइट लेफ्ट करते हुए आते हैं। पॉल एडम्स एक साउथ अफ्रीका के बॉलर थे। लेकिन ये इतना ज्यादा रॉन्ग फुटेड नहीं होते। पॉल एडम्स जो हैं वो अपने उल्टे पांव पे चले जाया करते थे, वो रिस्ट से बॉलिंग करते थे। ये जो है फिंगर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जुल्फकार बाबर से ज्यादा मुतासिर लगते हैं, जो पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर थे। इस दफा काफी वक्त मिला और फाइन लेग का फील्डर दायरे के अंदर है। और ये बेहतर हिकमत अमली है कि आप अपने फील्डर्स को इस वक्त सर्कल के अंदर रखे हुए हैं। ये अलबत्ता जुल्फकार बाबर की तरह इनको उतनी ओवर स्पिन नहीं मिलती जो कि जुल्फकार बाबर जो हैं वो, उनकी ओवर स्पिन जो है वो बहुत खतरा बन जाया करती थी बैट्समैन के लिए। देखिए असफंद राइट लेफ्ट, उसके बाद जो इनका रिलीज है काफी अपील थी, लेकिन इम्पैक्ट लेग साइड पे था, जिसकी वजह से अलीमदार ने इसको रिजेक्ट किया। 28 ओवर गए, 128 पे 4। पहला गेम जो लाहौर ब्लूज ने खेला, ओपनिंग का अगर हम देखें तो कोई मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने इस दफा अच्छा रिप्लाई किया इन कंपैरिजन विद द फर्स्ट गेम।
हाँ, अभी तक किसी ने 50 रन नहीं बनाए हैं लाहौर ब्लूज के लिए दोनों मैचेस में। हुसैन तलत के पास मौका है, कासिम अकरम जो है इनमें ये सलाहियत है। यहाँ 240 रन बनने चाहिए इस पिच पर। जिस तरह की गेंद बल्ले पर आ रही है, आउटफील्ड खासी तेज है, एक तरफ बाउंड्री भी ज्यादा बड़ी नहीं है कासिम अकरम के लिए। इस वक्त ऑफ साइड की बाउंड्री बड़ी नहीं है। रन्स आज जो हैं वो ज्यादा बनने चाहिए। पिछले मैच में 199 रन्स ही बना सकी थी लाहौर वाइट्स की टीम और जवाब में 132 रन्स बनाए लाहौर ब्लूज ने। मैच बिल्कुल एकतरफा होकर रह गया। पहले दिन जो चारों मैचेस खेले गए चारों ही खासे लो स्कोरिंग रहे। कोई बड़ी इनिंग्स किसी बैट्समैन से इनफरादी तौर पर भी हमने नहीं देखी। मीरपुर में जहाँ पर कराची को शिकस्त का सामना करना पड़ा वो भी लो स्कोरिंग मैच था। फैसलाबाद और मुल्तान का मैच यहाँ शोएब अख्तर स्टेडियम में हुआ। एबटाबाद का मैच भी लो स्कोरिंग रहा जिसमें रावलपिंडी की टीम कम स्कोर करने के बाद जीत गई फाटा को। शॉर्ट पिच बॉल था, इसको खेल दिया स्क्वायर लेग की जानिब। जब भी कहीं पे भी इवेंट का आगाज होता है तो यकीनी तौर पर जो प्लेयर्स हैं उनका माइंड माइट भी इस तरह का हो कि नवंबर का महीना है, थोड़ी बहुत खून की जरूर होगी तो माइट भी अर्लियर हो, बॉल हल्का फुल्का हिले। 1 फॉर द ओवर। तो कहीं ना कहीं कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है मौसम का वो भी प्लेयर्स की जो कारकर्दगी है उस पर असरअंदाज होता है। देखिए बैक ऑफ लाइन बॉल था और अंपायर ने इसको 1 फॉर द ओवर करा दिया। अब तक विकेटलेस हैं खुरम को के 30 रन इनफैक्ट दे चुके, लेकिन ज़्यादातर इन्हिसार जैसे तारिक साहब कह रहे थे कि 240 प्लस होना चाहिए इस विकेट पे और इस विकेट में रन्स हैं और काफ़ी आसान हो चुकी है ये विकेट। इवन अगर हम देखें स्पिनर्स के अगेंस्ट आसानी के साथ रन्स बने। लगभग ये दूसरी पार्टनरशिप है जो कि 40 प्लस में जा रही है। अभी भी मिड ऑफ मिड ऑन ऊपर है। टच शॉट डिलीवरी ऑन साइड पे डीप में मिड विकेट का एरिया है, लेकिन स्क्वायर लेग पे अली मौजूद, उन्होंने इसको प्रोटेक्ट किया। थोड़ी सी इंटेंशन जरूर है कि अब कहीं ना कहीं हल्का सा गियर चेंज किया जाए। टुवर्ड्स एंड ऑफ द इनिंग रन रेट को भी इंप्रूव करना होगा। इसके साथ डॉट बॉल और खुरम का ओवर हुआ कंप्लीट। 29 ओवर गए, 133 पे 4। तारिक साहब 16 ओवर का इस वक्त लगभग खेल बाकी है। लीगल डिलीवरीज और जुनेद की बैटिंग काफ़ी बेहतर थी पिछले मैच में, उमैद से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उस्मान कादिर भी चूँकि बॉलर हैं, हुनैन सलमान। और ये वो ओवर्स हैं जहां पर स्पिनर्स को इनको आड़े हाथों लेने की ज़रूरत है क्योंकि 4 ही फील्डर बाउंड्री पर हैं 36वें ओवर तक। तो ये दोनों खिलाड़ी जो हैं ये बढ़ चढ़ के रन्स बना सकते हैं। इस वक्त जो बाउंड्री राइडर हैं ऑन साइड में डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। डीप मिड विकेट के फील्डर खासे वाइड हैं। फिर ऑफ साइड के स्वीपर जो हैं ये स्क्वायर के बहुत सामने खड़े हुए हैं एक्स्ट्रा कवर की तरफ। मिड ऑफ पर बाउंड्री पे आराम है तो इनको थोड़ा सा मुतहरिक होना पड़ेगा स्पिन के खिलाफ दोनों बैट्समैनों को। और
यहां हुए कासिम अकरम, 2 रन का इजाफा उन्होंने किया। ये अच्छा स्वीप शॉट भी खेलते हैं स्पिनर को कासिम अकरम, इसलिए आसान नहीं होगा इनको बॉलिंग करना इस बड़े मैदान पर। और अभी देखा कि असवंत का जो बॉल है वह इतना ज्यादा ब्रेक भी नहीं हो रहा, स्पिन नहीं हो रहा, तो आसान है उनको अटैक करना। और इस बार जो है खासी देर तक हवा में रही, अपने बाएं तरफ चले गए थे। फॉलो थ्रू में अली असफन लंबे कद के हैं, इसलिए भी मुश्किल हुई नीचे झुक के कैच लेने में। हाँ, पिछले ओवर में भी गेंद तवक्को ज्यादा उछल गई थी, इस बार भी जल्दी खेल बैठे कासिम। देखिए रिटर्न का ही था क्योंकि आपने फॉलो थ्रू में बाएं तरफ जा रहे थे। ये अंडर 19 टीम में कासिम अकरम के मातहत खेल चुके हैं, कप्तान थे कासिम अकरम पाकिस्तान अंडर 19 टीम में अली असफंत के, इसलिए जानते तो हैं दोनों एक दूसरे को कि क्या क्या वीक पॉइंट्स हैं। और यही क्रिकेट की खूबसूरती है कि आप कभी नेशनल ड्यूटी के लिए, कभी आउट ऑफ कंट्री। ओह एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्त बॉल था, सरप्राइज किया बैटर को भी, लेकिन किसी हद तक खुशकिस्मत रहे यहाँ पर हुसैन। बाएं का रन, इसके साथ ओवर का हुआ इख्तिताम 138 पे 4। काफी सरप्राइजिंग बॉल था अली असफंत का, जो कि पढ़कर लेफ्ट हैंडर को छोड़ता हुआ निकल गया। विकेट कीपर के शोल्डर पे बॉल लगा, देखिए कितना हाइट था इस बॉल में। खुद भी असफंत जो है वो सरप्राइज हुए कि कहां से ये बीट हुआ एज। यहाँ लंबे कद के इनको बाउंस मिल रहा है अली असफंत को, इसलिए स्लिप जो है उसको काम में लाया जा सकता है। क्योंकि विकेट लेने के मुतालिक फहीम अशरफ को देखना होगा, सिर्फ 45 ओवर्स जो हैं वो सोच नहीं होनी चाहिए कि वहां तक जाना। 138 पर 4। वेल मिडिल ऑर्डर में अच्छी रेजिस्टेंस है इस वक्त लाहौर ब्लूज की तरफ से। पहले 40 रन बनाए उमर सिद्दीक ने, और इस वक्त हुसैन और कासिम इन दोनों की जोड़ी 50 रन प्लस पार्टनरशिप कर चुकी है, और इस 50 को क्विक 100 में बदलना होगा ताकि एक अच्छा टारगेट दे सके। आगाज बेहतर था फैसलाबाद के बॉलर्स के लिए, लेकिन दरमियान में जाकर स्पिनर्स जब आए तो लाहौर ब्लूज के बैटर्स को
मौका मिला कि वो रन हासिल कर सकें। सिर्फ 3 कामयाबियां अब तक, फ़हीम ने 2 और अरहम ने 1 हासिल की। अच्छी खुशगवार दोपहर है और बैटिंग करने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। गेंद ज़्यादा बेहतर नज़र आती है आपको, बॉलर के हाथ से जो सीम पोजीशन है उसको जज करना आसान हो जाता है। स्पिनर को खेलना और ज़्यादा आसान हो जाता है जब इतनी तेज़ धूप निकली हुई हो दोपहर के वक्त। रावलपिंडी की ये बेहतरीन ये टिपिकल बैटिंग पिच है रावलपिंडी की, जिस पर आमतौर पर बैट्समैन महसूस होते हैं, ख़ास तौर पर जिनको बैकफुट पर खेलना आता हो। जी एग्जैक्टली। हुसैन तलत, लेकिन फ़हीम अशरफ की अगर हम अब तक की बात करें तो कप्तानी अच्छी की, अर्लियर ऑन अपने बॉलर्स को अच्छा यूटिलाइज किया। ऐसे कट कर दिया, एक और रन के लिए विकेट्स के मुतालिक यहाँ सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप नहीं है। इनकी टेल जो है खासी लंबी है। उमैद आसिफ जो हैं वो 7वें नंबर पर खेलने के लिए आते हैं, 8वें नंबर पर, जो कि आम हालात में आपको 8वें नंबर के बैट्समैन लगते नहीं हैं। इसलिए विकेट के मुतालिक ये गौर व फिक्र जारी रखना होगा फ़हीम अशरफ को। ज़्यादातर जो कप्तान हैं जब ये पाकिस्तान कप खेलते हैं हमने यही देखा है कि वो 50 या 45 ओवर्स की फिक्र करते हैं, उनको पूरा करने की, ना कि विकेट्स की। एग्जैक्टली। और कुछ देर पहले आपने बात की अच्छा रन हासिल किया इस विकेट की रावलपिंडी की, तो नॉर्मली हमने देखा कि जो एवरेज रन है पहली इनिंग में भी वो 300 प्लस है। अगर हम 45 या वनडे की बात करें तो उस कंपैरिजन पे 140 रन बहुत कम लग रहे हैं। फ़हीम अशरफ आज पहली चेंज पर बॉलिंग करने के लिए आए थे और पहुंचते ही उन्हें धाक बिठाई। यहाँ इनसाइड एज पर बोल्ड हुए हाशिम, फिर कप्तान इमरान भट्ट को जाना पड़ा और यहाँ कैच आउट। ये तीसरी विकेट, ये अच्छा कैच लिया अली शान ने और इस तरह विकेट कीपर को जो क्लियर करने चले गए थे हुसैन तलत, एक बार फिर ये शॉट का अच्छा इंतखाब नहीं था। सेट होने के बाद ये वापस जाएंगे, मायूसी का सामना करना पड़ा हुसैन तलत को। जी और अली ने अच्छा रीड किया, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि जब बैटर शफल करता है तो विकेट कीपर अनसाइटेड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अच्छा ग्राउंड कवर किया, अच्छा टेक किया और फ़हीम अशरफ बीइंग अ कैप्टन, बीइंग अ बॉलर, मुस्कुराते हुए, ये खुशी का मौका है इनके लिए। हुसैन तलत डिपार्ट हुए 35 रन पे और यूं 5वीं विकेट गिरी है 140 पे लाहौर ब्लूज की। इस इनिंग्स की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का खात्मा हुआ। शमर हुसैन तलत ने कासिम अकरम के साथ जो उनका इत्तेहाद था उसमें बने और जुनैद अली को आना पड़ा है। ये अच्छे बैट्समैन है, एक सेंचुरी बनाई हुई है। जुनैद अली मुख्तलिफ पोजीशंस पर खेलते हुए नजर आते हैं इन दिनों। फ्लोटर के तौर पर भी कप्तान इनको इस्तेमाल करते हैं। अच्छे बासलाहियत विकेट कीपर बैट्समैन, विकेट कीपर बैटर कहना चाहिए रादर। एग्जैक्टली।
बिल्कुल आपने बजा कहा, और इनके लिए भी स्ट्रेट अवे एक स्लिप रखी है, जो कि एक अच्छा फैसला है, क्योंकि ऑलरेडी अभी एक सेट बैटर आउट हो चुके। थोड़ा शफल किया ऑन साइड पे खेलने के, लेकिन प्रॉपर्ली इनोवेट नहीं कर पाए। बल्ले पे सही बॉल नहीं आई, जिसकी वजह से स्पीड जो थी शॉट की वो इतनी ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई। ये अच्छी बैटिंग नहीं थी। ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं हुसैन तलत, सामने जो है ये शॉट लग सकते थे। ये गेंद ज्यादा जो है ये आगे गिरी हुई गेंद थी, आसानी के साथ इसको कवर्स की तरफ खेला जा सकता था, मिड ऑफ की तरफ, मिड ऑफ के ऊपर से भी हिट लगा सकते थे, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने घी जो है वो तिरछी उंगली से ही निकालने की कोशिश की। 141 पे 5। मिडल प्लीज। सुनिए यशवंत, सलीम नीचे रहा, चले नहीं। अच्छी बॉलिंग हो रही है इस वक्त। दोनों जानिब अली असफंद उम्दा स्पेल कर रहे हैं, उन्हें इस पिच से बाउंस मिल रहा है। एक बार फिर अब लेंथ जो है ये ज्यादा अच्छी नहीं थी, और बैकफुट पर खेला जुनेद ने, जो उनके पसंदीदा शॉट्स में से एक है। अच्छा कट शॉट। एग्जैक्टली, और वक्त भी अच्छा है इस तरह के शॉट को खेलने के लिए। प्रेशर रिलीज किया, वेट किया इस बॉल का, हाइट को अच्छा जज किया, और प्लेसमेंट बहुत खूबसूरत। दोनों फील्डर्स के दरमियान से अच्छी टाइमिंग 4 रन्स के लिए। अभी नए बैट्समैन मैदान में उतरे और कोई फील्डर उनके आसपास नहीं है। ये एहसास दिलाने के लिए कि बॉलिंग टीम आपको आउट करना चाहती है। अब जो कवर के खिलाड़ी हैं इनको निस्बतन आगे बुलाया गया। नए बैट्समैन को ये एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी विकेट के दर पे हैं हम। इसके लिए आप स्लिप रख सकते हैं, जितना अली असफंद को आज इस पिच से उनको मदद मिलती रही है। जी एग्जैक्टली, उन्हें अच्छा बाउंस भी मिल रहा था उनकी बॉल पे। इवन विकेट कीपर सरप्राइज हुए जिस वक्त बॉल जो है के शोल्डर पे लगा था उनके पिछले ओवर में। यहाँ जो क्यों गई गेंदें जो है हमने देखी हैं स्पिनर की, वो कहीं कहीं रुकी हैं, तो जो हुरैरा है इनको भी ये निस्बतन जो है ये आगे ला सकते हैं। एंगल को कट करने के लिए भी अभी भी नए बैट्समैन के लिए वो ज्यादा पीछे खड़े हुए हैं। मोहम्मद हुरैरा मिड विकेट पे, उसे गेंद के अलावा ये अच्छा ओवर था अली असफंद का। 145, 5 खिलाड़ी आउट। Beautifully played down the ground. Qasim Akram is playing on a different pitch. The way he's just hitting those ball deliveries through the line, very heartening to see. It was in his zone, placed it beautifully. It is a similar shot that he attempted in the last game, but could not quite time it. But this is a different pitch, a drier pitch. Executing it beautifully.
It has been a good day so far for Fahim Ashraf. Winning the toss, bowling first, getting wickets also, 3 for 27 in 6.2 overs for the captain himself. The team who qualified for the final of Quaid-e-Azam Trophy lost their first game against Multan, against the brilliance of Sharjeel Khan, who scored 100 against them. He's bowled a maiden also, economy 4.35, which is impressive. 149 for 5 at the moment. Lahore Blues. Time to welcome Mr. Salman Butt alongside me. Salman, what is a good total from here on for Lahore Blues? Thank you, Ali. It's still 12.3 overs to go and 150. The wickets column is the place where the trouble lies. And if they can add another 100, I think it will be a decent score to defend, especially from the position they are in. It's just a matter of being patient at the right times and being selective about the shot selection. And that quality definitely has been missing at times. Lahore Blues batters opting for shots which were high in risk and less in purchase. And this one will be a 4, flicked away through mid-wicket and an easy boundary. This time Qasim Akram or Junaid is the one who plays this stroke. And a lot of dependence on this partnership now for Lahore Blues. This one was on the pads, easily placed through mid-wicket. There wasn't any fielder in that mid-wicket region. Yeah, this is a wrong length. Just inviting the trouble by bowling up to the batter. And Junaid, we know that he can bat. He's got that potential in him. He's a wicket-keeper by nature, but definitely can bat. Scored 100 in Quaid-e-Azam Trophy. Slip still in place for Fahim Ashraf. Good run. Very good running between the wickets. Realizing the fielder, Aram, is coming from the circle's end, playing it with soft hands and running straight away. Good cricket. Yes, that's absolutely good cricket, because once you start running these singles, the fielders tend to come up. And once they're up, it's easier to hit over them for bigger runs. And this time, Junaid made early call and good response by the non-striker. So the slip is out now, and Fahim Ashraf, he's just asked his third man to go wider. This one was on the legs and placed. Muhammad Ali makes ground and keeps it to 1 only. That's a great throw, this one. Fast bowlers have strong arms, Ali. That is why he's standing at fine leg area. 33 gone. 156 for 5. .156 at the moment, losing 5 wickets. The Lahore Blues, Umar Siddiq looked very good before he chose to play a wrong shot to Arham Nawab. Hussain Talat also looked good for his 35, but took a lot of deliveries, 57 deliveries for his 35 runs. And now it's up to Qasim Akram, how finishes off this inning alongside Junaid. Just ease it for one, too long off. Yes, if they can manage 3 or 4 singles and get the odd boundary, which is not a very hard task, keeping in mind the field restrictions, and the pitch definitely has eased up what it was when we started, and now it's much better for the batters. Although we can still see some grip, and it's not batting paradise at all. If you bowl in the right areas, the batters will need to work hard. Yeah, remember, Lahore Whites defended 199 runs in the last game. Lahore Blues were bundled out on 132. But these are different conditions. Sun is out since morning. Another easy single, this time down to long on. And it was very important for Umar and Hussain Talat to keep batting. And once their wickets fell, there we see both of them sitting and watching now. Now they can only watch. Look at this.
How can you do that when there is ample of gaps around in front of you? And this one spins from a very good area, edges, but sadly there is no slip. So will be 2 easy runs for Qasim Akram. Or Junaid, is it? They both look so similarly. So it's Qasim, the man who edged this one. So well bowled to Ali Aswan. And Fahim did not have a slip for him. This could have been a straightforward chance for the slips. So talking about Hussain Talat's dismissal, being such a senior player, knowing the in and out of the game, he needed to be there till the end for his team. And he is such a player that he can go big at the end. And 2 good overs of his can turn around the outlook of a total of any team. So he must believe in himself that he is such a cricketer. He only needs 2 good overs to turn everything around, and that difference that you saw between his runs and the balls could have been easily covered. 34 gone, 160 for 5 Lahore Blues. Did it hit the helmet? That's the question. Wanted to give it a full throw. Throws his hand at it. It was an expensive sweep shot that Qasim attempted. Was there to be hit on the leg side? Yeah, it did hit his helmet, at the, or rather the grill in front. That is why the physio is in. He's going to check that concussion protocols. Well, it's a spinner's ball, and I think it has hit the grill rather than the head. So I wonder if they can check an impact on the grill for concussion or not, because it doesn't seem that deadly dangerous. Somehow it has become that norm that every time the ball hits anywhere above shoulder height, or anywhere in the neck area or the head area or in front of the grill that you just mentioned, they need to follow those SOPs, need to check whether everything is in place. They need to check the helmet also. So all these things do matter. Looks all good. Qasim Akram is a strong lad. Yes, we are glad that everything is okay and good to go. Only if the shot selection was of premier quality, then these troubles would not be there. And that comes by batting long and long and long. So the more you bat, the better your shot selection gets. Playing on merit, you don't have these troubles. At times, it seems that these young boys, when they do not get easy runs, they start to premeditate, preempt what is coming and where they want to hit. And when the ball is not there, they seem out of shape, out of balance. And that is where the off-season is so important. The off-season needs to be made to count. What happens is these boys, they gather for 3 months, play the season, and then they are off to different places. So the bowling card here for Faisalabad, and Fahim Ashraf take 3 wickets, 7 overs he bowled, gave away 34 runs, and Aram took another. The rest bowled pretty economically, but have been wicketless. Muhammad Ali replaces Fahim Ashraf. 1 slip for him. He should run well for 2. Again, no, there was 2 available. This is the second time in this inning that Qasim Akram has denied a run that could have easily been converted into 2. So you got to run hard when boundaries are difficult to come. Played it with soft hands right between. He ran well, but Qasim Akram looking at the ball, not trusting the partner. In fact, both of them were not interested. Even Junaid was not interested in getting the double. Yes, that's pretty casual and certainly not professional. Certainly something that they need to do, but they just refuse to do that. This time around, just a nudge down to the 3rd and an easy single. It's very important to put the pressure on the fielders, and that's where the lacking Lahore Blues approach.
Earlier there was an incident when the ball went right between the two fielders and they ran just one run. Again, Salman, look at that, 116 dot deliveries. That's almost 20 overs, almost. Yes, it's understandable in the power play, the first one, because all the fielders are in the circle looking to block the one. So dot balls in that region are much more understandable. But now when the field is open, then obviously it's something that hurts the batting side. And this is something that the batters need to take care of. Strike rotation matters a lot. It disturbs the bowling side, and also the bowler has to just keep adjusting all the time and creates more opportunities for big runs. The projected score 211 if they go at the same rate, but definitely it will increase with the time and with the overs to come. At the moment it's the 35th over. This is the last recognized partnership, although Umaid Asif can bat, Usman Qadir can bat, but it's these two who have to score the bulk of runs from here on. If they have to get what Salman was suggesting, 250, this is a good run. But that was an easy run available there. Yes, Ali, it's amazing how many number of times we have seen in this competition and also at the bigger stage that teams getting dismissed inside the allotted overs. And especially if we see Pakistan in the World Cup, 4 times out of 6, they've been all out. And here in the first round, we see so many teams getting all out. And again today, a side losing 5 wickets were inside, you know, those initial 20 overs. And that is not a good sign. The batters, the top 6 need to take responsibility of batting the innings. Is it the skill, Salman, the ability to do that? Oh, beautifully pulled. This is signs of some aggression, but not quite timing it and placing it. But this time he runs well. Gets back to complete the double. Yes, maybe he just heard you about his running and now he's careful. But yes, it absolutely has to do a lot with the skill levels. But also, very importantly, how you perceive the game. How much you actually know the game. What is your understanding of the game? How you pace your innings. What path will take you to a bigger total. That is what you need to understand as a batter. And what will your own pace be on that particular wicket against that particular bowling lineup. These are the things that you need to know. In the air and taken. Again, when Qasim Akram was looking so good, his lofted one straight to the cover fielder. He is definitely disappointed. Probably the ball not coming onto the bat as he expected. Held up and got the wicket. Yes, Lahore Blues lose another one, and Qasim Akram this time. And again, it was a poor stroke. You can't blame the pitch if you do not have the mindset to bat or to go all the way. This is a loose stroke. Playing far away from his body and then looking disappointed means nothing. And all the batters who have got set and crossed 30 and then played a poor shot have themselves to blame. Because once you have spent time on the pitches, then you need to be responsible for the team score. You just cannot make your own 30, 35 and then think that others will come. So it's 165 for 6 Lahore Blues at the end of 35. Just when the partnership was building, they've given it away. I say given it away because they've played a wrong shot to get out. Umaid Asif has got that experience behind him. He has that potential, that skill of hitting big. We've seen that happen at PSL. But at the moment, it's Junaid facing Ali Asfand. Beautifully bowled. Wow. That spun sharply from the right area, right in front of the batter. Beautiful. He
gave the ball that air, and then the response from the pitch was terrific. So if you are prepared to flight the ball, then definitely the pitch is responding. And that is how this ball was beaten. There we see. And great bowling. Aswan. Now we see a slip in place after that turn Ali Asfund got. This is where Fahim Ashraf has been spot on. He's not scared to bring in spin and extra fielder in. Bochi Aswan. Yes, and regular fall of wickets also allows the opposition captain to keep attacking, to keep going with those catching options. Oi, yaar. This one again spinning, and Umaid Asif, where are you going? He's just going too far ahead of his body. Just needs to wait. Wow. Poor him must be thinking the last time that I came to bat here, it was seaming and swinging. And now he's come, it's spinning. Where do we go? What do we do as all-rounders? You got to adapt, and you got to find out a way. And that is where your experience counts, and he has been there, done it all. 36 bowled now, 166 for 6, Lahore Blues. Qasim Akram was the last man dismissed. Again, a casual shot, looking to go big, looking to go over that extra cover fielder. But he could not manage that elevation. Another example of that premeditation that we talk about. He just went with his hands, hoping that the ball would be pitched in his zone. It wasn't. And in the end, he just could not stop what he had in his mind. He could not adjust. And as a result, he lost his precious wicket. And at this time, when he could have been very valuable with his presence on the pitch. Absolutely spot on. Wrong time. Well, there's never a right time to lose your wicket, but this was definitely a wrong time as far as the team is concerned, the team's goal is concerned. And now you've just put your team on a back foot where you should have been looking to score runs and score big, and as Salman suggested, get to the 250 mark. But then again, losing the wicket of Qasim Akram will dent their chances to get to that 250 mark, which I believe should be a good total on this pitch or in these conditions. But Salman, again coming back to the same question, the skill, is it the pressure that is these days on batters that you need to be different, you need to have that impact, or you need to play shots, too many shots, not realizing the game, where the team is going, what the team goal is, where the game is going? Are they under pressure with that modern day approach? Ali, this modern day thing has been over elaborated by those who've hardly played cricket. And that's the unfortunate part about it. If you have a look around, if you don't find the answers, just look around what the best in the world are doing. And what they are doing is just batting normal cricket. They're playing normal cricket, just playing according to the merit of the ball, keeping things simple. So just having in mind modern cricket means nothing unless you know how to react to a particular delivery. And for that, you need to keep batting, keep adapting. You need to be technically sound, and you need to respect the good balls. This one is driven. This time, 2 mid-off will be 1 only. If you have a look around the modern greats, from modern cricket, let's move on to the modern greats. Kane Williamson, Babar Azam, Steve Smith, Virat Kohli, Shubman Gill, Rohit Sharma, and people like that. They play normal cricket. They hardly play a fancy stroke, but still they get the results. They play with good strike rates. They run hard, they create gaps, they create angles. And basically, they do the smart things. They're intelligent batters, they read the game, and they're aware of the situation. And all the other ones who are more related to the modern game that we talk about, the power hitters, they have their role, which is an impact sort of a thing for a certain period of time. But if you're playing the longer format, especially the one-day format, 50 overs is 2.5 times a T20 game. So you need the required patience to go through this path and get to a total. If you see South Africa scoring big runs in the World Cup, the first 10 overs they play is pretty much
according to the merit, conventional cricket. And once they get going, then they are hard to stop. Definitely a different approach you require in a one-day game. Yeah, we've been talking about those impact players, somebody like Glenn Maxwell, Stoinis, even Hardik Pandya. I call him an impact player who comes and plays for few deliveries, few overs, and change the course of the game. That is why I said that is the pressure these cricketers have these days, that you need to adapt to that, especially players coming down the order at 5, 6 or 7. In one of the games, India lost early wickets and Surya Kumar Yadav came in. And he scored 47 of 50 plus deliveries. And if he was normal himself, he would have got 90 or 100 runs in 57 balls. But he showed adaptability. Another dot ball, 37 gone, 168 for 6. $168 for 6 at the moment. It has been hard for the batters, but whenever found the opportunity, they've scored runs. But this one was suicidal from Ibtisam, running straight away. Didn't realize that he's hit it hard straight to the fielder. Umar Siddiq did look like somebody who was very comfortable to score runs. The intent was there to score runs whenever the opportunity was provided. He played those shots, luck also favoring him. Arham Nawaz, he was very good with the footwork, but then this shot again against the run of play. Lost his wicket, he was disappointed. Qasim Akram also came into the party. He was looking really good, scoring runs. They've been losing wickets on regular intervals, Lahore Blues, and that is why we see those breaks coming into as far as run scoring is concerned. Yes, losing wickets at the regular intervals has cost them that ability to go after the ball. And that thing has been hampered time and again. Whenever there's been a little bit of partnership that could have developed into a bigger one, they have just lost the wicket at that precise time. And that is where Faisalabad have been excellent. They've picked up wickets whenever they've, they've avoided all the partnerships. And they've bowled well, fielded well as well. Now they just need to play the overs, maybe get another 50 or 60 runs if possible, get to 225, 230 odd, and then bowl well, field well. And hope that Faisalabad too make the same mistakes. And they must realize that Faisalabad side, they're all stroke makers in their side. If you look at their batting lineup, other than Mohammad Huraira in the top order, there's Mohammad Fizan. We know that he's a dasher. Mohammad Salim, he's a technically correct batter. He hits them hard. Asif Ali, we know his capabilities. Irfan Niazi is also a hitter. So yes, one must believe as a Lahore Blues fast bowler or a spinner or the captain that they do have that thing, that flair in Faisalabad's bowling. So if you can get a couple of wickets early on, Huraira and Fazan, and to my liking Mohammad Salim, then you're definitely in the game. Remember, they were bowled out on 132 Lahore Blues when chasing a total in the first game against Lahore Whites. They were just chasing 199, but did got bowled out. It's end of 38, 171 for 6. And looking at the 15 of Faisalabad, there's Ali Waqas and Waqas Maqsood, who've been brought in. Waqas Maqsood, well, he travelled last night. He was not able to play. Look at the Lahore Blues dugout. Look at the new shades of Haji Don. He is looking great. He has been the man who's throwing around with the stick to these batters. Maybe he's giving them too much loose stuff, and that's why they're struggling inside. So it has all come down to this man with shades, Mr. Dawn. Khurram Shahzad is back for his last 3 overs. Nicely punched. Umaid Asif is a very handy cricketer,
And he is someone who can go big, can hit the ball really long. And we have seen that in the previous years. He just needs to have a good time today. And he is maybe the person who gets a quick 40, 50 odd and gets them to a respectable total. And he knows what he wants to bowl at, being the bowler himself. Yeah, he would know by now what the good total is on this pitch, what needs to be done. From here on, there are still 7 overs to go. Edged. There's no one there. No one is stopping that one. Lucky boundary for Junaid. Thick outside edge. Intent is clear. They want to go after it. Length delivery. Just gave himself room. Flashed hard. And if you want to flash it that hard. Yes, he wanted to hit it over mid-off or cover region. And he made room for himself. The ball was a bit short, but he went through with the stroke. And in the end, getting the desired result. Not the desired area though, but still handy 4 runs for the team. The thinking cap is on. Captain standing with the bowler. What next? And surprisingly, Salman, the over before, Muhammad Ali was bowling and he had a slip on. Slip was there, but Khurram Shahzad, who swings the ball more than Muhammad Ali does, there was no slip. Had there been a slip, it would have been a straightforward chance for him. But these things do happen. Well, even for Muhammad Ali, the slip was just there for one delivery. And then it disappeared. So I think it's 7 overs to go, and hardly we find captains here who go all out to take wickets and keep slips till that long. It's like you say, the modern day thinking. At times they change the bowlers and keep their overs for the end, whereas they are picking wickets at that precise time. So we don't know what to expect, but at the moment Lahore Blues are struggling. They needed their batters to be there at this time to take advantage of the situation. There we see Mr. Usman Qadir, and he can also hit the long ball, but he hasn't done justice to his batting talent. Nice hairstyle though. Couple of more runs. No, just settle down for 1. Good cover up by Muhammad Ali. Had to run from long way. Deep square leg. Yeah, I've been a huge advocate of modern day approach and modern day cricket. I still believe the world is changing, so you got to be changing with the world to compete with the world. I think that has been missing. The intent has been missing in Pakistan cricket. I absolutely agree, Ali. You have to change. You have to score quickly. But the only way to score is to stay on the wicket. You can't score sitting in the dressing room. Absolutely. So you need to learn a way where you can score and stay at the wicket. That's the only way it happens. Absolutely. So my only point is that if you are technically strong and if you have got most bases covered, you are more likely to be effective at the bigger stage. It's just that if you do not prepare technically your players, they're more likely to get exposed at the bigger level. Absolutely, 100%. The intent should be there, but also the intent should be there to stay on the crease. And that can only happen when you are technically correct. Spot on. 39 gone. 178 for 6. Acha boys. छह ओवर से खेल बाकी रह गया है। अली असफंद अपनी पहली विकेट की मुतलाशी हैं। ये अच्छा शॉट खेला, खासा बड़ा गैप मौजूद है इस वक्त लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान, और उसका खूब फायदा उठाया। बहुत रीच है उमैद आसिफ की।
जहां फ्लाइटेड डिलीवरी थी अली असवंत की और भरपूर फायदा उठाया अपने कद का और अपनी रीच का। थ्रू द लाइन खेले इस गेंद को और गैप में खेल के 4 रन हासिल किए। इस ओवर का आगाज बाउंड्री से किया है उमैद आसिफ ने और ये वेलकम बाउंड्री है लाहौर ब्लूज की टीम के लिए। पिछले मैच में 132 पर आउट होने के बाद ये निस्बतन बेहतर कारकर्दगी है लाहौर ब्लूज की, लेकिन जब हम इस पिच को देखते हैं, क्योंकि आज हालात यकसर मुख्तलिफ हैं, 48 घंटे पहले की निस्बत ज़्यादा तेज़ धूप निकली हुई है और उसकी वजह से पिच जो है ये बैटिंग के लिए और बेहतर होती जाएगी, तो ये स्कोर कम लगता है। यहाँ लाहौर वाइट्स की टीम 199 रन बनाकर मैच बआसानी जीत गई थी, लेकिन आज लगता है कि मुश्किल होगी। जी हाँ, पिच के बिहेवियर के अलावा जिस तरह बैट्समैन आउट हुए, क्योंकि काफी तजर्बाकार बैटिंग लाइनअप है, खास तौर पे जो डोमेस्टिक क्रिकेट का तजर्बा है, इमरान भट्ट, उमर सिद्दीक, हुसैन तलत, कासिम अकरम के पास, इनसे बेहतरी की तवक्को थी, इनसे ज्यादा अरसे तक विकेट पे ठहरने की तवक्को थी लाहौर ब्लूज की मैनेजमेंट को। यहाँ पहले स्लॉग स्वीप के मुतालिक सोचा, फिर अपने शॉट को चेक किया ऑफ साइड में, मिस फील्डिंग पर 1 रन हासिल किया। यहाँ खास बात यह है, जो काबिल जिक्र बात है, कि उमर सिद्दीक हूँ या फिर कासिम अकरम, हुसैन तलत, जो नाम आपने लिए जिनका तजुर्बा था, ये सब जो है बहुत देर तक विकेट पर ठहरने के बाद आउट हुए और इन्होंने भी ये खेल दिया है हवा में शॉट और वहां पर लेट रिएक्ट किया था स्क्वायर लेग के फील्डर ने, इससे खुश नहीं है अली असवंद, क्योंकि विकेट हाथ से गई और साथ साथ 4 रन भी। ऑन साइड पर हवा में खेले काफी देर तक इस गेंद को उमैद आसिफ। निस्बतन तेज गेंद था और सही तरह मिडल नहीं कर पाए थे उमैद, लेकिन उसके बावजूद गेंद दोनों फील्डर्स के दरमियान आकर गिरी। बेहतर फील्डिंग एफर्ट की तवक्को की जा सकती थी, खास तौर पे बाउंड्री रोकने के लिए जाना चाहिए था। ये लेट आए मोहम्मद सलीम और दूसरी जानिब जो मोहम्मद फैजान थे, जहां वो ज्यादा बेहतर पोजीशन में होते, क्योंकि गेंद उनके जो है ये दाएं तरफ जा रही थी, तो वो बेहतर पोजीशन में होते इसको कैच करने की। 46 आज के दिन का बेहतरीन स्कोर है जो उमर सिद्दीक ने किया। उन्होंने 41 गेंदें खेली, हुसैन तलत 57, कासिम अकरम भी 44 गेंदें खेलने के बाद आउट हुए। ये ज्यादा दुख की बात है और गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के आउट हुए हैं, क्योंकि सेट होने के बाद जो शॉट उन्होंने खेले उनकी सताइश नहीं की जा सकती। हुसैन तलत स्कूप करने चले गए, कासिम अकरम, उमर सिद्दीक जो हैं इन्होंने भी गलत शॉट का इंतखाब किया। जी हाँ, तो खास तौर पे जितने तजर्बाकार प्लेयर हैं उनका सेट हो जाने के बाद जिस तरह की शॉट्स खेल कर आउट हुए, यकीनी तौर पर एक मुजरिमाना फेल है और आप पाकिस्तान में एक टॉप लेवल की लिस्ट है क्रिकेट खेल रहे हैं और जितना आपका तजर्बा है आपसे बेहतरी की तवक्को है, क्योंकि ये तमाम यंगस्टर जो मैचेस को देख रहे हैं, जो आपके साथ खेल रहे हैं। इसे कट किया, गेंद विकेट कीपर के सामने से चली गई। थर्ड मैन पर फील्डर जो हैं फाइन थे, लेकिन इतने नहीं कि वो चौका बचा सकते। जी हाँ, ये जुनेद अली की तरफ से एक लेट कट था, बैकफुट पर गए और अगर इस स्लिप पे फील्डर मौजूद होते तो यकीनी तौर पर एक बासानी कैच था, लेकिन एक डेलिबरेट कट यहां पर और एक और बाउंड्री का इजाफा लाहौर ब्लूज की टीम के लिए। तो इन आखिरी 28 गेंदों में जुनेद और उमैद की यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा बाउंड्रीज का इजाफा किया जाए लाहौर के टोटल में। लेग साइड में रन का मौका है, कोई फील्डर नहीं, लेकिन ये पुल करने चले गए। इस पिच में इनकी तवक्को से ज्यादा बाउंस है, इसलिए लेट हो रहे हैं। ये पिछली दोनों गेंदों में उनमें से एक विकेट के पीछे गई है, एक सामने गई है, लेकिन दोनों
बार जो हमने देखा कि जुनेद जो है वो लेट हो गए गेंद पर बाउंस की वजह से। यही समझदारी से गेंदबाजी कर रहे हैं खुरम शहजाद की बार, उन्होंने फिर रफ्तार में रद्दोबदल किया, तेज अंदाज से गेंद को पटक रहे हैं विकेट पे खुरम शहजाद। और जितना तजर्बा इनके पास भी है, आप इनसे वैरायटीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रफ्तार में रद्दोबदल, लेंथ में रद्दोबदल। एक बार फिर लेट हुए जुनेद। अब तक ये बेहतर बॉलिंग की कोशिश है फैसलाबाद की जानिब से, और उनकी यही ख्वाहिश होगी कि इनको 230 तक महदूद किया जाए। इसके बाद उस्मान कादिर को खेलने के लिए आना है। हुनैन शाह, सलमान इरशाद, ये दो टिपिकल टेल एंडर हैं नंबर 10 और नंबर 11 पर। इस पार्टनरशिप को खत्म करना जरूरी है जल्दी। खराब गेंद खुरम शहजाद की, और अली शान ने बिल्कुल बाएं जानिब गिरते हुए इस गेंद को रोका। इस पार्टनरशिप में खास तौर पे उमैद आसिफ का विकेट पे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह का लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। यॉर्कर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सही तरह कंट्रोल नहीं कर पाए इस बॉल को खुरम शहजाद। रफ्तार कम की, इसलिए बैट्समैन को उनने चकमा दिया। 1 रन का और इजाफा होगा। 1 ओवर खुरम शहजाद का बाकी है। 1 ओवर मोहम्मद अली और कर सकते हैं। फ़हीम अशरफ के 2 ओवर्स बाकी हैं, क्योंकि अली असवंद अपना स्पेल पूरा करके जा चुके हैं। तो अरहम नवाब और मोहम्मद फैज़ान, इन दोनों ने मिलकर जो 5वें बॉलर के 9 ओवर्स किए, तो फ़हीम अशरफ को आना तो पड़ेगा, और फिर मौका भी होगा कि अपनी 5 विकेटें मुकम्मल करें। जी हाँ, फ़हीम फर्स्ट चेंज बॉलर के तौर पर आए थे फैसलाबाद की टीम के लिए, और अच्छी गेंदबाजी की आज फ़हीम ने। सिंगल के साथ खुरम शहजाद के ओवर का इख्तिताम 41 के बाद 198 6 के नुकसान पर। फ़हीम अशरफ के जो रन देने की औसत है वो 5 से कम है 1 ओवर में, जो इन दिनों बहुत अच्छा समझा जाता है। 3 विकेटें भी ली हैं, तो इसलिए इसे सोने पे सुहागा कहा जा सकता है कि विकेटें भी उड़ाई हैं। इकॉनमी रेट आपका 5 से कम है। अब से 20 साल पहले जो है वो 4 से कम को बहुत अच्छा समझा जाता था। जी हाँ, वक्त गुजरने के साथ साथ चूंकि मॉडर्न डे क्रिकेट बैट्समैन जो है वो मार धाड़ करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें अगर आप 5 के इकॉनमी रेट से गेंदबाजी कर रहे हैं या 5 से कम के इकॉनमी रेट पे गेंदबाजी कर रहे हैं, तो अच्छा तस्वुर किया जाता है। और अगर हम फ़हीम की बॉलिंग की बात करें, तो आज अर्ली ऑन 2 बड़ी कामयाबियां दिलाई उन्होंने। यॉर्कर अटेम्प्ट किया, ऑफ साइड में जगह बनाना चाहते थे शॉट खेलने के लिए, क्योंकि सिर्फ एक ही फील्डर हैं बाउंड्री लाइन पर। थर्ड मैन के अलावा ऑफ साइड में फॉलो किया फ़हीम ने। अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ। ये फ़हीम काफ़ी ज़्यादा तजर्बा इन्हें क्रिकेट खेलने का। पाकिस्तान सुपर लीग में की तारीख में ये दूसरी बेहतरीन एवरेज रखने वाले फास्ट बॉलर हैं। पॉइंट पर पीछे जा रहे हैं अरहम, लेकिन गेंद मोहम्मद अली और अरहम दोनों के दरमियान गिरी। 2 रन का और इजाफा, ये अहम रन हैं। अगर ये 230 का हिस्सा अबूर कर लेते हैं, लाहौर ब्लूज के पास ऐसा बॉलिंग अटैक है जो कि उस स्कोर का दिफा कर सके। उसमें खुद
उमैद आसिफ भी होंगे, उस्मान कादिर हैं, हुनैन, सलमान अरशद, सलमान इरशाद जो हैं विकेटों में लगे थे। ये तमाम ही विकेटों में थे ये बॉलर्स पिछले मैच में। और ये अच्छी आवाज आई है, इस तरफ बाउंड्री का फासला भी खासा कम और ये तकल्लुफ बरतरफ कर दिया उमैद आसिफ ने। खूबसूरत अंदाज से लेंथ को पिक किया उमैद आसिफ ने और उठाकर खेला डीप मिड विकेट फेंस की जानिब। ये खराब गेंद थी फहीम अशरफ की, इनटू द विकेट करना चाह रहे थे और रफ्तार में कदरे रद्दोबदल किया, लेकिन लेंथ को जल्दी पिक कर गए उमैद आसिफ और खूबसूरती के साथ गेंद ने मिड विकेट फेंस को क्लियर किया। ये बहुत बड़ा छक्का और ये इस इनिंग्स का पहला छक्का। यहाँ ये खतरा मोल लिया यहाँ फहीम अशरफ ने, क्योंकि लेग साइड की बाउंड्री खासी कम है और उसी तरफ इन्होंने बैट्समैन को कैच आउट कराने की कोशिश की। अब हिकमत अमली तब्दील की है, अब ये ऑफ साइड की तरफ खिलाना चाहेंगे क्योंकि न्याजी मिड ऑफ से बाउंड्री पर चले गए। थर्ड मैन पर खिलाड़ी को आगे लाया गया, सोच बदल गई है एक ही छक्के से कप्तान फहीम की। फिर आए थे इनटू द पिच लेकिन खासे बाहर थे ऑफ स्टंप के। ये अब की बार समझदारी से गेंद की क्योंकि रीच काफी ज्यादा है। जब भी आप गेंद स्लॉट में करेंगे उमैद आसिफ के वो लेंथ जल्दी पिक कर सकते हैं, तो बेहतर अंदाज बचने का यही है कि आप उनकी दस्तरस से दूर गेंद करें। यहाँ इस पिच पर जो ऑफ कटर है या जो ऑफ स्पिन करना चाहें अगर इस वक्त, तो वो क्योंकि ज्यादा ग्रिप नहीं हो रही। ये अच्छी लेंथ है, ये हर जमाने में हर दौर में ये हर मौसम की गेंद है। यॉर्कर जबरदस्त इख्तिताम इस ओवर का फहीम की जानिब से। 42 गए, 209, 6 विकेट के नुकसान पर। अब अपना आखिरी ओवर लिए आ रहे हैं, उठाकर खेला लेकिन गेंद बहुत पहले गिर जाएगी मिड विकेट के। मोहम्मद सलीम को आना पड़ा। इनका जो इकोनॉमी रेट है वो आज 6 से ज्यादा रहा है खुरम का, और फहीम अशरफ का भी 5 से ज्यादा हो गया पिछले एक ओवर में, छक्का लगा। खुरम शहजाद ने इनिंग्स का आगाज बहुत बेहतर अंदाज में किया था। नई बॉल जब गेंद हिल रहा था विकेट पे तो काफी ज्यादा इन्हें मूवमेंट मिली थी ऑफ द डेक, लेकिन उसके बाद जब बैटर सेटल हुए तब इनके अगेंस्ट भी भरपूर अंदाज से अपने हाथ खोले उमर सदीक, हुसैन तलत, कासिम अकरम ने। तारिक भाई, ये इनिंग्स का वो फेज है जहां इन दोनों बैटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह की 47 रन की शराकतदारी हो गई है, इसमें जुनैद जो है वो सिंगल डबल पर इतफाक कर रहे हैं, जबकि उमैद आसिफ उनकी कोशिश है कि हर ओवर में एक आध बाउंड्री लगाई जाए। जहाँ ये इस मैच का ये बहुत ही किलीदी मरहला है, क्योंकि यहाँ ये पार्टनरशिप अगर ये पूरे 45 ओवर तक खेल जाती है तो फिर ये मुकाबले पर पूरी तरह आ जाएगी लाहौर ब्लूज की टीम। और पहले ही ये पार्टनरशिप ले आई है मुकाबले पर। 44 गेंदों में 46 रन बना लिए हैं उमैद और जुनैद ने। जुनैद ने बड़ी उम्दा बैटिंग की है, पहले कासिम अकरम के साथ और अब उमैद के साथ। ये फाइटर हैं, सलाहियत है इनमें हमेशा जो है फ्लो के खिलाफ जाने की। या पिछले मैच में भी जुनैद की विकेट गिरने के बाद बैटिंग में वो तवाज़ुन नहीं रहा था लाहौर ब्लूज की। इससे व्हिप किया, शानदार शॉट, बिल्कुल हिले ही नहीं लॉन्ग ऑन पर मौजूद खिलाड़ी, और 4 रन मजीद हासिल किए। ये बॉटम हैंड से खेला गया शॉट था। बड़ी दिलकश टाइमिंग इस मौके पर उमैद आसिफ की। ये खराब गेंद थी खुरम शहजाद की, बिल्कुल स्लॉट में गेंद कर गए।
चूंकि रीच काफी ज्यादा है, बैकलिफ्ट हाई रहती है उमैद आसिफ की, और आप उनके स्लॉट में गेंद करेंगे तो आपको इसी किस्म का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बाउंड्री के साथ 50 रन की शराकतदारी भी मुकम्मल हुई उमैद और जुनेद की। एक और उम्दा शॉट, फील्डर दो हैं बाउंड्री पर और मोहम्मद अली जो हैं उनने गेंद पर डाइव कर दी। 4 रन का और इजाफा। ये खासा महंगा ओवर, 11 रन पहले आ चुके हैं, अभी भी एक गेंद बाकी है। लेंथ में रद्दोबदल किया अब की बार खुरम ने, लेकिन नतीजा बिल्कुल नहीं बदला। उठाया ऑन साइड पे, मोहम्मद अली ने सरतोड़ कोशिश की गेंद को रोकने की, लेकिन आखिरी लम्हे पर गेंद उनके हाथ से लगकर बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। तो जिस मोमेंटम की जरूरत थी लाहौर ब्लूज की टीम को इनिंग्स के आखिरी लम्हे में, ये मोमेंटम अब उमैद आसिफ के बल्ले से आ रहा है। इसी पार्टनरशिप की वजह से हीट महसूस हो रही है इस वक्त। डीप फील्डर्स को भी 2 रन का और इजाफा। 13 रन इस ओवर में आए, जो इनिंग्स का सबसे महंगा था। खुरम का स्पेल भी मुकम्मल हुआ। 222, 6 विकेट के नुकसान। फहीम अशरफ अपने स्पेल का आखिरी ओवर करेंगे। सीधा खेले इस गेंद को मिड ऑफ पर, फील्डर डायरेक्ट हिट, और अंपायर अलीम डार ने काफी वक्त लिया, लेकिन नफी में सर हिलाया और इसी असना में दूसरा रन भी लेने में कामयाब हो जाएंगे। पुअर अप्रोच फैसलाबाद टीम की जानिब से। फैसलाबाद के खिलाड़ी जो हैं उन्होंने कुछ रन कंसीड किए हैं इजाफी पिछले कुछ ओवर्स में। ये क्योंकि सारा वजन उनका पीछे था, उनका बॉडी वेट पीछे था, इसलिए भी पहुंचने में आखिर में दिक्कत हुई और गेंद रिकोशेट होकर जब निकली तो एक और रन। और इससे टर्न किया मिड विकेट की जानिब। सनसनीखेज बैटिंग जुनैद की, एक बार फिर शॉर्ट बाउंड्री को प्ले में लाए और अब उनका स्कोर जो है वो 36 से 42 हो गया। बाकमाल बैटिंग जुनैद की, ये इनिंग्स के बिल्कुल आखिरी लम्हे पर मोमेंटम गेन कर रही है लाहौर ब्लूज की टीम। फहीम अशरफ को आड़े हाथों लिया, फुल टॉस थी, ये गेंद को बाउंड्री की राह दिखाई, ये टाइमिंग बड़ी जबरदस्त। ये फलक शिगाफ छक्का जुनैद अली की जानिब से। तीसरा छक्का था इस इनिंग्स का। अच्छा कमबैक किया फहीम अशरफ ने, और अब इनकी जो नजर है वो 245 पर होगी। दोनों जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी बैटिंग की है, अच्छी गेंदों पर भी हिट्स लगाते हुए नजर आए, यॉर्कर्स पे भी। या इससे ये चीज वाजे होती है कि अब बैटिंग करना बहुत सहल हो चुका है, गेंद बल्ले पर बहुत आसानी से आ रही है और इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी नजरें सही जमा रखी हैं। उम्दा अंदाज से जो काउंटर पंच जिसकी जरूरत थी लाहौर ब्लूज की टीम को, वो मुहैया किया है यहां पर उमैद आसिफ और जुनैद अली ने। ये बेहतर लाइन, एक ही रन यहां पर बन सका। अब तक 26 चौके और 3 छक्के इस इनिंग्स में लगे हैं और ये बेहतरीन स्कोर है। अब तक कोई टीम जो है इस टूर्नामेंट में इतने रन नहीं बना सकी, क्योंकि पहला राउंड जो था वो यकसर लो स्कोरिंग था।
हाँ बिल्कुल, अब चूंकि मौसम काफी बेहतर है, बैटिंग के लिए विकेट सहल हो चुकी है, तो कोई बईद नहीं कि फैसलाबाद की टीम इस टारगेट को चेस करने के लिए भी जा सकती है। यहाँ ये वाइड नहीं रहेगी, हालांकि ये उस लाइन के बाहर थी। अलीम डार उसी की वजाहत कर रहे हैं। बैट्समैन जो हैं, इनकी चलत ऐसी थी बैट्समैन की, जो अंपायर फिर वाइड दिया नहीं करते। लाइन के बाहर भी हो गेंद तो, क्योंकि चलकर आगे गए थे। जी हाँ, शफल किया था इस मौके पे जुनैद अली ने। आखिरी गेंद फहीम अशरफ के स्पेल की। क्या इस गेंद पर बच पाएंगे जुनैद अली के सामने? अलीम डार देख रहे हैं कि क्या ये मुकर्रर वक्त में ये 45वां ओवर शुरू कर सकेंगे, क्योंकि दूसरी सूरत में फिर फील्डर जो है कम करने की पाबंदी का भी सामना हो सकता है फील्डिंग टीम को, जब आप वक्त की पाबंदी नहीं करते। 234 पर 6। सत्तावन रन दिए हैं फहीम अशरफ ने अपने स्पेल में। 3 खिलाड़ियों को आउट किया, अगरचे आगाज बहुत जबरदस्त किया था, जिस तरह विकेटें हासिल की हाशिम इब्राहिम और इमरान भट्ट की, लेकिन उसके बाद जब स्पेल का दूसरा हिस्सा था उन्होंने रन्स कंसीड किए। ये बड़ी अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद अंदर की जानिब आई। इमरान भट्ट भी क्रीज में ट्रैप हुए और उसके बाद हुसैन तलत ये स्कूप मारने जा रहे थे, अली शान ने बड़ा जबरदस्त कैच किया। 3 विकेटें कप्तान फहीम अशरफ के हिस्से में आई। इस इनिंग्स का आखिरी ओवर गेंद सौंपी गई है मोहम्मद अली को पवेलियन एंड से। अच्छी इब्तिदा इस ओवर की। 12:40 तक इनको 45 ओवर्स जो हैं वो ख़त्म करने थे, या 45वां ओवर जो है वो 12:40 तक वो शुरू होना ज़रूरी था, लेकिन अंपायर ने इनको ये कोई रियायत दी है, क्योंकि 6 विकेटें भी गिरी हैं। इस दौरान खिलाड़ियों को एक आध मौके पर चोट भी लगी थी, तो वो जो वक्त है वो फिर जाहिर है कि वो शुमार होता नहीं है। बैट्समैन को फॉलो कर रहे हैं इस मौके पर मोहम्मद अली। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा आगाज आखिरी ओवर का। और अक्सर औकात तारिक भाई हमने देखा है कि जब बॉलर्स रन्स कंसीड करते हैं तो जो उनकी अप्रोच है, जो उनकी चाल चलन है, वो बदल जाती है। वो फिर डेथ ओवर्स में बचने पर जाते हैं विकेट लेने के अलावा। तो इसी किस्म की कोई अप्रोच देखने को मिली है पिछले 3 ओवर्स में। खुरम शहजाद, फिर फहीम अशरफ और अब मोहम्मद अली ये बचने की कोशिश कर रहे हैं, डिफेंसिव लाइन पे गेंदबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, जाहिर है कि दोनों जो बैट्समैन थे उनको अरसा गुजर गया था विकेट के ऊपर। ये अच्छा ओवर रहा है। यहाँ दूसरे के लिए लौट जाएंगे ये दोनों खिलाड़ी आसानी के साथ। लाहौर ब्लूज के कई बैट्समैन जो हैं वो आड़े तिरछे शॉट पहले खेल रहे थे। हुसैन तनल जो हैं वो स्कूप करने की कोशिश कर रहे थे गेंद को विकेट के पीछे। अब ये वो मरहला था, ये जो पिछले 2-3 ओवर्स हैं, इस पार्टनरशिप में ऐसे शॉट्स लगने चाहिए थे, लेकिन ये सामने खेलते हुए नजर आए उमैद और जुनैद। जी और सामने खेलकर भरपूर कामयाबी मिली है इन दोनों प्लेयर्स को। खास तौर पे उमैद आसिफ का जो किरदार रहा है इस पार्टनरशिप में बहुत कलीदी रहा है। सिर्फ 26 गेंदों में 39 रन किए हैं उमैद आसिफ ने, और जिस किस्म का इख्तितामी नोट चाहिए था इस इनिंग्स को वो फराहम किया है उमैद आसिफ ने। या 40 ओवर्स के बाद से अब तक ये दोनों बैट्समैन जो हैं 60 रन का इजाफा कर चुके हैं। और ये वो शॉट, चीकी शॉट, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग, पूरी तरह मुस्तैद खड़े हुए थे यहाँ पर खुर्रम। अभी तक ये ओवर जो है बाउंड्री के बगैर गुजरा है, तो इससे बेहतर हो नहीं सकता मोहम्मद अली और फैसलाबाद के लिए। ये प्रॉपर ऑलराउंड क्रिकेट, जितनी अच्छी गेंद उतनी अच्छी प्लेसमेंट और उससे भी उम्दा फील्डिंग।
ब्लॉक हॉल में गेंद था, अच्छी गेम अवेयरनेस का मुजाहरा उमैद आसिफ की जानिब से, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग खुर्रम शहजाद जो शॉर्ट फाइन पर मौजूद थे, यकीनी चौका बचाया अपनी टीम फैसलाबाद के लिए। क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन होती है जहां आपको गेंद जो है आखिरी मौके पे ही नजर आती है, फील्डर को रिएक्ट करने का वक्त और कम हो जाता है। 46 रन है जुनैद, लेकिन मुश्किल टिक आउट कर सके इस यॉर्कर को। ये अच्छा स्कोर हो गया है। अब ये 240 जो है, जिस तरह का बॉलिंग अटैक है लाहौर के पास, अगर ये बेहतर फील्डिंग कर लेते हैं, नई गेंद पर विकेटें मिल गई तो एक दिलचस्प मैच देखने को मिलेगा। इससे अशरफ अली के चेहरे पर आज इत्मीनान है। ये अजहर अली के बड़े भाई हैं, ये अशरफ अली जो फील्डिंग कोच हैं लाहौर के। क्या बिल्कुल, अजहर अली ने पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में बड़े अरसे तक रिप्रेजेंट किया और आजकल लाहौर में एक अजहर अली क्रिकेट एकेडमी भी चला रहे हैं, तो क्रिकेट से गहरा ताल्लुक रहा है अजहर अली के खानदान का भी। आखिरी गेंद इस इनिंग्स की, क्या उमैद आसिफ इस गेंद पर एक बाउंड्री लगा पाएंगे? बहुत आला ओवर, काबिल तारीफ बॉलिंग मोहम्मद अली की। आज नई गेंद पर उन रन्स नहीं बनाने दिए, पुरानी गेंद पर भी उन्होंने ऐसा ही किया, सिर्फ 7 रन दिए। और 2 सेट बैट्समैनों के सामने ऐसी बॉलिंग करने पर जरूर ताली बजनी चाहिए आपके लिए। 241 स्कोर रहा। लाहौर का 6 विकेट के नुकसान पर जुनैद और उमैद ने अपनी टीम को बड़ी हद तक उम्मीद दिला दी है, क्योंकि पहले मैच में इनको शिकस्त हो गई थी, बैटिंग उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकी थी। और अब नजरें रहेंगी यहाँ मोहम्मद हुरैरा पर भी कि ये फॉर्म में मुकम्मल तौर पर अपनी बहाली करें। या 60 गेंदों पे 76 रन की शराकतदारी, क्रेडिट देना होगा जुनैद अली और उमैद आसिफ को कि जिस तरह इनिंग्स के इख्तितामी लम्हात में उन्होंने भरपूर अंदाज से पटाई लगाई बॉलर्स की, खास तौर पे फहीम अशरफ और खुर्रम शहजाद के खिलाफ भरपूर रन बनाए जुनैद अली और उमैद आसिफ ने। इनिंग्स का आगाज अच्छा नहीं रहा लाहौर ब्लूज के लिए। हाशिम इब्राहिम 17 कर पाए, इमरान बट ने 22 गेंदों का सामना किया, सिर्फ 9 रन बनाए। इब्तिसाम रन आउट हुए। उमर सिद्दीक, हुसैन तलत, कासिम अकरम, इन तीनों खिलाड़ियों को आगाज तो मिला, लेकिन इस आगाज को बड़े रन्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन इस इनिंग्स को उम्दा अंदाज से खत्म किया जुनैद अली और उमैद आसिफ ने। फैसलाबाद की जानिब से खुर्रम और अली ने बॉलिंग की इब्तिदा की थी। मोहम्मद अली ने एक खिलाड़ी आउट किया। नई गेंद पर फहीम अशरफ ने 3 विकेटें हासिल की और सबसे कामयाब रहे। अरहम को 5 ओवर्स के लिए आजमाया गया, उनकी मिस्ट्री स्पिन को उन्होंने भी 1 विकेट उड़ाई। फहीम अशरफ ने टॉस जीता और लाहौर ब्लूज को खेलने पर आमादा किया। अच्छे मौसम में इनिंग्स आगाज हुआ। इमरान बट के साथ उनके जो ओपनिंग पार्टनर थे नौजवान हाशिम इब्राहिम ने चंद अच्छे शॉट खेलने के बाद वो बोल्ड हो गए। फहीम अशरफ ने जल्दी एक और विकेट हासिल की। इमरान बट जो है उनका सर हिल गया था। फिर मुजाहिमत शुरू की। उमर सिद्दीक ने अच्छी बैटिंग उन्होंने की, लेकिन इस दौरान इब्तिसाम रन आउट हो गए अपनी गलती से। उमर सिद्दीक ने ये जोरदार छक्का लगाया था लॉन्ग ऑन पर, चिप शॉट खेलते हुए नजर आए। शॉर्ट आर्म जैब भी उन्होंने किया, अच्छे लग रहे थे विकेट के ऊपर उमर सिद्दीक। यहां तक आरम नवाब ने उनकी विकेट हासिल की और उसके बाद कासिम अकरम और हुसैन तलत के दरमियान ये बड़ी कलीदी पार्टनरशिप थी जिसने लाहौर ब्लूज की टीम को इस मैच में वापस लेकर आए। लेकिन कासिम अकरम, आज उनसे बेहतरी की तवक्को थी। ये वो शॉट था जिसके बाद हुसैन तलत की विकेट गिरी। कासिम अकरम बड़े इंप्रेसिव दिखाई दिए, लेकिन जहां इस इनिंग्स को कैरी करना चाहिए था वहां उन्होंने अपनी विकेट गंवा दी। यहाँ आखिरी विकेट की जो पार्टनरशिप थी, ये आखिरी पावर प्ले में 75 रन बनाए जुनैद और उनके साथ उमैद ने। आड़े हाथों वो लेते रहे, बैक फुट पर, फ्रंट फुट पर। ये बिलाशुबा ये बेहतरीन शॉट था इस पार्टनरशिप का, जो कि विकेट कीपर जुनैद अली ने लगाया। तो 242 रन फैसलाबाद की जरूरत है 45 ओवर्स में।
5.3 के औसत से। इस वक्त इनिंग्स का वक्फा है और वक्फे के दूसरी जानिब एक्शन जारी रहेगा। Nicely clipped. This time he's found the gap. Wow, that is beautiful. और इस बार बोल्ड और फ्री हिट और इसे चलता कर दिया। Bowled beautifully. Beautifully played. Down the ground. In the air and taken. और ये अच्छी आवाज आई है।
एक बार फिर आपका खैर मकदम है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, जहां पर 7वां मैच जारी है पाकिस्तान कप 2023 का, और इससे आप बराह रास्त देखेंगे फैसलाबाद और लाहौर के दरमियान पिंडी स्टेडियम से। 241 रन स्कोर किए लाहौर ब्लूज ने 6 विकेटों के नुकसान पर अपने मुकर्रर 45 ओवर्स में। अच्छा फाइट बैक किया लाहौर ब्लूज की मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर ने। 47 रन के साथ जुनेद अली जो विकेट कीपर हैं वो टॉप स्कोरर है। 3 विकेटें हासिल की फहीम अशरफ ने, जो फैसलाबाद के कैप्टन हैं। मोहम्मद अली और अरहम नवाब ने एक खिलाड़ी को आउट किया। अच्छी बॉलिंग की फैसलाबाद के सीमर्स ने, और लाहौर की टीम को उन्होंने एक ऐसे स्कोर तक रखा है यहाँ जीत मुमकिन है। अच्छी बैटिंग पिच है, धूप निकली हुई है और ये बेहतरीन हालात हैं ओपनिंग करने के भी। मेरे साथ पाकिस्तान के साबिक ओपनिंग बैट्समैन सलमान बट कमेंट्री बॉक्स में आ चुके हैं। सलमान, दिलचस्प मुकाबला होने की तवक्को। बहुत शुक्रिया तारिक भाई। जी बिल्कुल, आखिर में जुनेद और उमैद की एक शानदार पार्टनरशिप, और उसने एक नहायत ही रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचा दिया लाहौर ब्लूज़ को। जहां एक टाइम पर टीम फंस गई थी वहां पर खासी मुश्किलात हो सकती थी, लेकिन उमैद आसिफ ने 28 बॉलों पर जो 40+ रन की इनिंग खेली है वो बहुत ही काबिल दीद भी थी, और उसकी इम्पोर्टेंस इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। और उसके साथ जुनेद अली ने भी पूरा साथ दिया, उन्होंने भी जिम्मेदारी निभाई। वहाँ पर टीम को ज़रूरत थी एक अच्छी पार्टनरशिप की, और यहाँ फैसलाबाद के लिए 242 रन का टारगेट सेट किया। 45 ओवर्स का खेल अभी होना है सेकंड इनिंग्स में, और बॉलर्स के खासी मदद रही। सुबह हमने पिच में ग्रिप भी देखा, थोड़ा वेरिएशन बाउंस भी देखा। थ्रू द लाइन हिट मारना इतना आसान नहीं था, लेकिन अब पिच पे खासी धूप लग चुकी, जैसा आपने जिक्र किया। तो देखना होगा कि बॉलर्स अब किस तरह की स्ट्रेटजी जो है वो लेकर आते हैं इन, और जाहिर है ये मैच विकेट लिए बगैर तो जीता नहीं जा सकता। हुरैरा इनके अभी ये अवाइल के दिन हैं लिस्ट है करियर में। ये 12वां मैच है। 240 रन, 73 का स्ट्राइक रेट है। रेड बॉल क्रिकेट का इन्हें स्पेशलिस्ट समझा जाता है। मोहम्मद फैजान ये वाइट बॉल स्पेशलिस्ट हैं। 450 रन, 4 सेंचुरियाँ। स्ट्राइक रेट इनका हमेशा ही बेहतर नज़र आएगा। पिछले बरस सेंट्रल पंजाब की टीम को टाइटल जितवाने में इनका भी हाथ था। अच्छी बैटिंग की थी, ओपनिंग करते हुए भी नज़र आए थे पाकिस्तान कप में। और उनका मुकाबला होगा सलमान इरशाद से, जिन्होंने पिछले मैच में 2 विकेटें हासिल की। अच्छा स्पेल किया नई गेंद पे। सलमान इरशाद अच्छे रिदम में नज़र आए हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पहला स्पेल, क्योंकि ये टोटल ऐसा है कि ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते बड़ी पार्टनरशिप्स का लगना, और एकदम से अच्छा स्टार्ट मिल जाए कि जो बैटिंग साइड है वो गेम के साथ आगे निकल जाए बहुत इनसे। तो विकेटें लेते रहना पड़ेगा अगर मैच में रहना है, और विकेटें लिए बगैर मैच जीता नहीं जाएगा ये वाला। जी हाँ, क्योंकि कंटेन करके 45 ओवर्स में आप ये स्कोर नहीं बचा सकेंगे। यही वजह है कि 2 स्लिप्स ली हैं कप्तान ने। इमरान भट्ट सामने जो साइड स्क्रीन से है मसला दरपेश है, और अब कार्रवाई शुरू हुआ चाहती है। पवेलियन एंड से पहली गेंद आएगी सलमान इरशाद की हुरैरा के लिए। सोचा था कट करने से मुतालिक, लेकिन फिर जाने दिया। स्विंग मिला है, और 2 नए बॉल इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर बॉलर्स को स्विंग मिलता है 8-10 ओवर्स का, तो इम्पोर्टेंट ये दुरानिया होगा खेल का, जहां पर खेल की क्या डायरेक्शन है वो पता चल जाएगी। और सलमान इरशाद को हमने देखा पिछले मैच में भी, इन्होंने आते ही कॉट बिहाइंड में विकेटें ली। गेंद बाहर निकलता है, बैटर्स को ड्राइव खिलाने की कोशिश करते हैं। से बैकफुट से खेला, अच्छी फील्डिंग की कासिम अकरम ने, क्योंकि 2 एंड से ये 2 नई गेंदें इस्तेमाल की जाती हैं, तो ऐसी पिचेस जहां से मदद मिलती हो बॉलर्स को ओपनिंग करना ये इतना आसान नहीं होता। शर्जील ने कल सेंचुरी स्कोर की जब वो बैटिंग कर रहे थे। मुल्तान से खेल रहे थे, फैसलाबाद के खिलाफ उन्होंने कल सेंचुरी स्कोर की, जिसकी तहसीन होनी चाहिए। ये 0 पर आउट हो गए थे हुरैरा उस मैच में।
इस साल हुरैरा की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं रही जितना पिछले 2 सीजन्स में अच्छा खेले हैं, स्पेशली 4-डे क्रिकेट के अंदर। और 1-डे क्रिकेट में इन्हें अभी अपनी धाक बिठानी है और थोड़ा वक्त गुजारना होगा इन्हें। अच्छा खेला गेंद की लाइन में आकर, लेकिन शेप बनती हुई नजर आई है सलमान की जानिब से। हुरैरा और अब्दुल्ला शफीक जो हैं ये एक ही वक्त में ये सियालकोट से नमूदार हुए थे आमिर वसीम अकेडमी से, जब इन्होंने अपनी क्लब क्रिकेट का आगाज़ किया था। और इस वक्त दोनों पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा हैं हुरैरा। अलबत्ता अब्दुल्ला शफीक जो हैं उनको जल्दी मौका मिल गया था 2020 में ही अपना फर्स्ट क्लास करियर शुरू करने का, 2019 में राधा। लेकिन ये भी बासलाहियत बैट्समैन है हुरैरा। बाहर बैट शायद तब्दील करना चाह रहे हैं और उसका इशारा किया, और मुझे लगता है गलती से किसी का बैट उठा लाया। नीचे साइम लिखा हुआ है बैट के नीचे। ये भी हो सकता है कि प्लेयर्स अब एक दूसरे का बैट एक्सचेंज भी करते हैं। बहुत अच्छी बॉलिंग, देखिए स्टंप्स को अटैक कर रहे हैं, अच्छे चैनल पे बॉलिंग की है और अच्छी लेंथ पे। पहला ओवर मेडन, सलमान इरशाद का अच्छा आगाज। उमैद आसिफ मीडिया सेंटर एंड से 42 मैचेस में 44 विकेटें हैं, कम विकेटें हैं 42 मैचेस में स्ट्राइक बॉलर के लिए, क्योंकि 1.6 1.7 की जो औसत है वो कहा जाता है कि वो होनी चाहिए होती है स्ट्राइक बॉलर की। जो विकेटों का तनासुब है एक मैच के एतबार से फर्स्ट क्लास में ये ज़्यादा हो जाता है। जी बिल्कुल, ये एक स्ट्राइक बॉलर स्पेशली नए बॉल्स के साथ जब आप बॉलिंग करते हैं, और उम्मीद आपकी टीम को आपसे यही होती है कि आप अर्ली विकेट्स लेंगे, तो ऐसे में 42 मैचों में 60 प्लस अगर विकेट्स हों तो बहुत ही आइडियल होता है। लेकिन हमें पता है कि उमैद आसिफ जो है वो एक बहुत ही बासलाहियत ऑलराउंडर कह लीजिए, या ऐसे बॉलर हैं जो अच्छी बैटिंग भी साथ कर लेते हैं। ऑलराउंडर एक बहुत ही मुकम्मल क्रिकेटर का लफ्ज़ है जो आजकल बहुत ही आसानी से इस्तेमाल हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि ये जो टर्म है ये अब इसका बेजा इस्तेमाल किया जाता है ऑलराउंडर का जो लफ्ज़ है, क्योंकि जब हम बड़े हो रहे थे तो ऑलराउंडर्स उस ज़माने में वो सिर्फ 4 ही थे पूरी दुनिया में, और उन्हीं को ही ऑलराउंडर समझा जाता था। अभी भी 3-4 ही हैं, बेन स्टोक्स, हार्दिक पांड्या, और उसके अलावा आप देखिए तो ज़्यादातर आपको इस कैटेगरी के ऑलराउंडर्स नज़र नहीं आते हैं। एंड्रू फ्लिंटॉफ, जैक कैलिस, बेन स्टोक्स, ये लोग हैं जो ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में आते हैं, टॉप ऑलराउंडर्स। और ऑलराउंडर का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि बैटिंग के साथ थोड़ी सी बॉलिंग कर लेते हैं आप, या बॉलिंग के साथ थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं। आपकी दोनों में मैच विनिंग कैपेबिलिटी का होना, ये आपके ऑलराउंडर होने की ज़मानत है। जी हाँ, और वो उसी सूरत में होता है अगर एक ऑलराउंडर को आप उसी सूरत में ऑलराउंडर मान सकते हैं कि उसमें सेंचुरी बनाने की भी अहलियत हो और उसमें 5 विकेटें लेने की भी सलाहियत हो। हाँ, ये वाइड गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर, विकेट कीपर कोई मौका नहीं था। 5 वाइड के रन्स शुरू में ही। बड़े कीमती रन्स हैं, और स्पेशली स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स में जब बॉल स्विंग हो रहा है तो आपको लाइन और लेंथ को मेंटेन करना होगा। कीपर भी यकीनन यहाँ पर कह लीजिए कि पिछले मैच में भी हमने देखा कि उमैद का इन स्विंग हुआ था और टांग से वाइड बॉल, लेकिन कीपर जा सकते थे, बिल्कुल ही उन्होंने मूव नहीं किया इसको, बहुत ही डिले की अपनी मूवमेंट। और ऐसे बॉल कीपर्स पकड़ते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि एक स्टेप के बाद दूसरी मूवमेंट नहीं ली जुनैद ने।
इम्पैक्ट शायद लाइन के बाहर था। अलीम डार ने गौर किया इस अपील पर, लेकिन फिर इत्तेफाक नहीं किया। बाल बाल बचे फैजान। बॉल स्विंग हो रहा है और आसानी नहीं है बैटर्स के लिए। ये बॉल भी अच्छा खासा इन स्विंग हुआ, ऑफ द पिच भी अंदर आया। शायद थोड़ा सा ऑफ स्टंप से थोड़ा सा इम्पैक्ट बाहर था, लगा पिछली टांग के ऊपर, लेकिन इम्पैक्ट के ऊपर बचत हो गई है फैजान की। लेकिन बैटर्स कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे। जैसे ही बॉल स्विंग शुरू होता है तो टेंटेटिव बैटिंग, झिझक सी लगती है उनके बॉल के ऊपर आने में। यार फैजान क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो ऐसी सूरत हाल से उनका पाला भी नहीं पड़ता है। आमतौर पर ऐसी पिचेस, स्पाइसी पिचेस पर दो नई गेंदों का सामना करना जो कि बिल्कुल आसान नहीं है। आपके पास फर्स्ट क्लास टेक्निक होनी चाहिए, वो दिफाई टेक्निक जिसमें आप अपना बचाव कर सकें। ओपनिंग बैटर का स्पेशलिस्ट होना एक लाजमी जुज़्व है कि उसकी टेक्निक जो है वो अच्छी होनी चाहिए। उसका ये आप देख सकते हैं फैसलाबाद की जो टीम है, ये यहाँ पर फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर हैं इस टीम में। अली असफन जो हैं उनको भी ये टीम ऑलराउंडर समझती है, हालांकि इनको हमने ज़्यादा बैटिंग करते हुए देखा नहीं है। समझने में क्या हर्ज है, हो सकता है हम उन्हें जब देखें वो ऐसी परफॉर्मेंस दें, लेकिन डेफिनेटली ये एक ऐसी टर्म है जिसको इतनी बासानी ऐसा टाइटल नहीं किसी को देना चाहिए। 2 ओवर्स का अख्ताम, 6 रन्स फैसलाबाद के। फैसलाबाद के मुकाबले में जो लाहौर की टीम है, इनने 3 खिलाड़ियों को ऑलराउंडर नामजद किया हुआ है। हुसैन तलत, कासिम अकरम और साथ साथ उमैद आसिफ को। दुनिया की तारीख के जो सबसे बड़े ऑलराउंडर थे गैरी सोबर्स, जो हैं जिन्होंने 365 रन का आलमी रिकॉर्ड बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग करते हुए। शायद उनका दूसरा ही टेस्ट मैच था। फिर उनके जो बॉलिंग में कारनामे थे वो भी एक से बढ़कर एक थे। वो नई गेंद को स्विंग भी करते थे, वो चाइना मैन भी करते थे। 6 छक्के भी उन्होंने लगाए, सबसे पहले 6 छक्के भी एक ओवर में गैरी सोबर्स ने लगाए। और फील्डर भी वो दूसरों से कहीं बढ़ के थे। आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर थे। और जितने भी लोग इस लाइन के, गैरी सोबर्स से आगे जब हम ऑलराउंडर्स का जिक्र करते हैं तो यकीनन जैक कैलिस सबके जहन में आते हैं, जिनकी टेस्ट और वनडे दोनों में 10,000 से ज़्यादा रन्स हैं और 300 से ज़्यादा विकेट्स हैं। तो ये एक आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है। फिर हम बात करते हैं इमरान खान ग्रेट की, फिर उसके बाद कपिल देव की। तो ये वो कैटेगरी ऑलराउंडर्स की जो आजकल देखने में नहीं मिलती उस तरह से। और आखिरी जो बड़ा ऑलराउंडर हमने देखा था वो फ्लिंटॉफ थे। फ्रेडी फ्लिंटॉफ इंग्लैंड के ऑलराउंडर थे, और अब बेन स्टोक्स इंग्लैंड की जो मौजूदा टेस्ट टीम के कप्तान हैं। अच्छा शॉट, लेकिन रन के बगैर। हार्दिक पांड्या भी एक बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, दोनों तरफ उनकी खासी कैपेबिलिटी है। और पाकिस्तान को यकीनन अब्दुल रज़ाक और अज़हर महमूद के बाद अभी तक इस तरह के एक ऑलराउंडर की तलाश जारी है अभी तक। सलमान, जो 60, 70 या 80 की दहाई में ये जो ऑलराउंडर्स थे जिनका अभी आपने जिक्र किया, इनमें और आज के ऑलराउंडर्स में फ़र्क ये हार्दिक पांड्या या जो इंग्लैंड की टीम के कप्तान हैं बेन स्टोक्स या दीगर इस दौर के जो कहलाते हैं ऑलराउंडर, कि वो मुसलसल खेलते थे और वो अनफिट नहीं होते थे। ये जल्दी अनफिट हो जाते हैं आज कल के ज़माने के ऑलराउंडर। और ये अज़हर महमूद इनक्लोयर, द ग्रेट ऑलराउंडर, और उनके पीछे ये उनके नाम ये इनक्लोयर है और इसी शहर से वो उनका ताल्लुक। यासिर अराफात भी इसी शहर से है।
वो भी एक ऑलराउंडर इस शहर से रहे हैं। उसके अलावा पेस बैटरी पाकिस्तान की बहुत है पिंडी से। जब आप शोएब अख्तर की बात करें, मोहम्मद आमिर की बात करें, सोहेल तनवीर की बात करें, मोहम्मद अकरम की बात करें, तो बहुत सारे जो जेन्युइन फास्ट बॉलर्स हैं वो इस शहर ने पाकिस्तान को दिए हैं। जहाँ ऑलराउंडर्स के नाम पे मंसूब हैं बहुत से इनक्लोजर्स, यहाँ पर ये इमरान खान इनक्लोजर है, यहीं पर जावेद मियांदाद इनक्लोजर है पवेलियन एंड की जानिब। अच्छा ओवर सलमान का, एक मरतबा फिर बैट्समैन को उन्होंने खामोश रखा। 3 ओवर्स के बाद 7 किसी विकेट के नुकसान के बाद। ये जावेद अख्तर जो है ये ऑफ स्पिन बॉलिंग किया करते थे। जावेद अख्तर बाद में टेस्ट अंपायर भी रहे। हम एक और ऑलराउंडर जिन्होंने बड़ा नाम किया और बड़ी क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने तंग किया बहुत सारे बॉलर्स को जब वो बैटिंग करते थे, सनत जयसूर्या भी एक बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं और उन्होंने भी बेशुमार विकेट्स ली, बेशुमार मैच विनिंग इनिंग्स खेली और फील्डर भी ब्रिलियंट होते थे। उठाकर खेल दिया क्योंकि फील्डर दोनों स्क्वायर के सामने दायरे के अंदर थे और ये गेंद पार उतर गई 4। फैजान सामने होंगे तो ये तो हमें देखने को मिलेगा, बड़े शॉट्स को खेलते हैं और दिलेरी के साथ खेलते हैं और जब भी बॉल इनकी जोन में आएगा वो अपने चांसेस लेंगे। क्लियर हेडेड प्लेयर है, कोई हाफ मेयर्स नहीं आपको इनकी तरफ से, कोई आपको आधा शॉट नजर आए, ये कम चांसेस हैं। पाकिस्तान कप 2022 में इन्होंने 394 रन बनाए थे, अच्छी औसत थी 32 की, अच्छा स्ट्राइक रेट था 101 कम। ये वो खिलाड़ी हैं जो बड़े शॉट्स खेलना पसंद करते हैं, ज़्यादा बाउंड्रीज से रन बनाते हैं। इनके पास बहुत शॉट्स हैं क्योंकि टेप बॉल क्रिकेट खेलते हुए आए हैं। फैजान उसी तरह की टेक्निक भी है टेप बॉल क्रिकेट की जैसी। देखिए इन्होंने तकरीबन 3 साल लाहौर कलंदर्स के पास गुजारे हैं और वहाँ पे बहुत सारी क्रिकेट इन्होंने खेली है और सीखी है और इम्प्रूव भी किया है एज अ बैटर। सिर्फ बॉलिंग वाली साइड पे ये है कि स्किलफुल ज़रूर है लेकिन पेस नहीं है। अगर आप एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं तो आपको कम से कम 135 पे आपको बॉल करने चाहिए और पेस की साइड से थोड़ा सा कमी है। स्लोअर वन अटैम्प्ट किया इस दफ़ा उमैद आसिफ ने और उसे कंट्रोल नहीं कर सके। बैटर भी उसको टाइम करने में नाकाम रहे लेकिन 2 रन बासानी हासिल किया उन्होंने। हुरैरा जो है उनने 12 गेंदें खेली हैं, कोई रन नहीं बनाया। फैजान रन्स बनाने की जिम्मेदारी अपने सर लिए हुए हैं। फास्ट बॉलिंग कैटेगरीज जो है वो भी बड़ी दिलचस्प हैं। फास्ट, मीडियम फास्ट, फास्ट मीडियम, और जब आप इनमें अगर आप इनमें जाते हैं और देखते हैं कि किन कैटेगरीज की बात हो रही है तो 150 वाले जो बॉलर्स हैं ये उन्हीं का हक है कि उन्हें सिर्फ फास्ट का लक़ब दिया जाए। और ये अभी जो नज़र आए थे हमें तस्वीर में जो साहब, ये मीडियम फास्ट से ये वकास इनकी आमद हुई है कल रात ही यहाँ रावलपिंडी में, क्योंकि अरशद इकबाल पूरी तरह फिट नहीं है फैसलाबाद के लिए। बिल्कुल, वकास बड़े ध्यान से बॉलिंग करते हैं ऐसी पेस पे कि चलान ना हो जाए। मिलिट्री मीडियम क्योंकि मिलिट्री मीडियम की भी एक इस तरह इस्तेमाल की जाती है। 130 से ऊपर नहीं जाते। और 150 वाले जो बॉलर्स हैं वो जेन्युइन फास्ट बॉलर्स काउंट होते हैं। जब आप शोएब अख्तर की बात करते हैं, मार्क वुड की बात करते हैं, हारिस रऊफ है, मिचेल जॉनसन थे, ब्रेट ली थे, शॉन टेट थे, मोहम्मद समी जेन्युइन फास्ट बॉलर थे, मोहम्मद जाहिद जेन्युइन फास्ट बॉलर थे। अब 140 जो है ये तो पाकिस्तान के ऑलराउंडर्स की पेस हुआ करती थी। अब्दुल रज़ाक 140 पे बॉलिंग किया करते थे। ये मोहम्मद समी एक बार लाहौर में ये बॉलिंग कर रहे थे। शोएब अख्तर का आलमी रिकॉर्ड है तेज़ तरीन गेंद करने का। जो ऑफिशियल तेज़ तरीन गेंद जो है इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने की थी 2003 के वर्ल्ड कप में। 4 ओवर्स मुकम्मल हुए, स्कोर है 13, कोई खिलाड़ी आउट नहीं।
242 के हदफ का पीछा कर रही है इस वक्त फैसलाबाद। दोनों ओपनर्स इस वक्त भी आबाद हैं विकेट पर। हुरैरा अभी भी बगैर कुरन बनाए खेल रहे हैं। बिल्कुल बेचैन है ऑफ स्ट्राइक होने के लिए और ऑफ द मार्क होने के लिए भी, लेकिन अभी तक कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा टाइम भी किया बॉल को, तो फील्डर्स की तरफ ही खेले हैं, लेकिन ऐसे में सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि टाइम अच्छा कर रहे हैं। मिडिल हो रहा है बॉल इनका। कोशिश कर रहे हैं सलमान को कि बिसाइड द लाइन रहकर खेला जाए, लेकिन ज्यादा आगे गिरे। ऑलराउंडर्स का काफ़ी तज़किरा किया तो वसीम अकरम पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर हैं। उनकी शेखुपुरा में डबल सेंचुरी है, 250 रन की इनिंग खेली जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया में एक बार एडिलेड में इमरान खान के साथ बड़ी पार्टनरशिप की और वहाँ पर भी 100 रन किए। टेस्ट मैच भी वो बचाया पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो कभी ऑलराउंडर्स में शुमार नहीं हुए। लेकिन आज काफ़ी आसानी है, जैसे मैट्रिक का बच्चा 33 नंबर ले तो पास हो जाता है, तो 30-35 वाला भी ऑलराउंडर बन। इसे पिक कर दिया, एक ही रन बनेगा। बाल बाल बचे यहाँ सलमान। ये अच्छी गेंद नहीं थी, लेकिन बिल आखिर हुरैरा जो हैं उन्होंने स्कोरर को जहमत दे दी है। 15 गेंदें खेलने के बाद अपना पहला रन हासिल किया। ज़्यादा जल्दी नहीं है और नई गेंद को सी ऑफ कर सकते हैं दोनों ओपनर्स। उसके बाद स्टोक्स हैं फैजान के पास, वो किसी भी वक्त जाहिर है कि पैडल दबा सकते हैं। देखिए बहुत डिपेंड करेगा कि आज उस्मान कादिर कैसा स्पेल करते हैं। मिडल ऑफ द इनिंग्स में उन्होंने आना है और ये मैच विकेट लिए बगैर जीता नहीं जा सकता। और जाहिर है ये रन्स भी ऐसे नहीं हैं कि जो सिर्फ आराम आराम से हो जाएंगे, कहीं ना कहीं बैटिंग साइड को भी अटैक करना है। और फैजान जो हैं वो फैजान वाली शॉटें खेलेंगे। इस बॉल को ऑन दी अप मारना चाहते थे, मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर है उसके, बड़ा शॉट सामने खेलना चाह रहे थे। ये देखिए, लेकिन बीट हुए। थोड़ा सा अवे मूवमेंट बॉल को मिली और बैटर जो है थ्रू द लाइन स्विंग किया उन्होंने। एक फील्डर अब स्लिप में है क्योंकि जो कवानीन है ये दायरे के वो बदल गए पहले के मुकाबले में। पहले दो खिलाड़ियों को बहुत ज़रूरी होता था कैचिंग पोजीशन पर रखना 15 गज के फासले के अंदर अंदर, लेकिन अब वो शर्त खत्म हो गई है। काफ़ी कुछ बदला। 2 बॉल अब लगते हैं नए, पहले एक लगता था। पहले 15 ओवर्स का पावर प्ले था, उसके बाद 4 फील्डर्स दायरे में आप रख सकते थे, फ्री हिट नहीं हुआ करती थी। तो ये सारे बैटिंग एडवांटेजेस हैं जो नए रूल्स में बैटर्स को मिले हैं। ये दोनों ही प्लेयर्स जो है ना, बॉलर और बैटर, दोनों लाहौर कलंदर्स के लिए इकट्ठे खेलते रहे हैं, तो खासा जानते हैं एक दूसरे को। सलमान इरशाद को भी पता है कि फैजान कौन से शॉट्स का इंतज़ार कर रहे हैं, और सलमान को भी पता है कि सलमान और फैजान जो हैं वो किस तरह के बैट्समैन और बॉलर हैं, क्योंकि ये खुद भी रहे हैं लाहौर कलंदर्स के साथ। फिर जल्दी से रन लेना चाहा लेकिन मुमकिन नहीं था। बहुत इंप्रेसिव बॉलिंग कर रहे हैं। तीसरा ओवर ख़त्म किया, 2 रन्स दिए, 5 ओवर्स के अख्तिताम पर 14 रन फैसलाबाद के। ये देखना है मोहम्मद सलीम जो हैं ये किस नंबर पर खेलने को आते हैं। गुज़श्ता मैच में इन्होंने 4थे नंबर पर बैटिंग की थी, आज पैड किए बैठे हैं, क्योंकि इनके बारे में हमने बहुत अच्छी बातें सुनी अब तक। मोहम्मद सलीम के बारे में हम इनको देखना चाहते हैं। पिछले मैच में इन्होंने 50 रन बनाए हैं और बासलाहियत हैं, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, सुनने में बेहतर टेक्निक है। फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है मोहम्मद सलीम का, और इससे पहले ये डीएचए के टूर्नामेंट में भी ये नजर आए थे।
GIC में खेलते हैं ये, और पाकिस्तान वापडा को डोमेस्टिक में रिप्रेजेंट करते हैं। अब्दुल्ला शफीक के हमरा ये भी इकट्ठे ही वापडा के लिए आए थे दोनों, और जब दोनों बैटिंग कर रहे थे नेट्स में तो पहचाना नहीं जा रहा था कि कौन कौन है, इतनी सिमिलर टेक्निक्स थी दोनों की जब ये वापडा के लिए आए थे दोनों। यहाँ तो अब तो ये तजस्सुस इनको देखने का और ज़्यादा बढ़ गया जब अब्दुल्ला शफीक के साथ इनका नाम लिया है, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ जो है ये बताया गया था कि मोहम्मद यूसुफ ने जब पहली बार उनने देखा था NCA में इनको बुलाकर तो बहुत मुतासिर हुए थे इनकी बैटिंग सलाहियतों से, मोहम्मद सलीम की। और वो यूसुफ एक इस तरह के कोच हैं, वो मुतासिर होते नहीं है, बहुत मुश्किल से मुतासिर होते हैं मोहम्मद यूसुफ। देखिए, आप हाई स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए आपको, तक के लोग हाई स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए मेहनत भी ज़्यादा करें, और आप यही एक्सपेक्ट करते हैं यूसुफ भाई जैसे प्लेयर से जो एक वर्ल्ड क्लास बैटर रहे हैं कि जब वो किसी को पसंद करें तो फिर वो चीज़ हो पसंद करने वाली। हुरैरा अभी तक उनको इस पिच की जो पेस और जो बाउंस है ये उससे हमांग नहीं हो पा रहे, मुश्किल पेश आ रही है। या फिर इस फॉर्मेट की जो पेस है उससे भी हमांग होने में मुश्किल पेश आ रही है। सलमान, मेरा ख्याल है कि थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, जल्दी में है, और एट टाइम्स जब आप जल्दी में होते हैं तो चीज़ वो नहीं हो पाती जो आप करना चाह रहे होते हैं। देखिए, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, इसका क्रेडिट बॉलिंग साइड को देना पड़ेगा। कोई लूज बॉल नहीं हमें देखने को मिला हुरैरा की बैटिंग में, कोई उन्होंने रूम नहीं दिया कि वो अपने बाजुओं को फ्री कर लें और एक बड़ा शॉट खेलें। तो ऐसे में शॉर्ट सिंगल्स पे अपना फोकस करें जब तक बॉल नहीं मिलती। कई बार ऐसा होता है, और 19 बॉल हो गए लेकिन 2-3 अच्छे शॉट मारेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फाइन लेग को अब आगे लाया गया, स्क्वायर लेग को पीछे भेज दिया गया, और ज्यादा पैर नहीं चले। अपने तजुर्बे को इस वक्त आजमा रहे हैं उमैद। हुरैरा तकरीबन उनकी जाल में आ गए थे। देखिए, मेरा ख्याल है कि उनके जहन से यही गुजर रहा है कि शायद ये वनडे है तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। हालांकि अगर वही बैटिंग ये करें जो ये 4 डे में करते हैं तो रन्स नहीं रुकेंगे, लेकिन एट टाइम्स होता है जब आपको शुरू में रन्स ना मिले, बॉलिंग अच्छी हो रही हो, अच्छी लेंथ पे हो रही हो, बॉल स्विंग हो रहा हो, तो कई दफ़ा आप बेताब हो जाते हैं कि जल्दी क्यों नहीं रन्स बन रहे। बड़ा इंपॉर्टेंट बॉल है ये हुरैरा के लिए। से फ्लिक कर दिया, पीछे फील्डर हैं बाउंड्री पर, वहां पहुंचे, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा हसीब थे मुतबादिल, उन्हें 2 रन्स अपनी टीम के लिए बचाए। 6 ओवर के बाद बनाए हैं फैसलाबाद ने 16। कुछ ऐसा ही आगाज लाहौर ब्लूज ने किया था अपनी बैटिंग में, बहुत केयरफुल, बहुत कॉशियस स्टार्ट था। ऐसा ही कुछ फैजान और हुरैरा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी हैरानगी है कि फैजान ने 16 बॉलें ले ली है। ये इनका नेचुरल स्टाइल नहीं है बैटिंग का। ये रन गेटर हैं, ये 6 हिटर हैं, और ज़्यादा दूर नहीं है वो वक्त जब हम देखेंगे कि इनके बल्ले से उस तरीके से बड़े शॉट्स देखने को मिलेंगे हमें। 394 रन पाकिस्तान कप में बना चुके हैं। स्ट्राइक रेट बहुत कमाल का है, 101 का। पिछले साल की अगर बात करें तो अच्छा सीजन रहा था इनके लिए, 450 बनाए थे। तो पोटेंशियल मौजूद है, अब सिर्फ वो सही वक्त और सही बॉलर और सही बॉल का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बड़ी हिट्स मारने शुरू करें। इजाज अहमद कमेंट्री में मेरे साथ आ गए, खुशामदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया अली यूनुस, और बिल्कुल आपने सही कहा कि लगभग कोई लाहौर ब्लूज की भी यही सूरत हाल थी जिस वक्त उन्होंने पहले 5 ओवर खेले, और यहाँ से ऑनवर्ड इक्वेशन किस तरफ टिल्ट होगी। 2 की कॉल है,
प्रेशर डालना होगा फील्डर पे। जी हाँ, ये आसानी से दूसरा रन मुकम्मल किया। यहाँ से छोटी छोटी चीजें जहाज जो डिफरेंस बनाएंगी। रनिंग बिटवीन द विकेट्स जैसे बैटर्स के लिए हो गया, फील्डर्स के लिए रन सेव करना हो गया, क्योंकि पिच और कंडीशंस इतनी आसान नहीं है, तो आपको रन्स बनाने पड़ेंगे, कुछ अलग करना पड़ेगा। ऑलरेडी हमने देखा कि पिच जो है वो काफ़ी बेहतर रही जिस वक्त लाहौर ब्लूज़ के जो मिडल या फिर इनिंग ख़त्म होने के करीब थी, अच्छे रन्स आए। पिच जो है वो बेहतर बाउंस दे रहा था और इतना ज़्यादा मुश्किलात नहीं थी बैटर्स के लिए। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आपने बात की कि पार्टनरशिप, पिछले भी इनिंग में लाहौर ब्लूज़ की हमने देखी कि जो मैसिव पार्टनरशिप्स थी शुरू में वो नहीं लगी, गो के 40 प्लस की 2-3 पार्टनरशिप्स थी। यहाँ पर इस वक्त सहूलत है और फैजान जैसे आपने बात की कि वो अच्छे बैटर हैं और अपनी इनिंग को बिल्ड अप करना जानते हैं। कप्तानी भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इमरान बट बात कर रहे हैं क्योंकि पार्टनरशिप को तोड़ना होगा। अर्ली विकेट्स इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो रन ज्यादा नहीं दिए लेकिन विकेट भी नहीं गिरी है फैसलाबाद की। एक बार फिर 2 की कॉल है, ये अच्छी रनिंग है। इस चीज का फुकदान था लाहौर ब्लूज में, 1 को 2 में कन्वर्ट किया और शायद एक्स्ट्रा 4 रन्स भी मिल जाएंगे। देखना होगा कि क्या डिसाइड करते हैं अंपायर, लेकिन ज्यादा दूर बॉल नहीं गया था, बैटर को लग के गया था बॉल, तो शायद बैटर ने रन्स नहीं लिए हैं। ये अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा दोनों बैटर्स की जानिब। जो बहुत वॉचफुल आगाज है इस वक्त फैसलाबाद का। सात ओवर्स का खेल मुकम्मल, 20 बगैर किसी नुकसान के फैसलाबाद रीजन। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए हुरैरा, इसलिए अब जितने भी रन्स उन्होंने बचा के रखे हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के, वो अब पाकिस्तान कप में करने होंगे, क्योंकि यही फॉर्मेडेबल बैटर नजर आते हैं जो टेक्निकली करेक्ट हैं। अच्छा ड्राइव किया है, चांस हो सकता है नॉन स्ट्राइकर पे। इमरान बट थे फील्डर, लेकिन थोड़ा रिएक्शन स्लो था, थोड़ा स्लो स्टार्ट किया था। जी किस्मत मेहरबान है, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट हिट होती तो यकीनी तौर पर जो सिचुएशन है वो 50-50 हो सकती थी। बिल्कुल आपने सही कहा कि हुरैरा और फैजान इनके पास ये अच्छा वक्त है, प्लेटफॉर्म मौजूद है, खेलते ही भाग पड़े थे। और इससे पहले भी मैंने देखा कि इब्तिसाम जिस वक्त रन आउट हुए थे, डायरेक्ट हिट, क्वेश्चन वुड हैव बीन आस्क्ड, उस वक्त भी बॉलर जो था ऑन द वे थे, कुछ 1 सेकंड का फर्क था जिस वक्त डिफ्लेक्ट हुए इब्तिसाम, तो उसी फर्क से उनका जो रन आउट है वो लगभग कोई 1-2 इंचेस दूर रहे अपनी क्रीज से। और यहाँ पर भी बॉलर ऑन द वे थे जिस वक्त बैटर भागा। जी हाँ, स्पॉट ऑन। एक रन का मजीद इजाफा हुआ। एटलीस्ट यहाँ पे जो फर्क हमें लग रहा है इजाज, वो ये है रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक का, जो जिस चीज़ की कमी थी लाहौर ब्लूज में जब वो बैटिंग कर रहे थे। बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स थे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल थे। केयरफुल ये भी हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सिंगल्स डबल जो प्रेशर डल रहा है, जो पॉजिटिविटी है वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आखिरी कुछ आने वाले ओवर्स में, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेलते हैं तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा ड्राइवर, लेकिन गैप नहीं तलाश कर पा रहे हैं, बहुत जोर से हिट मारने जा रहे हैं हुरैरा। और ऐसा होता है जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, आप ज्यादा रन्स नहीं करके आए होते कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, तो अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा ईगर होते हैं, थोड़े डेस्परेट होते हैं इम्पैक्ट डालने के लिए।
अपनी जगह बरकरार रखने के लिए, ये सारी चीज़ें आपके जहन में चल रही होती हैं एज ए यंग बैटर, इसलिए आप फिर बहुत ज़्यादा ज़ोर से हर बॉल पे शॉट खेलने जाते हैं। 23 बॉलें ले ली हैं सिर्फ 4 रन के लिए हुरैरा ने, तो यहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट करना होगा रन्स का और बॉल्स का। एक बार फिर गैप नहीं तलाश किया और चांस हो सकता है एक बार फिर, डायरेक्ट थ्रो, इब्तिसाम थे फील्डर। इस वक्त लगता यही है कि इन्होंने ये तहिया का रखा है कि हर बॉल पे जो कि फील्डर से थोड़ा दूर हो उस पे सिंगल जरूर लेना है। तो कमिटमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी और ये देखिए उन्होंने बैकफुट पंच किया और थोड़ा सा हेजिटेट हुए, क्योंकि सिंगल मुकम्मल हुआ लेकिन खतरनाक था। डायरेक्ट थ्रो एक बार फिर चाहिए थी, एटलीस्ट अपना बदला लेना चाहिए था। इब्तिसाम भी डायरेक्ट थ्रो पे ही आउट हुए थे, डॉन पे भाग के। और एजाज अगर फैजान ऐसे बैटिंग कर रहे हैं ना, तो ये प्लान का हिस्सा है, क्योंकि हम इनको जानते हैं कि ये इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी टीम के लिए अच्छा आगाज देने के लिए अपने नेचर से अगेंस्ट खेल रहे हैं। और ये जिसका मैं बात कर रहा था, स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, 136 डॉट बॉल खेले गए लाहौर ब्लूज। इमेजिन कीजिए इसके अगर हम 30 रन भी कम कर दें, 30 डॉट बॉल पे 30 सिंगल भी लिए होते, तो ये स्कोर कहां से कहां पहुंच गया होता। तो ये डिफरेंस अभी तक है। शानदार शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर, सिर्फ बाजुओं का इस्तेमाल किया और प्लेसमेंट इतनी शानदार थी कि बहुत तेजी से बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ गई 4 रन के लिए। कॉन्फिडेंस मिलेगा इस शॉट से फैजान को। एग्जैक्टली अच्छा गैप पिकअप किया, थोड़ा सा विथ था और इतनी ज्यादा हाइट पे बॉल नहीं थी, आसान इसको पंच किया, खूबसूरत रिस्क फ्री शॉट था, बिल्कुल कारपेट पे रोल डाउन होती हुई बॉल फेंस पार कर गई। अच्छा फिनिश इस ओवर का फैसलाबाद के लिए, 27 बगैर किसी नुकसान के। आठ ओवर में 27 लगभग वॉचफुल तो जरूर है, लेकिन 10 से 20 रन कम है मेरे हिसाब से इन ओवर्स में। इजाज ऐसा ये अफोर्ड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आने वाले बैटर्स पे अगर आप नजर डालें, उसमें आसिफ अली हैं, इरफान खान न्याजी हैं, सलीम हैं, ये सारे बिग हिटर्स हैं, ये बड़े शॉट्स खेलने जानते हैं, तो शायद ये कहीं ना कहीं अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा केयरफुल होना। लेकिन इनको बैलेंस ढूंढना होगा, ज्यादा केयरफुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि जब विकेट्स यहाँ गिरना शुरू होती हैं, 1 2 3 इकट्ठी गिरती हैं विकेट्स। और ये हमने देखा लाहौर ब्लूज ने जब केयरफुल स्टार्ट लिया, इमरान बाट आउट हुए, तो फौरन ही विकेट्स गिरना शुरू हो गई। हुनैन आ गए हैं, हुनैन शाह, हवा में बॉल आसानी से कैच ले लिया और पहली विकेट यहाँ पे हुनैन शाह ने हासिल की है। आउट ऑफ फॉर्म हुरैरा एक बार फिर बहुत जल्दी कर गए, ऑन साइड पे खेलना चाहते थे और टॉप एज हुआ। हाशिम इब्राहिम ने बहुत शानदार कैच लिया, बहुत आसानी से ये विकेट हासिल की है। वेल हुनैन शाह ने आते ही रंग जमा दिया, एक शानदार बॉल और उसके बाद स्ट्रोक अच्छा नहीं था, कहीं ना कहीं मिक्सअप हुआ, नीचे खेलने गए लेकिन बॉल हवा में रही, उसको नीचे न रख पाए और अपनी विकेट गवा बैठे। काफी देर से स्ट्रगल कर रहे थे, काफी ज्यादा बॉलिंग खेल चुके थे। 25 बॉलों में 5 रन और लाहौर को पहला नुकसान 27 पे। यार लेंथ बॉल था, अच्छा आगाज और थोड़ा जल्दी कर गए शॉट में, ऑन साइड पे खेलना चाहते थे, प्री प्लान्ड ऑन साइड पे खेलना गए। टॉप एज हुआ और हाशिम इब्राहिम ने अच्छा कैच, ऐसा ही एक रोल निभाया था अहमद दानियाल ने लाहौर वाइट्स के लिए पहले मैच में। फर्स्ट चेंज पे आए थे और 5 विकेट्स हासिल की थी। क्या ऐसा ही कुछ हुनैन शाह कर सकते हैं, क्योंकि आगाज इससे बेहतर हो नहीं सकता था। पहली इनिंग में भी हमने देखा कि जिस अंदाज से पेसर्स अपना धावा बोल रहे थे या रंग जमा रहे थे, यहाँ पर हुनैन ने आते ही अपना कलर दिखाया,
गो के इस वक्त धूप काफ़ी देर से है और पिच के ऊपर पड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को ज़रूर साबित किया कि पेसर्स के लिए ये विकेट साजगार है। मोहम्मद सलीम, सेकंड गेम, 1.50 है इनके पास। जी, आपने डेब्यू पे 50 रन की इनिंग खेली थी पहले मैच में, जो कि लास्ट मैच था मुल्तान के अगेंस्ट। ऐसा ही रोल एक बार फिर निभाना होगा। अर्ली डेज हैं उन्हें शाह के लिए, 4 मैचेस सिर्फ खेले, 2 विकेट्स हासिल किए, लेकिन इनका शुमार भी उन उभरते हुए नौजवान फास्ट बॉलर में होता है जिनके अंदर बहुत स्किल है, बहुत टैलेंट है। हमने ये देखा है कि जो भी बॉलिंग लेंथ बॉलिंग हुई है उसमें बॉल हल्का सा फंसा है, और यही ओरेरा के साथ भी ऐसा ही हुआ। थोड़ा सा बॉल रुक के आया, थोड़ा फंसा बॉल, वो पहले कमिट कर गए थे ऑन साइड पे खेलने के लिए। अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए बहुत जल्दी ऑन साइड खेलने चले गए, थोड़ा बॉल फंसा तो वो जो हार्ड वर्क किया था डॉट बॉल्स का, जो बारी लेने का, वो सब जाया हो गया, क्योंकि इतना आसान पिच है नहीं जितना लगता है, शक्ल से लग रहा है। थोड़ा बॉल फंस रहा है। वेल, टॉप ऑर्डर्स इससे पहले भी बात की कि लाहौर की तरफ से भी स्ट्रगल करते नजर आए, और यहाँ पर भी थोड़ा सा बैकफुट पे हैं। और अगर यहाँ पर हुनैन अपने 2-3 ओवर्स में 2-3 विकेट निकालते हैं तो यकीनी तौर पर इक्वेशन जो है वो काफ़ी बेहतर होगी उनकी टीम के लिए। और ऑलरेडी लगभग 25 से 30 रन शॉट है लाहौर की टीम अपने इस टारगेट में। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ग्रेस करना होगा ऐसे शॉट से, क्योंकि हार्ड वर्क किया हुआ है। 24 बॉलें खेल रखी हैं आपने, वक्त बिता लिया है ट्रीज के ऊपर। आप कैपिटलाइज करना है, आप इसको यूज करना है अपने रन स्कोरिंग के लिए, अपने लिए, टीम के लिए। या यकीनी तौर पर पार्टनरशिप चाहिए, क्योंकि अभी अभी विकेट गिरा है तो उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डर होना चाहिए, रादर देन प्लेइंग बहुत दूर था अपने जिस्म से, जैसा कि स्ट्रोक खेला और लगता भी ऐसे था जैसे कट या ड्राइव पे है। अच्छा रन है ये, दोनों फील्ड्स के दरमियान में बॉल गया था, तो ये इंपॉर्टेंट इनिंग है सलीम के लिए, क्योंकि 50 रन बना के आ रहे हैं इस मैच में, कॉन्फिडेंट हैं, इन फॉर्म हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी दिखानी होगी कि ये ऐसे प्लेयर बनना होगा कि जो कंसिस्टेंटली रन कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में हमने इस चीज़ का फुकदान देखा है, कंसिस्टेंसी का। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी हमने देखा, एक अच्छी इनिंग, 2 अच्छी इनिंग्स, लेकिन आपको बार बार परफॉर्म करना है, बार रन करने हैं टीम के लिए। अच्छी लेंथ है, अच्छी कंट्रोल्ड बॉलिंग। एक विकेट हासिल किया अपने पहले ओवर में हुनैन शाह ने। 9 ओवर्स के बाद 29 बगैर किसी नुकसान के नहीं, 1 विकेट हासिल किया है इस ओवर में। बायरलीम डार का इशारा कि पावर प्ले का इख्तिताम हुआ। अब एक फील्डर, इनफैक्ट 5 फील्डर सर्कल के अंदर होंगे और 4 फील्डर दायरे के बाहर होंगे। उमैद आसिफ 4 ओवर्स में 21 रन, विकेट हासिल नहीं किया अभी तक। काफी फील्डिंग में चेंज, क्योंकि वो समझते हैं कि फैजान शायद अब उस जोन में आएंगे। जी हाँ, बड़ा शॉट, मिड ऑफ का फील्डर के सर के ऊपर से काफी देर तक भागना पड़ा है इमरान बट को। ज्यादा एलिवेशन नहीं थी क्योंकि हवा में बहुत देर बॉल रहा। वेल, सॉर्ट ऑफ हाफ हार्टेड, क्योंकि वो ड्राइव करने जरूर गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज जरूर थी कि इस शॉट के पीछे कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, जिसकी वजह से बहुत देर तक बॉल हवा में रही।
आगे पड़ा हुआ बॉल और लकी रहे यहाँ पर, क्योंकि थोड़ी सी एलिवेशन जरूर मिली। डिस्टेंस अगर कम होता तो यहाँ पर एक और विकेट जो है वो फैसलाबाद की गिर जाती। इरादा बना लिया है कि अब काफी बॉल वॉचिंग हो गई, 28 बॉलें खेल ली हैं और अब वो वक्त आ गया जहां पे बड़े शॉट्स खेलें, क्योंकि अभी हावी हैं लाहौर ब्लूज। पहले 9 ओवर में हावी रहे हैं, क्योंकि 2 एक्सपीरियंस बॉलर, 2 बहुत स्किलफुल बॉलर नया बॉल शेयर कर रहे थे। शॉट्स जरूर लगे हमें फैजान के बल्ले से और ये विकेट हासिल की थी उन्होंने अपने पहले ही ओवर में। और थोड़ा जल्दी कर गए और अपनी विकेट गवा दी। बहुत लकी होती है टीम जिसके पास 2 ऐसे फास्ट बॉलर हों। उमैद आसिफ और सलमान इरशाद दोनों डिफरेंट तरह की बॉलर हैं, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है और फर्स्ट चेन पे हुनैन आते हैं, तो ये अच्छा बॉलिंग यूनिट है एजाज जी। और अभी फिलहाल चूंकि पेसर्स हैं अपना काम कर रहे हैं, स्पिनर आएंगे, पिच का बिहेवियर जो है वो कैसा होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि जो स्पिनर थे इनफैक्ट पहली इनिंग में उन्होंने भी काफी हद तक रोका, लेकिन एट द एंड जो सब पेसर्स आए उन्होंने काफी ज्यादा रन्स दिए। तक का कंपैरिजन पहले 9 ओवर का या इस पावर प्ले की पोर्शन का इतना ज्यादा फर्क नहीं है, तकरीबन बैलेंस इक्वेशन अब तक की एफर्ट की अगर हम बात करें दोनों टीम्स की। एक्सपीरियंस्ड है उमैद आसिफ, वो जानते हैं कि आप फैजान जो है वो बड़े हिट के लिए जा रहे हैं, इसलिए अपनी पेस को वेरी कर रहे हैं, अपनी लेंथ को वेरी कर रहे हैं और ये हम एक्सपेक्ट करेंगे। आज अच्छा दिन रहा है उमैद आसिफ के लिए, 41 रन की बहुत ही इंपॉर्टेंट कैमियो खेली अपनी टीम के लिए। एक ऐसे टाइम पे आए थे जब विकेट्स का सिलसिला जारी था लाहौर ब्लूज का, तब उमैद आसिफ आए, उन्होंने अपनी इनिंग को संभाला जुनैद के साथ मिलकर और बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप वो आखिरी कुछ ओवर्स में इन्होंने हासिल किया और वो जो मोमेंटम है वो लाहौर ब्लूज की तरफ शिफ्ट किया। ऐसे ही कुछ किया था कल परसों इनफैक्ट लाहौर वाइट्स ने, जब कामरान की पार्टनरशिप हुई थी और मोमेंटम को शिफ्ट किया था वाइट्स की तरफ। 76 रन की पार्टनरशिप आज जुनैद और उमैद आसिफ के दरमियान देखने को मिली है, तो काफी हद तक एक सिक्योर पोजीशन पे उस पार्टनरशिप ने ला खड़ा किया है लाहौर ब्लूज को। ओवरऑल अगर हम बात करें टेक्निकली तो 20-25 रन कम लगते हैं, लेकिन जैसे आपने बात की पार्टनरशिप की एट द एंड ऑफ द इनिंग, तो उसने काफ़ी हद तक संभाला दिया और काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे बॉलर्स भी इस वक्त लाहौर के कि काफ़ी कुछ है स्कोर कार्ड पे, और अगर वो यहाँ पर एफर्ट करें अर्लियर ऑन कंटेन के साथ साथ विकेट भी लें तो माइट भी कुछ फेवरेबल कंडीशंस हो उनके लिए। एक और स्लोअर बाउंसर थर्ड की जाने बॉल गया है, लेकिन पेस नहीं है बॉल में, क्योंकि पेस दी ही नहीं गई थी उमैद आसिफ की जानिब से। इनटू द पिच बॉल किया गया। 10 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ, 34 पर 1 फैसलाबाद। वेल इरफान नियाजी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं बिल्कुल, और देखना ये है कि क्या इनके लिए रोल कुछ रहेगा भी या नहीं, कि अगर अच्छी पार्टनरशिप लग जाती है अभी, और क्या जैसा कि आएंगे तो सूरत हाल क्या होगी इनकी टीम की, क्योंकि फिलहाल लगता यही है कि जो पेसर्स हैं वो अपना काम तो कर रहे हैं लेकिन उतना ज़्यादा थ्रेटनिंग नहीं है। अगर ये पार्टनरशिप लगती है 60-70 रन की सलीम और फैजान के दरमियान, तो सूरत हाल काफ़ी हद तक जो है वो फैसलाबाद की फेवर में जाएगी। इजाज़ ऐसी पिच है, ऐसा ग्राउंड है कि यहाँ पे बॉलिंग साइड हमेशा ही गेम में रहेगी, क्योंकि मदद हासिल है फास्ट बॉलर्स को। जोरदार शॉट, गैप में शॉट, फैजान ने डिसाइड कर लिया है क्या बड़े शॉट आएंगे। ये एक धमाकेदार शॉट था, जोरदार शॉट था। अच्छा, एक्सीलेंट और बड़ा जबरदस्त मिडल किया, अच्छा साउंड था बल्ले का, बिल्कुल बॉटम पे लगा, और उससे इंपॉर्टेंट कि इन्होंने गैप निकाला। गो के फील्डर के पास कुछ वक्त जरूर था, एयर बॉर्न होकर इसको रोकना चाहा, लेकिन स्पीड अच्छी थी बॉल की, टाइमिंग परफेक्ट थी, 4 रन हासिल किए।
हवा में बॉल, लेकिन उसको पकड़ने के लिए कोई फील्डर मौजूद नहीं है। तो एटलीस्ट हमें वो एक्स्ट्रा बाउंस नजर आया हुनैन शाह से, और यही जिस मार्क पे जाके थोड़ा गार्डनिंग करेंगे फैजान, ये हमने चीज नोट की है कि जो थोड़ा लेंथ बॉलिंग है उस पे बॉल थोड़ा रुक के आ रहा है, थोड़ा फंस के आता है, जिसे क्रिकेट की जुबान में कहेंगे कि आप प्री प्लान, आप तैयार होते हैं पेस के लिए, लेकिन ज्यादा पेस मिलता नहीं है आपको, और बहुत थोड़ा सा फर्क होता है, आपको एडजस्टमेंट बहुत थोड़ी करनी पड़ती है, लेकिन आपको गेम अवेयरनेस दिखानी पड़ती है, जो कि हुरैरा के साथ हुआ। बॉल थोड़ा फंसा, लेकिन वो जल्दी शॉट के लिए प्रिपेयर्ड थे और टॉप एज हो गया। क्या ही बात है, क्या ही बात है इस शॉट की। मिड विकेट के जानिब ये पुल शॉट खेला है फैजान ने, अथॉरिटेटिव शॉट। पहले से तैयार थे इस स्ट्रोक के लिए, बिल्कुल अपनी जगह पे रहे, मैनेज किया इस स्ट्रोक को, और सबसे अच्छी चीज़ कि बिल्कुल कारपेट पे खेले, क्योंकि नॉर्मली इस तरह का विथ मिले या थोड़ा सा स्पेस मिले ऑन साइड पे तो बैटर की कोशिश होती है कि वो हवा में जाए, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऑल अलोंग द कारपेट खेलकर डीप मिड विकेट पे 4 रन हासिल किए। एक्सीलेंट बैटिंग। या थोड़ा प्रिडिक्टेबल हो गए अपनी लेंथ से हुनैन शाह, इसलिए बहुत जल्दी बहुत आसानी से ये पुल शॉट खेला गया। लेंथ बेहतर थी लेकिन लाइन खराब थी। थोड़ा आप मिक्स अप करने की कोशिश कर रहे हैं हुनैन शाह, लेकिन आपको लाइन और लेंथ दोनों का ही मिलाप रखना है। अगर ऑफ स्टंप पे ये बॉल पड़ता तो माइट भी कुछ अच्छा इम्पैक्ट आता, लेकिन ये तकरीबन लेग स्टंप पे ही पिच हुआ और उसके बाद वाइड के लिए बाहर निकल गया, ड्रैग हो गए। स्लिप को निकाल के अब मिड विकेट पे रख लिया फील्डर, क्योंकि ऑन साइड पे अच्छा खेलते हैं फैजान। अच्छी चेंज ऑफ पेस हुनैन की जानिब से। और अभी जिस तरीके से हम कुछ देर से देख रहे हैं कि थोड़ा सा एग्रेशन जो है वो बैटिंग में नजर आ रहा है, और हमने इससे पहले भी देखा ऑन साइड पे अच्छा स्ट्रोक खेला फैजान ने, और इसी वजह से अब स्लिप से फील्डर लेकर ऑन साइड पे प्लेस किया ताकि उनके जो स्कोरिंग एरियाज हैं उनको प्रोटेक्ट करें, ब्लॉक करें। कहीं ना कहीं सोच आए बैटर के दिमाग में नए एरियाज को सेलेक्ट करने की और वो गलती कर जाए। ये अच्छा पॉइंट रेज किया आपने कि उनका रन स्कोरिंग जो एरिया है उसको रोका है। कुछ अलग कीजिए, अलग शॉट की कोशिश कीजिए, चांस डेवलप हो सकता है। और जब आप फैजान जैसे प्लेयर होते हैं जिनको बड़े शॉट खेलना पसंद होते हैं, आप अगर उनके रन स्कोरिंग शॉट्स को ब्लॉक करते हैं, ये इंस्टिंक्टिव होते हैं, बाय नेचर एग्रेसिव होते हैं, तो आप कुछ ना कुछ अलग करने जाते हैं और उसी में अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। अब हम देख रहे हैं मजीद फील्ड को चेंज किया गया, लॉन्ग ऑन को रखा गया, फाइन लेग को भी सर्कल में बुला लिया गया, क्योंकि वो जानते हैं कि ऑन साइड पे ये बड़ी शॉट मारना इनकी आदत है, इनकी मजबूरी है शायद। जिस चीज की आप जिक्र कर रहे थे, क्योंकि 2 शॉट्स ब्लॉक की गई, अब ये कुछ और करेंगे, अब ये थर्ड की तरफ गाइड करना चाहेंगे या कवर, एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेलने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, इसी तरफ खेलने गए थे, लेकिन अच्छा बॉल, पेस भी बेहतर था, डायरेक्शन भी अच्छी थी और हाइट भी बेहतर थी, अंदर भी आया थोड़ा सा बॉल, और थोड़ा जिसको कहना चाहिए कि ऑफ स्टंप पे जो लाइन ऑफ अटैक है हुनैन का, अगर यहाँ पर कंटिन्यू करें, गो के एक बॉल बाकी है, तो थोड़ा सा टेस्ट मजीद करना चाहिए यहाँ पर फैजान को ऑफ स्टंप पे। सेंसिबल बैटिंग है और जल्दी कॉल किया नो का। अच्छी क्रिकेट फैजान की जानिब से। 11 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ, 43 पर 1 फैसलाबाद। ये सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है फैसलाबाद रीजन के लिए कि उस्मान कादिर को कैसे निगोशिएट करते हैं।
क्योंकि इन्होंने बहुत शानदार बॉलिंग की थी लास्ट मैच में, और काफ़ी दारोमदार होगा इस मैच का कि ये मैच यहाँ से किस तरफ जाएगा। उस्मान कादिर के स्पेल पे 60 विकेट्स हासिल कर चुके हैं लिस्ट ए में, 6 विकेट्स इनकी बेहतरीन बॉलिंग, और 3 दफ़ा 5 विकेट हासिल कर चुके हैं। और यही क्वालिटी आप एक्सपेक्ट करते हैं एक लेग स्पिनर से कि वो आपको विकेट्स लेके देगा। तो इसलिए फैसलाबाद रीजन का इनका स्पेल जो है वो सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। क्या उसके लिए स्ट्रेट अवे उन्होंने एक स्लिप ली है, फाइन लेग अप। पहली इनिंग में हमने देखा था कि अरहम नवाब को और अली असफन दोनों को ही स्पिन मिला था। देखना होगा कि उस्मान कादिर जो कि लेग स्पिनर हैं और जो विकेट्स लेके आ रहे हैं, 2 विकेट्स हासिल की थी इन्होंने लास्ट मैच में लाहौर वाइट्स के अगेंस्ट, क्या वैसी ही परफॉर्मेंस रिपीट कर सकते हैं? अच्छा आगाज है, रिदम ही अच्छा लग रहा है क्योंकि विकेट्स हासिल किए हैं, 2 विकेट्स हासिल की थे लाहौर वाइट्स के अगेंस्ट। नजर डालते हैं कैसे विकेट हासिल की थी। पहली विकेट अच्छी एरिया से बॉल स्पिन हुआ, जो चैनल बहुत शानदार है, और ये फ्लिपर, ये तेज बॉल किया था जिसको बिल्कुल परख नहीं सके बैटर, और एलबीडब्ल्यू करार हुए। ये क्वालिटी है इनकी, इनका जो फ्लिपर है बहुत तेज करते हैं, और बहुत बैटर्स को मैंने मिस जज करते हुए देखा है इनका फ्लिपर। अच्छा रिदम लग रहा है, और लेग स्पिन जो है इजाज, वो सब रिदम की गेम है कि आपका कितना अच्छा रिदम है। जो और अभी फिलहाल जो सरफेस है या जो पिच है, इसमें इनके जो 2 बॉल पड़े हैं वो कि उतना ज़्यादा उन्होंने फ्लाइट नहीं दिया। 1-2 बॉल अगर फ्लाइट दें, थोड़ा सा बहादुरी का मुजाहरा करें, तो माइट भी कुछ मजीद देखने को मिले कि कितना ब्रेक उन्हें मिल सकता है। बड़ा शॉट और उतना ही शानदार कैच। ऐसी ही एफर्ट की जरूरत है लाहौर ब्लूज के फील्डर्स की जानिब से। उमर सदीक थे फील्डर इस बार, क्या ही शानदार फील्डिंग एफर्ट, और ये विकेट इनके नाम रहेगी। शायद ही मैंने पिछले कुछ सालों में इतना अच्छा कैच होते हुए देखा है जो कि उमर सदीक ने मिड विकेट पर खड़े हुए पकड़ा है। शानदार क्रिकेट। वेल एक्सीलेंट रिफ्लेक्सेस, बहुत जबरदस्त कैच, ट्रेवल कर रहा था बॉल, एयर बॉल हुए दोनों हाथों से, एक्सीलेंट टेक, बहुत खूबसूरत उमर सिद्दीक, ब्यूटीफुल टेकन, और यूं चलता किया मोहम्मद फैजान को 30 रन्स पे, और दूसरी कामयाबी समेटी फैसलाबाद 44 पे 2। छोटे बच्चे भेज देना उन्होंने बैटिंग पे, अंडर 21 किया था मैंने कि उस्मान कादिर को कैसे डील करते हैं आप, ये एक अलग इम्तिहान होने वाला है। और फैजान थोड़ा जल्दी कर गए, अगेंस्ट द स्पिन बड़ी शॉट खेलने चले गए। कैच का जिक्र तो हम करते रहेंगे, लेकिन अभी इरफान खान न्याजी आ गए हैं। एक अहम मोड़ है ये इस मैच में, क्योंकि हमने ये जिक्र किया था कि 1 विकेट गिरती है तो दूसरी तीसरी जल्दी साथ गिर जाती है। यहाँ पे 135 रन बनाए, अभी अर्ली डेज हैं। स्ट्राइक रेट इंप्रेसिव है 86 की, ये रिकॉर्ड बेहतर होगा जितनी क्रिकेट ये खेलते चले जाएंगे। लेकिन अभी उस्मान कादिर को डील कीजिए, ये इम्तिहान है अभी। जो एग्जैक्टली इस प्लेटफॉर्म पे कैसा परफॉर्म करेंगे इरफान न्याजी, क्योंकि फिलहाल जो इक्वेशन है लाहौर की वो बेहतर हो रही है, इंप्रूव हो रही है, प्रेशर डाल रहे हैं। स्पिन ये आसान नहीं होगा टोटल। उस्मान कादिर का रिदम अच्छा है, स्पिन मिल रहा है और विकेट भी हासिल कर लिए, और विकेट जिस तरीके से हासिल की गई ये लाजवाब। उमर सदीक विकेट कीपर भी हैं, ज़्यादा लंबे कद के नहीं, लेकिन जो डाइव किया उन्होंने, हवा में थे जब उन्होंने बॉल को पकड़ा है। क्वालिटी क्रिकेट है ये, और यही हाफ चांसेस को फुल चांसेस में कन्वर्ट किया है उमर सदीक ने। ब्रिलियंट।
Lots of recovery work to be done by Salim and Irfan Khan Niazi. These two batters, they have to make sure that from this point on they should build the partnership. Salim got a half century in the last game, but today he's up against fairly decent bowling attack. Hunain Shah hitting in the right channels, right areas, has already got the better of Mohammad Huraira. So the recovery phase is on, Salman. Yes, Salim almost chased the previous ball. Just his decision to leave it alone was just in time. And Hunain Shah is keeping things tight. He's bowling good areas, good lines, good lengths, and is not allowing any free strokes to the batters. So both batters new at the crease, and nearly 200 runs to get, 197 to be precise. Overs are aplenty, and they just need to put up a good partnership. A lot will be dependent on this pair, as Salman has mentioned, especially Irfan Khan Niazi. We have seen a lot of him in the recent first-class season. Got a few starts, but that's a good shot. Good roll of the wrist, will get his first boundary. That's a confident start for Irfan Khan Niazi. Yes, this ball was aimed at the pads. Maybe he thought the batter would go across. He did, but he connected. He's got long levers. There we see. Had it hit the pad, would have been plumb. The bowler's idea was right, just that he wasn't lucky. Irfan Khan Niazi living dangerously. It's again changed the length on this occasion. Hunain Shah. Currently the point of game we are at, these two batters, they should try to watch a few deliveries. Make sure that you do not lose any more wicket in the next 8 to 10 overs. Slowly but surely build on the partnership. It's that kind of a pitch, Noman, where once you are in, the scoring becomes easy. The method applies everywhere, but this particular pitch, you have to get used to the pace of it. It's not a one pace kind of a thing. You can't just hit through the line. So you have to be good at your shot selection. You have to run well, call well, and the 50 is up just before the end of the 13th over. And Faisalabad are in dire need of a good partnership. Well, absolutely. It's just about the temperament. You got to show the temperament, the right temperament at the right time. 5.97 is the required run rate. It's slowly creeping up. So this means that you got to make sure you get at least run a ball. Yes, they have to keep the run rate in check. These days, 7 or 8 runs and over are no big deal, provided that the batters continue to bat for longer periods. Odd boundary and good strike rotation is all that they require. Left that one well alone to the wicket keeper, Salim. 13 done. Faisalabad 50 for 2. Well, at this point, 51 for 3 was the total of Lahore Blues. Lost one less wicket, the Faisalabad side. That's good running between the wickets there. Could have been mighty close, this one. We'll have a look in the replay. Direct hits are always much closer than you think. You see, he turned away towards the short fine leg. And Niazi first thought that fielder wouldn't throw to his end.
And this one has been swept really well. This time will be a 4. Dropping it short, and Salim down on his knee, controlled the pull shot really well. Risk-free stroke, and he's got the 4. Now they just need to rotate strike in the remaining deliveries. Yeah, short of a man in form, short of a man full of confidence. Down on one knee goes Salim. And picks up the length, plays it in the gap, the vacant region of the backward square leg, and gets a boundary. That's better. That's beautifully bowled. Gave it a lot more air this time. Good comeback by Usman Qadir. That's a great leg spinner from the son of a great leg spinner. You saw some flight and drift and a sharp turn. Next one, the quicker one follows. And this is where Usman needs to be patient. While bowling as well, you have to be consistent. You're getting the turn, the bounce. Everything is there in the pitch. You just have to bowl it in the right areas. Oh, beautifully done. Now, this is just about giving it the extra air and being patient. That was Salman was previously mentioning, that you got the skill set. All you need to do is to bowl in the right channels and be patient. Hardly you see someone bowl deliveries like this these days. This is one fantastic delivery that you see of a leg spinner, and something that special leg spinners carry with them. Wonderfully bowled again, and this time well played by Salim as well. 14 done, 55 for 2. Bowled a decent over. Usman Qadir also is considered a boundary. But that's what we've been talking about for the last few days. The consistency in terms of maintaining the length. We've been talking about this off here as well, that spinners nowadays, they're not consistent in terms of bowling at one area regularly. So Usman did that in the previous over. Well, only 3 or 4 deliveries out of the whole over landed on those desired areas. There we see, and they were unplayable. This one again, he was impatient, bowled a quicker one, and when he bowls his normal leg spin delivery, that is a killer. And that is where he needs to be more often than not. Consistency is the key, and that comes from the longer format. You need to bowl longer periods of time in the first-class cricket, and then the consistency and the specified areas will follow. Well, absolutely. And if you've put in the hard yards in the first-class cricket, in the domestic season, the Qaid-e-Azam trophies, and then you come on and play the list A cricket, the T20 format, the result shows the progress. People are going to see that. Usman is on your screens at the moment, and he's somebody exceptionally talented with the ball in the hand. It's unfortunate to see him not given a chance at the start of the Qaid-e-Azam Trophy season. 3 matches he sat out, then he went to the Asian Games, then came back, played the first game on a grassy track, took 6 wickets, and now we see him bowling well in the one-dayers. And I don't know how they could make him sit out and play left-arm spinners in his place, in a place like Gaddafi Stadium, where if there was anything for the bowlers, it was more likely to respond to the leg spinners rather than any other finger spinner. Well, absolutely spot on. And as there have been the debates that normally the attacking option has to be the leg spinner, the go-to option. In modern day cricket or in any format of the game, it has to be the leg spinner, because they provide you with a wicket-taking option. And what do we lack at the international level, especially in a one-day game? We need to pick up wickets in the middle overs. And that is where partnerships are built. And when we have a material like Usman Qadir, we need to play him. We need to give him the rough ride of Qaid-e-Azam Trophy, because when he comes off, he'll be much more stable mentally and with his controls. Beautiful over this has been as well by Hunain Shah. That on or about the off-stump channel has been consistently targeted by
the young speedster. So we got some quality bowling lineup. The Lahore Blues team. Previous over it was Usman Qadir bowling in the right channel. This time around the 4 good deliveries on the right areas by Hunain Shah. So some quality cricket on the display here at the Pakistan Cup. Oh, loud shout, loud shout, loud shout. Umpire raises the finger. Reward of bowling in the consistent areas. Hunain Shah has struck gold. Another important wicket for Lahore Blues here. And Hunain Shah once again, he is the man. Constantly targeting his pads. And Niazi constantly playing around his leg. And this is what we spoke about in the previous over. That if he misses, he is gonna go, and that is what has just happened. So Niazi showing lack of technique, and the bowler showing the presence of mind to hit that front pad. And he goes for 6 of 11, 55 for 3, Faisalabad. Yeah, 3 wickets have gone down for the Faisalabad side. Courtesy some good bowling performance. Hunain Shah getting the better of Mohammad Huraira. His bad run continues. Regulatory catch. Then came in Usman Qadir. And a brilliant catch by Umar Sadiq at the mid-wicket region. And look at this. Hunain Shah, the express pace, getting the better of Irfan Khan Niazi. Playing all over it. Niazi? 2 batters, LBW, playing across the line. No. 1 caught playing across the line, closing the face of the bat, and 1 LBW, and the third one trying to pull Usman Qadir, who was exceptionally caught there by Umar Siddiq was the catcher then. And it's Ali Shan now, and I think he's gone as well, yes. First one, flashing at a wide one and edging it, and the umpire has raised his finger. There is no DRS, Ali Shan has to go. Well, that's a very good over by Hunain Shah. He's got the 2 good wickets there. Once again, poking outside the line of off stump. Nothing short whatsoever, playing away from the body. Leading edge. Hunain Shah gets the 2nd wicket of the over. And Faisalabad region are in all sorts of trouble here at the Rawalpindi Stadium. 55 for 4. It's a golden duck for Ali Shan.
आडी आधी दफा अंदर आसिफ भाई दी दफा बाहर Walks in Asif Ali. Much earlier than he would have expected. In the last game, it was Faisal Akram who got the better of Asif Ali. It was Multan region against Faisalabad. And today, he's up against a leg spinner. He usually likes to play the fast bowlers. Over 2,000 runs in 85 list A games. Look at the strike rate, 111. Well bowled again. He's spinning the ball sharply. Needs to be consistent, landing it in the business area. And this is the last wicket that fell. And Ali Shan's reaction was nothing happened, but the whole slip cordon went up. And along with them went up the umpire's finger, which matters the most. Spot on. And now for Asif Ali, we've got the fielder at long on, we got the fielder at mid wicket, the two areas he usually likes to play. Good start, decent start by Asif. For Faisalabad side, they would surely want Asif to stick around for quite some time. Yes, he needs to have a great day out, score a big 100 or an innings of magnitude where he can take his side home, and he requires somebody at the other end to just keep giving him the strike as well. This one was again the quicker ball, and Salim was a bit late. In the end, was able to just push it down for a single. To Usman, he's showing us all his repertoire. The googlies, the leg spinners, the flippers, some flight, sharp turn, everything is happening for him. Asif picks up the length, puts it up towards the mid wicket for a single. That was a half tracker from Usman Qadir. A single will end the over. 16 done. Faisalabad absolutely reeling. 59 for 4. Hunain Shah on a hat-trick. He's got the better of Irfan Khan Niadi, played across the line, was trapped in front, and then came in Ali Shan, and then went off Ali Shan. A beautiful delivery. Outside edge, and wicketkeeper doing the rest. Hunain Shah, can he pick up the first hat-trick of Pakistan Cup? He will be up against Asif Ali. Two slips in place. Once again, hitting the deck hard. What a spell this has been by Hunain Shah. The idea was right. He attacked the stumps, went a bit wide of the crease, and then just wanted to bring the ball back into Asif Ali, who doesn't come forward a great deal. Was on target, but well managed by Asif Ali on this occasion. Two slips he's operating with now, and Lahore Blues now have their tails up. They know they have the 4, and if they can strike 2 more blows, they'll have this game. This one has been driven through the cover point region, and well timed by Asif Ali. Will be a boundary. So good confident start from Asif Ali, and a much needed boundary for Faisalabad, who do need a big partnership, who need a couple of players to stand up for them. This one was overpitched, and he just timed it. A perfect placement by Asif Ali, placed in the gap. Good confident start by Asif. Still got 2 slips in place. Fielder at backward point. Cover mid-off. Oh, knocks him over. That's another one for Hunain Shah. He gets the better of Asif Ali this time.
Well, as we spoke about the big partnership, another one goes for Faisalabad. And the batters are just refusing to stay there and fight it out for their team. On the other hand, Hunain Shah is on fire. And this one was a poor shot. The ball did not bounce as Asif Ali expected, and the shot that he wanted to play requires more bounce than this delivery. And he only succeeded in getting an edge onto the stumps. 6 he scored, was a very short stay, and Faisalabad are now 63 for 5 in further trouble. Fahim Ashraf is the new man in, and Numan, surprisingly, in these two games, both the teams wanted to bowl first. And now what we are seeing is team batting second has been in trouble twice in 2 games, mainly because of their own shot making. But the trends might change. We might see captains winning the toss, opting to bat in the next games. Well, absolutely, 822 runs. Fahim Ashraf, the skipper for the Faisalabad region. Not a healthy average though. A decent strike rate of 82. He needs to bat, and he needs to bat long. He averages only 15. I never thought about it. He is supposed to be the all-rounder Pakistan is looking for. And if he only averages 15, that's a very far-fetched idea then. Trying to cut that one away from the body. Fahim Ashraf, but how good Hunain Shah has been. Hunain has his tail up, and he is at the moment bowling quick, fast, on target. And this one we saw was short, did not bounce much, and Asif Ali went for his stroke and did not spend enough time. I wonder what the observation was since morning, because there has been variation of bounce. So when you come as a batter, you take into account what the pitch has been doing since morning. And this shot that early in the innings wasn't a good idea. They need a partnership. And that's what they haven't found so far. 5 down, 17th over in progress. Only 63 on the board. A lot to do for Faisalabad here. And Lahore Blues are now in good control of this game. Well, you're spot on. What we've been mentioning for quite some time now, that you got to spend some time in the middle, got to make sure that you apply yourself. You got to get your eye settled in, and that has not been the case with the Faisalabad batters. On the pads, once again, the loud shout, he's begging. That's definitely pitching outside leg stump, and that is what the umpire must be thinking. What are you appealing for? But it's that excitement when you're going through a spell like this, you think everything that hits the pad has to be leg before. Now this pitch may be on the 5th stump, outside leg stump. But Hunain, he was pleading, please raise your finger. 17 gone, 63 for 5. Salman Irshad now to bowl from the far end, and he has given away only 6 runs in the 4 overs that he has bowled. Extremely economical and was on target. Wasn't lucky enough to pick up a wicket, but now is the time. They're 5 down already. Batters under pressure, and bowlers with their tails up and with attacking positions, catching positions. There's a slip, there is a short mid-wicket. Man in covers, man at extra cover, point, mid-off, mid-on.
and already waiting for the shot. Attacking captaincy by Imran Butt. And that is something which should be displayed, and he has displayed that. Once your fast bowlers have taken wickets, make sure that you put the opposition on the back foot, and that's where you apply the further pressure. Hunain Shah picked up wickets, and now he's gone back to Salman Irshad. Imran Butt there, he's having a good time today. Good bowling changes. All the bowlers have responded well to their captain today, and they've made this total 240 look like a big one by picking up wickets and making it difficult for the batters to score runs. Well, this is a time where the skill set, the composure of a player comes into play. Someone of Fahim Ashraf's caliber, who has represented Pakistan in 3 formats across the years, has been a prolific performer in Pakistan Super League as well. So that is where your composure, your class comes into play. Sometimes just a matter of a couple of seasons or one good season that you regain your form, you regain the confidence. Do you know how long he has been in the circuit? Any idea? And lastly, I remember it was 2017 or 16 where he played his first season. It's 8 years now. It's 8 years in the top circuit. So you were talking as if it's been 6 months and he needs one good season there. But I agree with you that the talent he possesses has not been justified. When you see his stats, you feel, why not? And it's hard to know when you have so much gift from God, why does that talent not translate into big performances? And he's somebody who's been given ample of chances at the international level. People wish for that sort of opportunities. There we see 80 matches, 15.80 the average, only 350s with the man of his talent. This is something that definitely needs to go up. That's a good, quick single there by Fahim Ashraf. He's off the mark now. Yeah, totally understandable. He has not justified his talent. Has been provided with the ample amount of opportunities, not only the domestic cricket, but at the international level as well. But Salman, I believe that is where the domestic cricket comes into play. If you're not performing up to the mark in international cricket, you've been sent back to domestic circuit. So what cricket will come under inspection when he's averaging 15 in domestic cricket? I would like an answer for that. A good length delivery to end the over by Salman Irshad. We'll come back to that surely in the next spell. 18 done, 65 for 5. ये आखिरी बैटिंग पेयर है, मुस्तनद बैटिंग पेयर जिससे कहा जा सकता है फ़हीम और मोहम्मद सलीम। फ़हीम अशरफ पिछले मैच में अपनी टीम के सरकर्दा स्कोरर थे, जिसमें सलीम ने भी निस्फ सेंचुरी बनाई थी। लेकिन ये कंडीशन जाहिर है कि ज़्यादा चैलेंजिंग है, ये हदफ ज़्यादा चैलेंजिंग है। 242 रन और अब ये टारगेट जो है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगने लगा है। हालांकि इनिंग्स से आगाज़ पर बिल्कुल लगता था कि ये काबिल अबूर है। हुनैन ने इसे बेहद मुश्किल बना दिया अपने स्पेल के ज़रिए। और अली बड़ी हद तक जिस तरह ऑफ एयर बात हो रही थी, इन्होंने वही किरदार अदा किया है जो
अहमद दानियाल ने किया था, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की थी पहली तब्दीली पर आकर लाहौर वाइट्स के लिए। और शानदार डिलीवरी और विकेट भी। इस बार ये उछली, पेस, बाउंस, मूवमेंट और 5 विकेटें हासिल कर ली हुनैन शाह ने अपने कैरियर में। पहली बार सेट बैट्समैन सलीम गए। या एक बार फिर बहुत ही शानदार लेंथ हुनैन शाह की जानिब से। बिल्कुल डिजर्व करते हैं ये सारी सेलिब्रेशन, क्योंकि बहुत ही शानदार स्पेल यहाँ पे हुनैन शाह ने की है। बहुत ही एक्यूरेट, पेसी और विकेट टेकिंग डिलीवरीज की है। देखिए एक बार फिर किक ऑन हुआ बॉल और एरिया को अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट किया है। जो लेंथ बॉलिंग में थोड़ा मुश्किलात हुई हैं बैटर्स के लिए, और बार बार उसी को एक्सप्लॉइट किया है हुनैन शाह ने। सलीम वापस जाएंगे 11 रन बनाकर। 66 पर 6 फैसलाबाद रीजन। अली असफन नए आने वाले बैटर। ये मुश्किल वक्त है बैटिंग पे आने के लिए, क्योंकि एक नौजवान उभरते हुए बॉलर अपनी प्राइम फॉर्म में है, अपनी जिंदगी का बेहतरीन स्पेल करते हुए। हुनैन शाह, आसान नहीं होगा इनके लिए भी यहाँ पे सरवाइव करना। अभी हालिया कायदे आजम ट्रॉफी के फाइनल में ये खेले थे फहीम अशरफ के साथ कराची के सामने पार्टनरशिप में। विकेट पर खासी देर मौजूद रहे थे अली असवंद 5वें दिन की इब्तिदा में, लेकिन अब ये रिकॉर्ड खातिर खान नहीं है। जिस तरह फैसलाबाद की टीम मैनेजमेंट ने इन्हें ऑलराउंडर नामजद किया हुआ है अपनी प्लेइंग 11 में, ये उससे बहुत ये कमतर ये हिंसे। और अब इनको तलाश रहेगी हुनैन शाह को अपनी 6 विकेटों की। यहाँ पर सिर्फ 3 बॉलर ऐसे रहे हैं जिन्होंने रावलपिंडी में आकर लिस्ट ए क्रिकेट में 6 विकेटें हासिल की 50 ओवर के खेल में, जिसमें वकार यूनुस भी हैं। लेकिन इस स्पेल की खास बात है इनकी लेंथ। बार बार इन्होंने शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल किया है, टीजिंग लेंथ पे बॉल किया है और गेंद सीम होता हुआ नजर आया, और यही वजह है कि इन्होंने इतनी जल्दी ये 5 विकेट हासिल कर लिए और सिंगल हैंडेडली ये जो मैच है लाहौर ब्लूज की तरफ टिल्ट कर दिया। जी हाँ, ये 3/4 लेंथ कहलाती है, उसको अपनाया है हुनैन शाह ने विकेटों की लाइन से, क्योंकि करते हुए नजर आए हैं। इससे मोहलिक रहे, खेलने में मजबूर किया है इन्होंने राइट हैंडर्स को। थर्ड मैन बाउंड्री पर कोई फील्डर नहीं, क्योंकि 2 खिलाड़ी गली में मौजूद थे, इसलिए 4 रन मिल गए इस नच के नतीजे में। जहां थोड़ा ओवर अटैक करते हुए इमरान भट्ट, थर्ड पे कोई फील्डर मौजूद नहीं था, ये टेस्ट मैच फील्ड सेट कर रखी थी। और क्यों ना हो, क्योंकि आपका एक तेज बॉलर बहुत शानदार रिदम में है जो मुश्किलात डाल रहा है बैटर्स के लिए, और अभी बहुत सारे रन्स चेज करने हैं फैसलाबाद को, तो आप कहीं ना कहीं अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन एक ही बॉल के लिए फील्डर को रखा गया, अब वापस भेज दिया गया थर्ड बाउंड्री पे, एक्स्ट्रा गली का फील्डर था। मूवमेंट जो है वो खत्म नहीं हुई, और हुनैन की खास बात यह है कि इनकी जो गेंद है वो अच्छी सीम पर लगती भी है, ये इनकी सलाहियत है। मोहम्मद शामी रात हम देख चुके हैं, उसका मुजाहरा वांगडे स्टेडियम में। वो रात मुसलसल दूसरे मैच में भी 5 विकेटें लेने में कामयाब हुए वर्ल्ड कप में मोहम्मद शामी, और उसकी खास बात यही थी कि क्योंकि वो को गैर मामूली तौर पर तेज बॉलर नहीं है, सीम जो है ये एक आर्ट है, सही जगह पर गिराना, जो इनके बड़े भाई को भी आता है। नसीम शाह की भी वही ताकत है, और हुनैन शाह जो हैं इनकी भी हाथ से गेंद अच्छी निकल रही है आज। जी हाँ, रिस्ट बहुत स्ट्रांग है, और यही खासियत है इनमें भी, और शामी का भी जो जिक्र आपने किया कि रिस्ट बहुत हार्ड है, स्ट्रांग रिस्ट है, जिसकी वजह से वो कंट्रोल कर पाते हैं सीम को,
और अपनी मर्जी के एरिया पे इस सीम को फेंक सकते हैं। और ये क्वालिटी इतने यंग एज में हुनैन शाह ने हासिल कर लिया। आई होप कि ये कंटिन्यू रखें इसी चीज़ को, अपनी बेसिक्स को, जो उनकी स्ट्रेंथ है, इसको इसी तरीके से इस्तेमाल करते चले जाएं। क्योंकि अभी 6 ओवर्स में सिर्फ 26 रन देकर 5 विकेट्स हासिल कर लिए। और क्या शानदार स्पेल यहाँ पे हुनैन शाह की जानिब से देखे, लेंथ बहुत ही कमाल की है। पहली विकेट हासिल की थी हुरैरा की, जरा जल्दी कर गए, ऑन साइड तो खेलना चाहते थे और आसान सा कैच हाशिम ने लिया। उसके बाद फिर ये सीधा ही खा गए, क्रॉस द लाइन। यहाँ पे गलती की इरफान नियाजी ने। उसके बाद लेंथ शुरू हुई, अलीशान भी लेंथ पे चकमा खा गए। एक बार फिर गलत शॉट आसिफ अली की जानिब से भी। बैक लाइव, यहाँ रन लेना मुनासिब ख्याल नहीं किया फहीम अशरफ ने। ये आप देख सकते हैं इनकी 5वीं विकेट हुनैन शाह की। इनकी टीम अगर आज जीत गई तो ये प्लेयर ऑफ द मैच के भी उम्मीदवार होंगे। आज इन्होंने अपनी शनाख्त जो है वो बना ली, अपनी अलग शनाख्त। इससे पहले जो है ये नसीम शाह के भाई के तौर पर पहचान रखते थे क्रिकेट हलकों में। उबैद शाह और हुनैन शाह, ये दो उनके भाई हैं, दोनों सीमर हैं। ये आज बड़ा दिन है इनकी फैमिली के लिए, जैसे आपने कहा पहचान बनाई है। और तारिक भाई, पहचान परफॉर्मेंस से ही आती है कि आप बड़ी स्टेज के ऊपर जब परफॉर्म करते हैं, बड़े ओपोनेंट्स के अगेंस्ट आप परफॉर्म करते हैं, विकेट्स हासिल करते हैं, तो डेफिनेटली आप जैसे लोग बात करते हैं। और एक बहुत बड़ी बात होती है यंगस्टर के लिए कि जब लोग, आप जैसे लोग बात करना शुरू करते हैं उनकी क्वालिटी को लेके, रादर देन के नसीम शाह के भाई हैं, लेकिन उनकी अपनी इंडिविजुअल एक पहचान जब इस मैच के बाद डेफिनेटली बन जाएगी। और ये चीज़ मिसिंग थी तारिक भाई, हम इनको साल 1.5 साल से फॉलो कर रहे हैं डिफरेंट टूर्नामेंट्स में। एक परफॉर्मेंस, बड़ी परफॉर्मेंस मिसिंग थी और वो आज आई थिंक इस मैच के बाद एक डिफरेंट हुनैन शाह नजर आएंगे हमें। ये वक्त लगता है क्योंकि पिछला सीजन जो है इनका पहला था। शुरू के दिनों में खासे तेज़ लगे थे, लेकिन बाद में मुमकिन है मुख्तलिफ तर्ज से ट्रेनिंग करते रहे हूँ। बाद में थोड़ा सा इनकी हैवी लेग्स लगती थी जब ये भागते हुए आते थे, लेकिन अब अच्छे रिदम में इस साल काफ़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलिए, लंबे स्पेल किए। थर्ड मैन के फील्डर नहीं रोक सके इसे डाइव के बावजूद। खासा बाहर खड़े हुए थे हाशिम बाउंड्री पर। ये तेज पिच है, यहाँ पर ये फाइन रह सकते हैं 2 स्लिप्स की मौजूदगी में भी। या बहुत तेजी से बॉल गया है थर्ड की जानिब। ऑल्दो हाशिम का शुमार फिटेस्ट क्रिकेटर्स में होता है, लेकिन क्योंकि ये पूरा फुल ब्लडेड ड्राइव था, गाइड किया था बल्ले को, एंगल किया था, देखिए एंड तक उसने एंगल किया है, जिसकी वजह से बहुत स्पीड से बॉल गया और शायद ये बॉल रोकना चाहिए था। जी, और जब इस तरह का बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है, जो सलमान रिशाद का जो बॉलिंग एक्शन है, तो फाइन लेग और जो थर्ड मैन के फील्डर हैं, यहाँ गेंद ज्यादा फाइन ही जाती है एज लगकर ऐसे बॉलर पर। काफ़ी खुशकिस्मत है इमरान भट्ट कि उनके पास इतनी बॉलिंग में वैरायटी मौजूद है और एक्सपीरियंस मौजूद है। उमैद आसिफ की बात करें, बहुत कंट्रोल एक्सपीरियंस बॉलर हैं। सलमान इरशाद के अंदर एक वो एक्स फैक्टर है स्लिंगी होने का। हुनैन शाह के पास वो पेस है, वो अकल है, और उसके बाद उस्मान कादिर है जो एक लेग स्पिनर है। तो काफ़ी खुशकिस्मत है इमरान भट्ट के इतनी अच्छा बॉलिंग यूनिट इनके पास मौजूद है। और अब गोइंग फॉरवर्ड तारिक भाई, कैप्टन को टॉस पे भी अब सोचना होगा, क्या डिफेंड किया जाए, क्या चेज किया जाए। उम्दा पुल शॉट, पहुंच जाएंगे मिड विकेट से खिलाड़ी, बाउंड्री बचाने में वो कामयाब रहे। 3 रन का इजाफा। यहाँ पर रिजवान हुसैन मुतबादिल खिलाड़ी आए थे मैदान पर। सलमान का ओवर जाता रहा 79 पर 6। जिक्र कर रहा था आगे मैं तारिक भाई कि गोइंग फर्दर इस टूर्नामेंट में अब कप्तानों को शायद अपनी स्ट्रैटेजी पे नज़र डालनी होगी, क्योंकि टॉस जीतकर अभी तक दोनों कप्तानों ने बहुत आसानी से पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है।
और स्ट्रगल करती हुई नजर आई हैं दोनों टीम्स। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि फैसलाबाद के कप्तान ने बहुत ही जल्दी फैसला किया था कि हम पहले बॉलिंग करेंगे। लास्ट मैच में इसी तरीके से लाहौर ब्लूज के साथ हुआ था और ये चेज करने में नाकाम रहे थे, और ऐसा लगता है कि यहाँ पे फैसलाबाद के साथ भी ऐसा ही होगा क्योंकि पूरा दिन बॉल हिलता है। और अली, मुझे लगता है कि कोई धूप लगने की वजह से, ज़्यादा धूप लगने के बाद इस वक्त जो है ये पिच कुछ तेज़ भी हो जाती है, इससे गेंद ज़्यादा कैरी करना भी शुरू हो जाता है, और अगर सीम के साथ कैरी हो तो फिर और मुश्किल हो जाती है बैट्समैनों को, जो आदी नहीं होते इस तरह की कंडीशंस में आमतौर पर खेलने के, ख़ास तौर पर जो आते हैं मैदानी इलाकों के बैट्समैन। जी हाँ, मुश्किलात तो होती है उनके लिए, और थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस भी, जैसे आपने कहा वो खुश्क होने की वजह से एक्स्ट्रा बाउंस मिला है। जो हुनैन शाह, जो जितनी भी आप विकेट्स पे उनका नजर डालेंगे वो एक्स्ट्रा बाउंस है, अच्छी लेंथ से एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से उनको विकेट्स मिली हैं। तो ये होगा, पिंडी की पिचेस मशहूर हैं एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से भी। अब ये दिलचस्पी रहेगी उस्मान कादिर की फहीम अशरफ के साथ, क्योंकि ये दुखती रख गए स्पिन बॉलिंग फहीम अशरफ के लिए। ये अक्सर अपनी विकेट खो देते हैं इस तर्ज की बॉलिंग पर। अभी तक एहतियात से खेले हैं, अच्छा लग रहा है उस्मान कादिर को नपी तुली बॉलिंग करते हुए देखना। कोई लॉन्ग हॉप नहीं कर रहे, कोई फुल टॉस नहीं देखने में आ रही। उम्दा शॉट इस बार एंड बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया, और तेज भी डबल फिगर में दाखिल हुए इस चौके की बदौलत कप्तान फहीम। थोड़ा मुंह में बॉल गिर गया उस्मान के जानिब से। इससे पहले हमने देखा इनकी लेंथ बहुत ही शानदार रही है, लेकिन शायद ये इस मैच में पहला मौका है कि इतना ज्यादा फुल बॉल कर दिया, बिल्कुल ही मुंह में कर दिया फ्लाइट के साथ। इस बार गुगली थी, फहीम अशरफ ने एक रन हासिल किया और कोई मुजायका नहीं है। अगर गेंद जो है ये मुंह में गिर जाती है बकौल आपके, या फुल टॉस भी हो जाती है, तो वो कोई हर्ज नहीं, बजाय इसके कि जो ये कट और पुल एक ओवर में एक ये करवा दिया करते थे, उससे ये बेहतर है। अपनी लेंथ को मुस्तकिल करने के लिए एक लेग स्पिनर को ड्राइव लग जाना, इसमें कोई बुराई नहीं यार, यही इंप्रूवमेंट आई है। इससे पहले हमने जब भी इनको बॉलिंग करते हुए देखा, एक ओवर में 2 से 3 बॉल ये गलत करते थे लेंथ को लेके, लेकिन जैसे आपने कहा ये ब्रेव बॉलिंग है। आप फुल टॉस हो जाए, चौका लग जाए, इस चीज को हावी नहीं होने देना, बीइंग अ लेग स्पिनर ऐसा होगा। इसमें मजीद बात करेंगे क्योंकि 21 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, 83 पर 6 फैसलाबाद रीजन। ज़्यादा खुशाइन ये स्कोर कार्ड नहीं है फैसलाबाद रीजन के लिए। सिर्फ फैजान ऐसे प्लेयर है जिन्होंने थोड़ी ही फाइट शो की, 30 रन बनाए, उसके अलावा बहुत ही ख़राब शॉट्स खेलते हुए सारे बैटर्स आउट हुए। और अब फ़हीम अशरफ और अली असफन पे बात आ गई है। अब दोनों जानिब से हमें स्पिन देखने को मिलेगा, क्योंकि एक और बहुत ही शानदार उभरते हुए नौजवान ऑलराउंड क्रिकेटर कासिम अकरम आ गए हैं। कासिम अकरम जो है अभी बैटिंग में खातिर खार नहीं खेल सके हैं, दोनों मैचों में जल्दी आउट हो गए, उसका इजाला करने का मौका है। अभी हाल ही में इन्होंने 6 विकेटें हासिल की थी एक ही मैच में कासिम अकरम ने, ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हुए। जिम्बाब्वे में पाकिस्तान शहीन्स के साथ इनको पहले नहीं खिलाया जा रहा था, इन पर जो मुबस्सिर खान है उनको तरजीह दी जा रही थी। गेंद टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बहुत पोटेंशियल मौजूद है कासिम अकरम में। आपने बॉलिंग का जिक्र किया, बॉलिंग में ये विकेट्स लेते हैं, लेकिन मुझे इनसे ये गिला रहेगा कि ये सेट होके आउट हो रहे हैं। आज भी 37 रन पर खेल रहे थे, ये वाइड हो जाएगा, लेकिन शायद बॉल नहीं, वाइड का लेट इशारा अंपायर की जानिब से, अलीम डार की जानिब से।
तो गिला इनसे इनकी शॉट सिलेक्शन का है, क्योंकि जब आप सेट हो जाते हैं तब आपको आउट अपनी विकेट नहीं गंवानी है, और ये आर्ट ऑफ बैटिंग है। ये कितनी ज्यादा टर्न हुई है गेंद, और कासिम अकरम इसके लिए नहीं जाने जाते हैं, गेंद को टर्न करने के लिए ज्यादा पुश करते हैं कासिम अकरम। और ऐसा महसूस होता है इनको देखकर कि अब शायद ये अपनी बॉलिंग पर कुछ ज्यादा तवज्जो देने लगे। मुमकिन है उस वजह से भी बैटिंग में गिरानी आ रही हो। लेकिन अगर ये थोड़े स्मार्ट क्रिकेटर हों, क्योंकि पोटेंशियल दोनों एंड्स पे बहुत ज्यादा है, बैटिंग में भी बहुत अच्छी पोटेंशियल है, बॉलिंग में भी है, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं अपनी बैटिंग पे भी, दोनों चीजों पे। क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा कि ये थोड़ा फोकस टिल्ट हो गया है बॉलिंग की तरफ, और इसी वजह से जो बैटिंग है वो सफर कर रही है। लेकिन एज अ पाकिस्तान टीम की अगर बात करें, इंटरनेशनल टीम की बात करें, तो हमें जरूरत है एक बैटिंग ऑलराउंडर की, एक अच्छा बैटर, मिडिल ऑर्डर बैटर जो कि 10 ओवर करने की पोटेंशियल रखता हो। इनमें वो सलाहियत है, लेकिन क्या अपनी बैटिंग पे उतना काम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क है कासिम अकरम के लिए। सिर्फ 3 रन आए इनके पहले ओवर में, 22 ओवर्स के बाद 86 पर 6। ये दिलचस्प है, ये जो रिस्ट स्पिनर्स का चार्ट आप देख रहे हैं पाकिस्तान कप में 2019 से अब तक, ये उस्मान कादिर जो हैं ये इन 4 बरसों में सिर्फ 19 मैचेस खेले, 38 विकेटें इन्होंने हासिल की हैं। अच्छा रिकॉर्ड है, 26 की अच्छी औसत है, एक स्पिनर के लिए अच्छी औसत समझी जाती है। और यासिर शाह जो हैं ये क्योंकि बलूचिस्तान के कप्तान थे, ये बेशतर जो हैं वो मैचेस खेलते रहे। यासिर शाह, उसामा पिछले साल खेले थे, मुसलसल पूरा सीजन खेले थे सेंटर पंजाब के लिए। या और उसामा लास्ट ईयर पाकिस्तान कप में बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए थे, जिसका सिला उनको मिला पाकिस्तान टीम में, उनको जगह मिली। ऑल्दो उस्मान कादिर की विकेट ज्यादा है, लेकिन उनकी एवरेज बहुत कम है। ये वो लॉन्ग हॉप थी जिसके मुंतजिर थे फहीम अशरफ, और उन्होंने किसी मुश्किल के बगैर इन्हें खेला। खासा इलाका खाली है स्क्वायर के सामने, कोई भी फील्डर बाउंड्री पर नहीं। या लेंथ एक बार फिर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि जिसमें बेहतरी आई है, इस बार शॉट ऑफ द लेंथ आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ये इजी पिकिंग्स हैं, इस बॉल को नहीं बख्शने वाले हैं फहीम अशरफ, क्योंकि ये कट बॉल अच्छा खेलते हैं, स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, कट शॉट पे बहुत महारत हासिल है। ये ज्यादा बेहतर है लेफ्ट हैंडर को, अगर ये अराउंड द विकेट आते हैं, और ये इनके खेल में एक और एरिया है जिस पर ये मेहनत कर सकते हैं उस्मान कादिर कि लेफ्ट हैंडर को किस तरह ज्यादा बेहतर बॉलिंग करनी है। राइट हैंडर के सामने इनको कामयाबी मिल रही है, ये ज्यादा कंफर्टेबल लगते हैं मुझे राइट हैंडर के सामने उस्मान कादिर। लेकिन बाएं हाथ के बैट्समैन पे जहां तक बॉलिंग करने का ताल्लुक है, इस पे और मेहनत कर सकते हैं। जाहिद महमूद के अलावा फैसल अकरम है, एक और लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, ये खेल रहे हैं अभी भी मुल्तान से। पिछले मैच में इन्होंने अच्छी बॉलिंग की मुल्तान के लिए फैसलाबाद के सामने। फैसल अकरम ओवर का इख्तिताम 91 पर 6। जी हाँ, इसमें कोई शुबा नहीं कि पाकिस्तानी कौम का इस वक्त जो बड़ा पैशन है क्रिकेट है। शाहीन अफरीदी और बाबर आजम इस वक्त दोनों आलमी नंबर 1 हैं वनडे क्रिकेट में। कल पाकिस्तान टीम को न्यूजीलैंड से खेलना है एक बार फिर चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में।
बड़ा यहाँ मैच है। ऐसा ऐसा ही अच्छी पार्टनरशिप जो है ये सर उठाने लगी है। बीच में से आगे लेके दोनों एंड से रन्स बन रहे हैं, अच्छा साथ दे रहे हैं अली असवंद फहीम अशरफ का, जो जिम्मेदारी से खेल रहे हैं। ये वेरी वेल डन, ये हो रहा। स्लिप रखी है कासिम अकरम के लिए। यहाँ रूम के लिए क्रैम्प कर रहे हैं कासिम अकरम, क्योंकि एलबीडब्ल्यू अक्सर होते हुए हम देखते हैं फहीम अशरफ को ऑफ स्पिन के सामने। यहाँ इनकी कोशिश रहेगी कि असफन ज्यादा सामना करें, ये बेहतर खेल रहे हैं। एक ही रन बनेगा। अली फैसलाबाद ने भी तकरीबन वही किया इस मैच में जो पिछले मैच में लाहौर ब्लूज ने किया था। शुरू में बड़ी मेहनत की, विकेटें ली इनके बॉलर्स ने, फिर उनकी गिरफ्त ढीली पड़ती चली गई। यूं यूं सूरज सर के ऊपर आया और अब इनकी वही हालत है जो लाहौर ब्लूज की थी लाहौर वाइट्स के खिलाफ इस पिच पर। यहाँ सिमिलर है क्योंकि 132 रन पर लाहौर ब्लूज ऑल आउट हो गई थी लाहौर वाइट्स के अगेंस्ट। इसका काफी हद तक कसूर तारिक भाई ओपनर्स पे जाता है। मजीद बात करेंगे क्योंकि 24 ओवर मुकम्मल हो गए, 94 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हैं फैसलाबाद रीजन के। जहाँ ये लाहौर के बाद रावलपिंडी भी ऐसा इलाका है जो खाने पीने की और चटखारे की अशिया के लिए मशहूर है। अली इसके बारे में आपको मजीद बता सकते हैं? ये स्पेशलिटी है ग्राटो जलेबी, ये लाहौर में भी बहुत मशहूर है। बहुत ख़ास बात है इनकी थिकनेस, इनके अंदर इनकी मिठास। ये रावलपिंडी की ख़ास बात है जो अब लाहौर तक पहुंच गई है और लाहौर में भी बहुत मशहूर हो गई है। बात कर रहे थे दोनों टीम्स जो भी चेज करने गए हैं। तारिक भाई जहाँ मुश्किल कंडीशंस होती हैं, आप अगर ओपनर हैं, आप वक्त ले रहे हैं, आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं और उसके बाद उस इनिंग को आप लंबा नहीं लेके जा रहे हैं, तो आप बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। क्योंकि दोनों साइड के बैटर्स ने ऐसा ही किया कि बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया और जब वक्त आया था रन्स करने का तब अपनी विकेट्स गवा दी। तो ऐसी कंडीशंस में जब आपने वक्त बिता लिया है तब एक क्राइम है अगर आप अपने विकेट ज़ाया कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पे फैसलाबाद के ओपनर्स ने किया। फैजान जो कि हम जानते हैं कि बड़ी हिट मारते हैं, वो अपनी नेचर के अगेंस्ट खेले, बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया और फिर आउट हो गए। ऐसा ही लाहौर ब्लूज ने किया था, बहुत ज़्यादा वक्त लिया और आउट हो गए। अगर आप यहाँ सेट होते हैं तो फिर आपको कैरी करना है, लंबा लेके जाना है अपनी इनिंग को। इस बार फ्लिपर करने की कोशिश की, स्लाइडर जो है वो ज्यादा बड़ी ताकत है फ्लिपर की निस्बत भी उस्मान कादिर की, जो ये राइट हैंडर को करते हैं। लेकिन यहाँ इनके पैड्स को अटैक करना चाहते थे लेफ्ट हैंडर के फ्लिपर के जरिए। और ये गुगली इस बार मुश्किल इसे टाल सके फहीम अशरफ। इनके जो वालिद थे गुगली के बाद उनकी बड़ी पहचान थी फ्लिपर, बहुत ही ताकतवर था अब्दुल कादिर का। ये आखिरी 3 बॉलों में 3 डिफरेंट डिलीवरीज देखी हमने उस्मान कादिर की जानिब से, लेग स्पिन, फ्लिपर और गुगली। एक बार फिर तेज बॉल था, ये यॉर्कर करने की कोशिश थी उस्मान कादिर की जानिब से, लेकिन अच्छा लगा है उस्मान कादिर का रिदम और इनका जो एरिया है जिसमें ये बॉलिंग कर रहे हैं। 25 ओवर्स के बाद 95 पर 6। की है उस्मान कादिर ने, काफ़ी मेहनत की है। ऑन द सीज़न की तो हम बात करें, लेकिन मैंने इनको पर्सनली देखा है लाहौर में ऑफ द सीज़न मेहनत करते हुए।
क्लब का मैच हो, किसी छोटे डिपार्टमेंट का मैच हो, ये नहीं मिस करते हैं और उस चीज़ का जो सिला है इनके रिदम के फॉर्म में हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। या पहले से ज्यादा फिट लग रहे हैं, ज्यादा चाक चौबंद हैं। अच्छा ओवर शुरू किया कासिम अकरम ने, तो दोनों स्पिनर्स जो हैं इस वक्त परेशान किए हुए हैं इस पार्टनरशिप को। कमेंट्री बॉक्स में अब आएंगे यहाँ एजाज अहमद और उनके साथ हैं नौमान चौधरी। अच्छी गेंदबाजी का सिलसिला जारी है कासिम अकरम की जानिब से। मौके पर पार्टनरशिप की जरूरत है फैसलाबाद की टीम को, और अली असफंद और फहीम अशरफ ने कदरे धीमे अंदाज से बारी की है। बिल्कुल आई लाइन के नीचे खेल रहे हैं फहीम, और ये बहुत जरूरी है कि आप इंतजार करके खेलें, गेंद को अपने बैट पर आने दें। किसी किस्म की जल्दबाजी की जरूरत नहीं है फैसलाबाद रीजन की टीम को, और खास तौर पे फहीम अशरफ को लंबी बारी करनी है। खूबसूरती से निकाला फहीम ने इस गेंद को, गेंद चली है गैप में और बिल्कुल आखिर में फील्डर ने सलमान इरशाद ने इस गेंद को रोका अपने पांव के सहारे। 2 रन लिए फहीम अशरफ ने। वेल सूरत हाल काफी मुश्किल है इस वक्त फैसलाबाद के लिए। एक अच्छी तेज मुस्तनद इनिंग चाहिए इन दोनों बैटर से, जो कि इस वक्त कोशिश में है कि किसी न किसी तरीके से अपनी टीम को मुश्किलात से निकाल पाए। लेकिन कर्टसी गुड बॉलिंग, हमने देखा कि जो प्रॉपर लेंथ है, इवन अगर हम स्पिनर की बात करें, पेसर्स की बात करें, लाहौर की तरफ से बड़ी नपी तुली रही। या बिल्कुल ये बॉलिंग आज बहुत जबरदस्त रही, खास तौर पर हुनैन शाह की जानिब से। हिलने का मौका नहीं दिया फैसलाबाद के बैटर्स को। 26 के बाद 98, 6 विकेट के नुकसान पर। ये कहानी रही है फैसलाबाद की इनिंग्स की। 100 गेंदें खाली गई हैं इस इनिंग्स में, लगभग 16.4 ओवर्स। जब आप 240 के करीब रन चेस कर रहे हैं, वो भी 45 ओवर के मैच में, तो ये एक मुजरिमाना अमल है कि आप 16.5 ओवर जो है वो डॉट बॉल्स खेलें। अगरचे विकेटें गिरी हैं, अगरचे अच्छी गेंदबाजी हुई है, लेकिन सिंगल और डबल 2 ऐसी चीजें हैं जिन पर इत्तेफाक करना चाहिए था फैसलाबाद के बैटर्स को, क्योंकि इससे प्रेशर बैट्समैनों पे नहीं आता। स्विच हिट करने की कोशिश, कदरे धीमा गेंद था उस्मान कादिर की तरफ से। खुशकिस्मत रहे यहाँ पर फहीम अशरफ, क्योंकि बॉल जिस अंदाज से वो खेले थे, ड्रैगन होते होते बचे। स्वीप किया फहीम ने उम्दगी के साथ, लेकिन बिल्कुल इसी किस्म की शॉट्स के लिए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट पर फील्डर को तैनात किया हुआ है इमरान भट्ट ने उस्मान कादिर के लिए। और उस्मान कादिर भी आज अच्छे निक में दिखाई दे रहे हैं। तवातुर से एक ही जगह पे गेंद कर रहे हैं। हुनैन शाह के आने से पहले हालात काफ़ी बेहतर थे फैसलाबाद की टीम के, लेकिन उनकी आमद के बाद एकदम से जो विकेटें हैं वो गिरना शुरू हुई, और आज उन्होंने अपनी लिस्ट ए क्रिकेट की जो बेस्ट बॉलिंग है उसकी फिगर्स हासिल किए, और उसका जो इम्पैक्ट है वो ना सिर्फ उनकी बॉलिंग में बल्कि ओवरऑल टीम एफर्ट में भी नजर आया। इस सिंगल के साथ 3 फिगर्स पे जा पहुंची है फैसलाबाद की टीम, लेकिन विकेट कॉलम जो है वो खातिर ख्वाह कुछ नजर नहीं आ रहे। इससे इज्जत में काफी कमी आती है एक टीम की। क्या मजीद 142 रन दरकार हैं। लेग स्पिनर को हाथ से रीड करना ही असल महारत होती है बैट्समैन की। अगर आप उसमें कामयाब हो जाएं,
बिल्कुल गेंद रिलीज हो रही हो वहां से रीड करने में। छोड़ के किया इस गेंद को, खूबसूरती के साथ खेले फहीम अशरफ, और बड़ी जरूरत थी इस बाउंड्री की फैसलाबाद की टीम को। इस वक्त स्ट्राइक रेट बेहतर चाहिए क्योंकि फहीम के पास वो तमाम तर तजर्बा है, ना सिर्फ डोमेस्टिक इंटरनेशनल लीग्स का भी। थोड़ा सा रूम बनाया, पीछे हटकर गैप को हासिल करने में कामयाब हुए, एक्स्ट्रा कवर, और मिड ऑफ के फील्डर के दरमियान से अच्छा शॉट था, अच्छा कमबैक कादिर का। डॉट बॉल के साथ उस्मान कादिर के इस ओवर का अख्ताम। 6 रन्स बने फैसलाबाद के लिए 27 के बाद 104, 6 विकेट्स के नुकसान पर। चलो चलो लैड्स, चलो लैड्स, ओ बॉयज। शाम कहाँ खड़े हो बच्चे, सर्कल देख। ये अच्छी साझेदारी अली असफंद और फहीम के दरमियान। नो बॉल बड़ा कम देखने को मिलता है कि स्पिनर्स नो बॉल करें, खासतौर पे ऑफ स्पिनर। अक्सर पॉपिंग क्रीज के पीछे से गेंद करते हैं, इतना बड़ा रनअप नहीं होता, लेकिन इस मौके पर बड़ा नजदीकी मामला दिखाई दे रहा है कासिम अकरम का। पीछे हटकर हिट लगाई, फील्ड को अबूर करने में कामयाब हुए अली असफंद। ये दूसरी तवातुर से लगाई गई बाउंड्री फैसलाबाद रीजन के लिए। ये आखिरी लम्हात का स्ट्रोक था, पहले पीछे हटे और उसके बाद जब बॉल थोड़ा सा ब्रेक होकर अंदर आया, बैटर और बॉलर दोनों एक दूसरे को रीड कर रहे थे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने देखा कि बैटर जो है बैकफुट पे जा रहा है, उसके बाद बॉल को ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर फेंका, ब्रेक हुआ, और उसके बाद जो फिनिशिंग स्ट्रोक था उसको अच्छा फिनिश किया 4 रन्स के लिए। वाइड बॉल, और इजाज अक्सर ये होता है कि जब आप एक्स्ट्रा के साथ ओवर का आगाज करें, फ्री हिट पे बाउंड्री कंसीड करें, तो प्रेशर बॉलर पर आ जाता है, और इसी किस्म के प्रेशर में एक और वाइड बॉल यहां पर कंसीड किया कासिम अकरम ने। यकीनी तौर पर यहाँ पर कोशिश यही है फैसलाबाद की कि अब विकेट को इंटैक्ट रखें, क्योंकि अर्लियर ऑन हमने देखा कि थोड़ा सा आगाज वॉचफुल था। बोल्ड कर दिया कासिम अकरम, बड़ा जबरदस्त कमबैक इस ओवर में। एक बाउंड्री जरूर लगाई थी अली असफंद ने, लेकिन बेहतर अंदाज से कमबैक रहा कासिम अकरम का। उन्होंने अली असफंद की विकेट हासिल की, और ये पार्टनरशिप जो आहिस्ता आहिस्ता खतरा बन रही थी लाहौर ब्लूज के लिए, उसका इख्तिताम किया कासिम ने। जी हाँ, एग्जैक्टली यहाँ पर रिकवरी मोड ऑन था। पिछले लगभग 7 ओवर में कोई विकेट नहीं गिरा था, 34 रन बने थे। यहाँ पर ये बॉल जो कि ऑफ स्टंप पे जाकर लगा, B2A कंप्लीटली। कोई रिप्लाई नहीं था अली असफंद की जानिब से। 16 रन की इनिंग खेली 21 बॉलों में, और यहाँ पर फैसलाबाद 110 पे 7। अभी आप बैट्समैन से पहले रेडी हो जाना। खुरम शहजाद बैटिंग करने आए हैं 90 नंबर पर। मुश्किलात का शिकार फैसलाबाद की टीम। 35
लिस्ट ए मैचेस में सिर्फ 5 की औसत से 38 रन किए हैं। प्रॉपर टेलेंडर हैं, बैटिंग का हुनर बेहतर अंदाज से नहीं जानते, लेकिन इन्हें साथ देना है फहीम अशरफ का। ये एक एंड संभाले हुए हैं फहीम। कासिम अकरम ने 44 रन की शराकतदारी का इख्तिताम किया। ओए यार यहाँ पर मजीद फील्डर्स आने चाहिए खुरम के इर्द गिर्द दायरे में, ताकि उन पे प्रेशर आए, और कोशिश यही होनी चाहिए कि जल्द अज जल्द वाइंड अप किया जाए लाहौर की जानिब से। लेकिन ये सिंगल देकर, क्योंकि ये 5वां बॉल था, एक बॉल का अभी खेल बाकी है, लेकिन अच्छी विकेट हासिल की अच्छे स्टेज पे, जब 44 रन की इनफैक्ट जो पार्टनरशिप थी वो बन चुकी थी, और पिछले कोई 6-7 ओवर से कोई विकेट नहीं गिरा था, रीबिल्डिंग प्रोसेस था, उसमें ये विकेट उड़ाई। बड़ी अच्छी गेंद पढ़ने के बाद बाहर की जानिब निकली। फहीम अशरफ बीट हुए डॉट बॉल के साथ। कासिम अकरम के कामयाब ओवर का इख्तिताम 28 के बाद नेल्सन 7 विकेट के नुकसान पर। हुसैन तलत को लाया गया है अब पवेलियन एंड से बॉलिंग के लिए। 7 विकेटें गिर चुकी हैं, 88 लिस्ट ए मैचेस में 32 करियर विकेट्स हैं हुसैन तलत की। पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी हुसैन की जानिब से। तैयब ताहिर की बड़ी विकेट दिलाई थी लाहौर ब्लूज की टीम को। फहीम अशरफ इस सिंगल के साथ स्ट्राइक पर आ जाएंगे। हुसैन तलत का पहला बॉल था, जो कि थोड़ा सा लूजनर हो सकता है, लेकिन कितनी जल्दी वो ये 3 विकेट ले पाएंगे या नहीं, क्योंकि कोशिश यही होनी चाहिए कप्तान की कि यहाँ पर जल्द अज जल्द इन 3 बाकी मानदा खिलाड़ियों को आउट करें। जी हाँ, हुसैन तलत को लाया गया है अटैक में। सलमान इरशाद के 4 ओवर बाकी हैं, 3 ओवर सलमान इरशाद के, 4 ओवर उमैद आसिफ के। ऐसी सूरत हाल में जब आप नहीं समझते कि कप्तान को इनिंग को खत्म करने की जानिब जाना चाहिए, टेलेंडर्स को जल्द से जल्द आउट करने की अप्रोच से जाना चाहिए। थोड़ा सा आगे पड़ा हुआ बॉल था, मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर हुनैन को ट्राई किया जाता, क्योंकि ऑलरेडी वो 5 विकेट हासिल कर चुके हैं, अच्छी रिदम में हैं, और उनका बॉल जब वो हिल भी रहा, बैटर्स के लिए थोड़ी दिक्कत जरूर है, परेशानी है। अगर यहाँ पर इनको यूटिलाइज किया जाए तो माइट बी कि फैसलाबाद की जो टीम है उसको जल्द से जल्द वाइंड अप कर सकें। जी हाँ, हुनैन के अलावा सलमान इरशाद, उमैद आसिफ, ये दोनों ऑप्शंस भी मौजूद थे इमरान भट्ट के पास। उठा दिया इस गेंद को खूबसूरती के साथ फहीम अशरफ ने। डीप मिड विकेट पर फील्डर नहीं रोक पाए इस गेंद को। इस बाउंड्री की अशद जरूरत थी फैसलाबाद की टीम को, और इस चौके के साथ फहीम अशरफ अब 31 पर जा पहुंचे। अच्छा स्ट्रोक था, टच शॉट डिलीवरी थी, इतना ज्यादा बाउंस को के शॉर्ट पिच नहीं थी, लेकिन बैकअप लेंथ जरूर था, और फहीम अशरफ बिल्कुल तैयार थे। अच्छा फ्लो बल्ले का, मिडल भी अच्छा किया, और डीप में हुनैन शाह से सही तरीके से शायद पिकअप नहीं हुआ, अदरवाइज ये बॉल रुक सकता था। खेलते ही दौड़ पड़े थे फहीम अशरफ, अच्छा सिंगल लिया। अब ये सूरत हाल अगरचे मुश्किल दिखाई दे रही है,
फैसलाबाद की टीम के लिए, लेकिन जो डैमेज कंट्रोल यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टूर्नामेंट में किसी भी लम्हे पर आपको अगर बड़ी शिकस्त होती है तो आपके नेट रन रेट के लिए बहुत डेंटिंग होती है वो चीज़। तो यहाँ पर डैमेज कंट्रोल की बहुत हद तक ज़रूरत है फैसलाबाद की टीम को। ऑलरेडी लैक ऑफ पार्टनरशिप है और बिल्कुल इन लम्हात पे जिस वक्त आपकी टीम मुश्किलात से दो चार हो, और यहाँ पर अगर हम देखें तो तकरीबन 70-30 की इक्वेशन है विन और लूज की। बड़ा रेयर होता है कि आपकी टीम जब इस तरह से गिरी हुई हो और एकदम से आपको एक ऐसी अच्छी तेज इनिंग खेले, क्योंकि एक तरफ खुरम है, दूसरी तरफ फ़हीम है। फ़हीम पे आप डिपेंड करें तो दूसरे एंड से कहीं ना कहीं अगर अच्छा बॉल पड़ता है तो आपकी सिर्फ 3 अच्छी बॉलें चाहिए इस वक्त लाहौर की टीम को। ये जितनी खराब गेंद थी उतनी ही खराब अंदाज से खेले खुरम शहजाद, और अब उसकी वजाहत भी दे रहे हैं। डॉट बॉल के साथ इस ओवर का इख्तिताम 29 के बाद 117, 7 विकेट के नुकसान पर। काफी विथ था और शायद उनके दिमाग में ये चीज थी कि इसको छोड़ें, लेकिन कहीं ना कहीं इंटेंशंस थे ना चाहते हुए कि बल्ला जो है बॉल से कनेक्ट हो गया। एक स्लिप ले रखी है कासिम अकरम ने फहीम अशरफ के खिलाफ। ये बड़ा जबरदस्त मार्का है, कट किया खूबसूरती के साथ फहीम ने। ये गेंद चली है बाउंड्री लाइन की जानिब और आखिर में स्लाइड किया हुनैन शाह ने गेंद को रोकने के लिए। बड़ी जबरदस्त फील्डिंग एफर्ट हुनैन की जानिब से, यकीनी चौका बचाया अपनी टीम के लिए। एग्जैक्टली और इसी तरह की एफर्ट्स भी चाहिए। फ्लो अच्छा था, जो प्लेसमेंट थी वो बेहतर थी, अच्छी स्लाइड। खूबसूरत बड़ी उम्दा गेंद कासिम अकरम की तरफ से। ये बड़े दिल के साथ गेंद करते हैं एजाज, क्योंकि अगर आप गेंद को हवा देने में हिचकिचाते नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके पास बड़ा दिल है। इस बार बेहतर अंदाज से खेले फहीम अशरफ। एग्जैक्टली इसमें कोई शक नहीं कि जिस वक्त एक बॉलर फ्लाइट देता है, और इस वक्त दे भी सकते हैं क्योंकि इतना ज्यादा उन पे प्रेशर नहीं है। स्लिप ले रखी है, लेफ्ट हैंडर ऑन स्ट्राइक है, किसी तरह का एज यहां पर ड्राइव करते हुए उन्हें कामयाबी दिला सकता है। कदरे लेट खेले फहीम अशरफ और थर्ड मैन की जानिब फील्डर के पास कोई मौका नहीं है, तो बाउंड्री हासिल की है यहां पर फहीम अशरफ ने। ये छोटे छोटे ताजा हवा के झोंके इस वक्त फैसलाबाद के लिए, जो 1 या 2 ओवर के बाद यहाँ पर आते हैं चौके की सूरत में। अच्छा प्लेसमेंट था, सिर्फ टाइम किया इस बॉल को। थर्ड मैन सर्कल के अंदर था, इसलिए उसके पास कोई मौका नहीं था इस बॉल को रोकने का। ये परफेक्ट मैचअप है ऑफ स्पिनर के लिए कि लेफ्ट हैंडेड बैटर को गेंद की जाए, क्योंकि नेचुरल एंगल के तहत गेंद पड़ने के बाद बाहर की जानिब निकलती है। निकाला अब की बार भी फहीम अशरफ ने, लेकिन सिर्फ 1 रन पर इत्तेफाक करना पड़ेगा। सिंगल के साथ 30 ओवर का इख्तिताम, 124, 7 विकेट के नुकसान पर फैसलाबाद।
हुसैन तलत गेंदबाजी जारी रखेंगे पानी के वक्फे के बाद। फहीम की मुज़ाहमत भी जारी है फैसलाबाद के लिए। कट करने की कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए फहीम। भरपूर अंदाज से डोमिनेट किया है इस बैटिंग को लाहौर ब्लूज की बॉलिंग ने। खास तौर पे हुनैन शाह ने जिस तरह आज गेंदबाजी की वो बहुत काबिले जिक्र है। इमरान भट्ट की कप्तानी भी काबिले सताइश रही है। ऐसे तो नहीं होगा फहीम, आपको कुछ मुख्तलिफ करना होगा। स्ट्रोक्स बनाने होंगे, तेजी से रन्स हासिल करने होंगे। लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा कि एक ही बॉलर 5 विकेटें ऑलरेडी ले चुका है, तो उसका प्रेशर है इतना आसान नहीं है इस सरफेस पे इस बॉलिंग के अगेंस्ट। और मेरे हिसाब से अगर अभी हम देखें तो जो रन्स अभी आ रहे हैं ये गिफ्टेड है। खूबसूरती के साथ खेला, कट किया फहीम अशरफ ने, लेकिन फील्डर डीप एक्स्ट्रा कवर पर मौजूद हैं। बाउंड्रीज निकालना इस फेज में इतना आसान नहीं है। तीसरे पावर प्ले में 4 से ज्यादा फील्डर्स आप बाउंड्री लाइन पर रख सकते हैं। खुरम शहजाद से बेहतरी की तवक्को है। इनके लिए एक स्लिप बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर को तैनात किया है इमरान भट्ट ने। Well, to me being a captain, इस वक्त हुनैन जो है उनके ओवर्स होने चाहिए, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने बॉलिंग की कर रखी है अब तक, यकीनी तौर पर न सिर्फ वो खुद बल्कि बाकी जो लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद है वेन्यू पे, वो लुत्फानंदोज हो रहे होंगे उनकी बॉलिंग से। और इन फिगर्स को मजीद इम्प्रूव किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि अगर आप 5 विकेट ले चुके हैं, 2-3 ओवर में अगर 1-2 विकेट और मिलते हैं तो मजीद इम्प्रूव करें अपने बॉलिंग फिगर्स को। उठा दिया फहीम ने, टाइम नहीं कर पाए फील्डर लॉन्ग ऑन पे गेंद के नीचे आते हुए, और कैच लेकर कप्तान इमरान भट्ट ने अपने मुखालिफ कप्तान की इनिंग्स का खात्मा किया। हुसैन तलत ने यह बड़ी अहम कामयाबी दिलाई लाहौर ब्लूज को। जी हाँ, इस वक्त कोशिश जरूर की थी कि मैसिव जाया जाए मैक्सिमम के लिए, लेकिन यहाँ पर फहीम अशरफ सही तरीके से अपने स्ट्रोक को मैनेज ना कर पाए। थोड़ा सा बैकअप लेंथ बॉल था, माइट भी ऑफ स्टंप पे खेलते या ऑफ साइड पे तो बेहतर था, लेकिन उन्होंने इसको ऑन साइड पे खेलना चाहा, प्रॉपर्ली हिट नहीं कर पाए और बाकी का काम इमरान ने किया। और यूं फहीम अशरफ 40 रन बनाकर वापस हुए। फैसलाबाद 126 पे 8। आखिरी उम्मीद थी शायद कप्तान अपनी टीम के लिए, और अब आ चुके हैं मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जो कि 23 मैचेस खेल चुके, 17 इनका बेस्ट है, और ये पिछले मैच की इनिंग है जब उन्होंने अपने कप्तान के साथ 65 रन की शराकतदारी की थी। कॉन्फिडेंस ज़रूर होगा, लेकिन उनको इस सिचुएशन का, ये इस प्रेशर का जो फेस करना है वो भी है।
कि किस अंदाज से इस प्रेशर से निकलेंगे या निकालेंगे अपनी टीम को। डॉट बॉल के साथ हुसैन तलत के इस कामयाब ओवर का इख्तिताम हुआ। 31 के बाद 126, 8 विकेट के नुकसान पर। अच्छी विकेट निकाली, थोड़ा सा बैकअप लाइन बॉल था, हवा में ज्यादा उछाल दिया इस बॉल को, डिस्टेंस नहीं ले पाई और आसान, बहुत आसान कैच। यकीनी तौर पर जिस विकेट के मुतलाशी थे यहाँ पर, चूंकि बड़ी विकेट है, अच्छे प्लेयर हैं और किसी वक्त भी मैच की सिचुएशन को पलटा सकते थे, हिम्मत हार गए। क्या वक्त है कि इस इनिंग्स को रैप अप किया जाए, टेलेंडर्स की इनिंग्स का खात्मा किया जाए, इसलिए उम्मीद आसिफ को अब गेंदबाजी के लिए वापस लाया गया है इमरान भट्ट की जानिब से। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, खूबसूरती के साथ खुरम शहजाद खेले, 4 रन मिल जाएंगे। अच्छा एग्जीक्यूटेड शॉट है, खड़े खड़े इस बॉल को मैनेज किया, थोड़ा सा फुल लेंथ बॉल था उम्मीद आसिफ का, तो उन्होंने कोशिश की कि स्टंप्स के अंदर बॉल रखें, लेकिन रिप्लाई बहुत बेहतरीन, एक्सीलेंट, सीधा बल्ला और फायरिंग रेंज में थे उनके साथ ही नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे 4 रन हासिल किए। उठा दिया इस गेंद को, लेंथ को पिक किया खुरम शहजाद ने और कोई फील्डर मौजूद नहीं मिड विकेट पे। ये दूसरी तवातुर से लगाई गई बाउंड्री खुरम शहजाद की जानिब से। अच्छा इस दफा बॉल को थोड़ा सा पीछे रखा, देखिए, और काफी टाइम था, स्पेस था, उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया ऑन साइड पे, और ये बॉल भी अच्छा मैनेज किया, बिल्कुल बल्ले के दरमियान में ये बॉल लगा पिछले स्ट्रोक की तरह। तो बैक टू बैक बाउंड्रीज फॉर फैसलाबाद। यार इस बाउंड्री के साथ अब देखना होगा कि क्या प्लान में तब्दीली आती है। डीप मिड विकेट पर फील्डर को भेजा है उमैद आसिफ ने। उठा दिया एक मरतबा फिर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। ये तीसरी कंसेक्यूटिव बाउंड्री खुरम शहजाद के लिए। Well, sorts of highlights. ये बॉल भी थोड़ा सा पीछे था और इस दफा भी वो तैयार थे बैक लेफ्ट के साथ। ये देखिए बहुत खूबसूरत से ऑन साइड पे, ये जैसे जैसे शॉट्स लग रहे हैं प्रोटेक्ट करना चाहिए एक और फील्डर ऑन साइड पे लेकर। लेकिन इजाज सवाल ये है कि यॉर्कर्स कहां हैं? एक ही लेंथ पे गेंद कर रहे हैं, उसी लेंथ पे बाउंड्रीज कंसीड कर रहे हैं उमैद आसिफ। अब इन 3 तवातुर से लगाई गई बाउंड्रीज के बाद फील्ड में कुछ हद तक रद्दोबदल। डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट पर अब फील्डर को तैनात किया है। की बार फील्ड अबूर करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। पॉइंट पर कासिम अकरम ने इस गेंद को रोका। कल ऐसा होता है जिस वक्त आप प्रेडिक्टेबल होते हैं कि तमाम के तमाम स्ट्रोक्स जो कि ऑन साइड पे गए, और अब भी थोड़ा सा बैक ऑफ लाइन बॉल था लेकिन पेस को रिड्यूस किया और उस पर भी अच्छा मैनेज किया यहाँ पर खुरम शहजाद ने, क्योंकि लगता यही था कि ऑफ स्टंप से थोड़ा सा ऊपर ना खेल जाएं जिस तरह से रश ऑफ ब्लड में है वो। उठा दिया इस गेंद को, फील्डर गेंद के नीचे आएंगे और एक आसान कैच मुकम्मल किया। उमैद आसिफ ने बिलाखिर अपना बदला चुकाया। सलमान इरशाद ने अच्छा कैच थामा, आसान रेगुलेशन, और इस तरह से अब 9वीं विकेट गई। उम्मीद काफी देर से फायरिंग रेंज में थे, चौके आ रहे थे उनकी बॉलिंग पे, लेकिन इस दफा बॉल हवा में गया, आसान रेगुलर कैच थामा और इस तरीके से यूं खुरम शहजाद थोड़ा सा डेंट करके बॉलर्स को वापस हुए 15 पे। फैसलाबाद 138 पे 9।
Right, it has come down to Arham Nawab. 138 for 9. Lahore Blues just 1 wicket away from a famous win. Because at one point they were clearly struggling, and then going on and scoring that many runs and then coming and defending 242 takes a task. This one was the last wicket. Khurram Shahzad hit 3 boundaries before topping one straight to the fielder. Salman Butt has joined me in the commentary box. A very happy, smiley Salman Butt. Very good afternoon to you, Salman Butt. Thank you, Ali. Indeed, it's a great afternoon. The sun is shining really bright today. It has been a wonderful day for cricket. Not so wonderful with the Faisalabad batters. They've brought upon their demise few bad shots and otherwise great spells of bowling from the fast bowlers of Lahore Blues. All of them bowling really well, and particularly Hunain Shah, the man who took 5 wickets and got his team into this winning position. Yeah, 3 overs still to go for Hunain Shah. But we are seeing Hussain Talat being given another over. He's into his 3rd over, 1 for 19, his figures. But Salman Butt just mentioned about the spell from Hunain Shah. What a wonderful spell this has been. Accurate, quick, thoughtful. It had everything in it that you desire from a fast bowler. Beautiful. Yes, and he is the man who destroyed the whole batting lineup of Faisalabad. And now, deservingly, after his fifer, the captain has thought about giving him a rest and making sure that he is available at his best in the next coming games. And that is the reason why we are not seeing him bowl now. And Hussain Talat, who also can bowl and can be very handy as a bowler, is now bowling his 3rd over. Salman Irshad, Hunain Shah, 5 foot 26. No. Salman Irshad also bowled really well with the new ball. He only gave away 2 runs in the first 3 overs and 19 of the first 6. Very impressive spell of fast bowling from him, and along with him the other bowlers also up to the task. Usman Qadir bowled really well, showed us some great skill, leg spinning, drifting, giving the ball some air and getting huge turns. Yeah, you make a good point. Salman Irshad, Umaid Asif, they kept things really tight in the first 6 or 8 overs. And then came Hunain Shah. They thought it will get easier, but no, my friend, it got tougher because Hunain Shah bowled some immaculate line, wonderful length, great pace. And when they started looking for runs, especially Faizan and Horera, they lost their wickets. Hussain Talat, they can take their time. They can stay in, both youngsters, Ali Asfan and Arham Nawab, both local boys from Faisalabad. So better spend some time, get the feel of this big cricket against big opponents. This is the best you can do. Get the feel of this pressure. Yes, it's important to spend some time in the middle and see the real action, go through it, and you're better off in the times to come. You carry that experience. This is Muhammad Ali, who also bowled well in the morning, but disappointed with the way Faisalabad approached this chase. The sun has been out today at its full strength. The pitch wasn't that difficult. But to the credit of the Lahore bowlers, their lines and lengths were immaculate, and the batters, they did not do what they were supposed to. And Faisalabad must be thinking, what next? 33 overs gone, 141 for 9.
said Ali Asfan. That's not Ali Asfan. That's Muhammad Ali. With Arham Nawab, 141 at the moment. Just a matter of time from here on. Because the Iron Man. I wonder if Usman Qadir has bowled his spell. Or is there 2 overs to go? And he can be someone who can take the tail-enders to the cleaners and have this innings wrapped up. But Captain Imran Butt preferring to go with the faster men. Yeah, also Hunain Shah, as you were just mentioning, he's keeping him safe. The score was 70 for 6 when he last bowled, and now it's 141 for 9. So plenty of runs being scored after he finished his first spell. Brilliant spell though. So we're just seeing him doing a thumbs up and maybe warming up again. And maybe the captain has just signaled to Hunain Shah to please come and clean up the tail and go home quickly. But the same can be done with the leg spinner. Plenty of runs remaining. He needs to keep his faster man intact because this tournament, it will depend on the faster men. Because the matches are starting early. We have seen movement, we've seen low scores, and we have seen fast bowlers be very lethal and be very effective. So the captains need to be smart enough how much, when, and who to use when talking about their fast bowlers. Absolutely. And that is why probably we see Hussain Talat being used for few overs. Because he's a medium pacer. We saw he bowled a ripper in the first game. So yes, it's always handy. The batsman of Hussain Talat's caliber, if he can bowl a few overs, especially medium paces in these conditions. Because as Salman was mentioning, this tournament will be about bowlers. Because A, it's an early morning start. B, the weather is changing. It's getting cooler and cooler day by day. The pitch is also assistant, fast bowler, all three grounds that cricket is being played. It is supporting fast bowlers. Talking about the cool weather, the changing conditions, and it is making you sleep over time as well. So now we know we have to keep a check on you. We can't allow our main presenter to sleep for long. Keeps me fresh. Oh, that's a good single. Very good single by Muhammad Ali. Yes, they need another good 99 singles. I wish it was that simple as simply you said it, Salman. But we all know that it's not easy. The conditions are difficult. The last pair on crease, Arham Nawab, very new to this level. Muhammad Ali, we know that he's got a good defense. But for how long can he sustain? Can he stay there? That's the question. Umaid Asif has had a good day with the bat, equally good with the ball. I was talking earlier that Imran Butt is a lucky captain. He's got so much variety in his bowling lineup. He's got a slingy bowler, Salman Irshad. He's got Umaid Asif, who's tall, who's got that length. He's got Usman Qadir, the leg spinner. Qasim Akram, the off spinner. So he's got every base covered as far as bowling unit is concerned. Yes, there's all sorts of variety in his bowling attack, and that's a great luxury for any captain to have. And all the bowlers are in good rhythm, and the changing weather is also helping them, and the pitches are more conducive to fast bowling now. Aslap Enagali. Nicely defended. 34 gone, 144 for 9. .241, plays 144 at the moment. Junaid playing a good knock of 47. Umar Siddiq looked really good for his 46. Umaid Asif in the end scoring vital 41 runs. Faisalabad region in reply are struggling big time, courtesy to a fantastic spell of fast bowling by Hunain Shah. 5 for 26, his career best on this level. Fahim Ashraf
survived for his 40 runs. Faizan looked good for 30, but they were pretty short. 98 runs required of 66 deliveries as we see the return of the mighty Hunain Shah. Yes, and he's expected to clean up the last wicket and take his team home. He has played a huge part in this game, taking up the 5 wickets. And nearly on his first delivery, back in this second spell, he does the job for his captain. Just by a little, he missed the outside edge. It's just incredible, Salman. At this young age by age, and by the cricket he has played, the way he has bowled, the way he has figured out how to bowl in these conditions, which length to go for, which length is supporting him. Yes, it's been a couple of seasons now that he has been playing first-class cricket and also playing the white ball part of the cricket. For Central Punjab he was playing before, and now this season. And he looks a very improved bowler, no doubt about it. Another good ball. And Muhammad Ali knows it. Another close call. Was lucky to survive this one as well. It's this length, Salman, that has been troubling the batters since morning. Yes, of a good length, bowlers have had the purchase of this track, and they have had the movement, and at times the ball has carried really well to the keeper. Other times it has stayed a bit low. Yeah. So definitely a lot there for the bowlers to work with. Can he wrap it up? Hunain Shah. Too full this time. This is where these tailenders like, if you can bowl up to them, because it is easier to defend. Muhammad Ali, it was a similar sort of situation in Quaid-e-Azam Trophy's final, when all he had to do was survive. Same sort of situation here, where there's nothing can be done. All he can do is just defend and be there. Not a happy position to be in as a Faisalabad player, as a Faisalabad fan. This will be their second consecutive loss. Remember, they lost to Multan in their first game. Well, it had to be one of these teams because both of them lost their first games in the first round, and somebody had to move and win this game and take 2 points home, and one had to remain without points, without a win. And sadly for Faisalabad, they are going to be the one by the look of things. It's disappointing. The bowling of the quality that Faisalabad has, it's pretty disappointing to see Faisalabad in this condition, in this situation. They're going to lose and lose by a big margin. This is not what we expect from Faisalabad, the finalist of Quaid-e-Azam Trophy. We expected some fight. Well, a different format this, Ali, when we talk about the Quaid-e-Azam Trophy success that they had. But batting needs to improve. Batting, the top 6, they need to respond. They need to score big. Somebody needs to step up and score 100 and the others to play around him. For any team that bats first, they need to be more patient. They don't need 300 runs over here in these conditions. You just need to get to 200, 240, 250. It is only one cameo from Umaid Asif has got them up to 240. And that was only a 40-plus knock of 20-odd deliveries. So you see 3 to 4 good overs in the whole innings is all that mattered. Maiden on the return for Hunain Shah. It's still 144 for 9. There's another addition, Salman. Waqas Maqsood. He's just joined the team last night. We will see him in action in the games to follow. Yes, he's a very handy seamer. Bowls good change of pace, swings the ball back into the right-handers. It's pretty dangerous with the new ball. And in these conditions, in these weather conditions and pitches like these, he can be very handy for Faisalabad. But their more troublesome area is with the bat. And that is where they need someone to come up and show them the way, the direction. Meanwhile, Usman Qadir is back. Hey! I think he needs a short leg over there. Somebody under the helmet and maybe have the mid-on up. And then
the little young one, to go on top, go over the top, and maybe there would be a chance of a wicket. He's looking good. He's looking confident. Ram Nawab. 95 runs required. 9 overs to go. The last man batting. And a leg spinner bowls, and Imran Butt has his point deep. Ali, please explain. I wish I could. Usman Khader. Spin, spin, beautifully bowled. Great to see Usman Khader in full flow, in good rhythm. It's very good for Pakistan cricket. Usman Khader in a great rhythm. Good news for Pakistan cricket. And as I say it, he bowls a half length. Ali, please. Never talking about it No again. more commentators' curse. Yeah. Agreed. Not saying it again. Not too much appreciation. It just does not suit anyone. All I care is about Pakistan cricket. We all do. And for the sake of Pakistan cricket, we need bowlers who can pick up wickets in the middle. And he certainly has the talent. But just that consistency needs to go up. But looking at today's spell, Salman, I want your take on it. He's looked better. The rhythm is better. His run up towards the stump is better. He's running in with confidence. And his area of the channel he's bowling is good too. He's only bowling. And that's all it takes. Keep bowling in games. Longer versions. And the accuracy will come. So the over bowled. 36 gone now. 147 for 9 Faisalabad. Yeah, it was surprising to see Usman Khader playing just one game in Quaid-e-Azam Trophy, and when a player of his caliber who's been there with Pakistan side, you expect him to play a full season. These numbers, you can tell, 8 overs, just 29 runs. The economy is great, 3.63, has only taken 1 wicket, but the impact that he has left on this game, the pressure he built from his end, made Hunain Shah got his wickets because he was bowling alongside Hunain Shah. It's good to see youngsters come up and take fifers. We saw Ahmed Danial in the previous game. Another young man, good pace, good action, took 5. And Hunain Shah is very talented. The younger version of Naseem Shah. And he also bowled brilliantly today. Took 5 wickets, bowled with good rhythm. Has no signs of fatigue on his face. He's played around 6 matches in the first class tournament and now playing his second one-day game, showing good fitness. And the bowlers, when they play a full season, they develop this muscle memory to bowl those longer spells, and it helps them. It helps them to be adaptive to different conditions, different lengths, and different variations. And importantly, good line and good length. In the air, is it the end of the game? Yes, it is! Hunain Shah has taken 6 wickets, the second best figures at Rawalpindi Stadium by a young fast bowler, Hunain Shah, wrapping up things and making his team win this all-important game. They lost their first game. They had to win this game. And Hunain Shah single-handedly making them win. Yes, a wonderful spell that. And a fitting finish to this game. Hunain Shah comes back and takes the last wicket, his 6th of his spell. And he took that only by giving away 29 runs, is that? And that is the second best figures ever. 6 for 26 it is for Hunain Shah. And his teammates are very happy, extremely. And they should be, because he's done a great job. And he himself must be very satisfied with this spell and this performance. His team did not have a good time with the bat unless Umaid Asif came in and he joined Junaid for that great partnership towards the end. And then he came and he just took the innings by storm. Took 6 wickets, destroyed the whole batting order of Faisalabad, and Lahore Blues has won by 94 runs. That is indeed a great comeback after losing their first game against Lahore Whites. A lot of work needs to be done
from Faisalabad's point of view. They lost their first game to Multan, now losing the second game against Lahore Blues. They definitely need to rethink about their batting order and their batting positions and the batters to include in the side. They do need more stability in their batting lineup. Their bowling looks fine, but it's the stability in their batting that is missing. Although Salim looks in a good touch, but it's our top order. Herrera is struggling to get runs. Faizan played against his nature, which I do not agree with. That has made Faisalabad struggle in this game. But all smile, all joys for this boy on your screen. Second best figures here at Rawalpindi Cricket Stadium in list A. 6 wickets. Before him it was Zahid Saeed, who took 6 for 23 in 2003 and 4. And now it's this boy. Well, I wonder, was that for National Bank? Because he was one of my teammates and he took those wickets for National Bank, and he was a wonderful left-arm fast bowler. Lot of skill he carried with him, and this is the Faisalabad's batting card, and not much to boast about. Only 32 Faizan in the top 6, and then we saw 40 from Fahim, 16s, 15s from the bowlers, and nothing much of recognition from the batters. And this is where the whole thing is concerning for the Faisalabad sports staff, to get their batters going, because unless they go and get a decent total, these bowlers like Huram, Asfan, Fahim, Arham and Ali, they will struggle because they bowl well. Yeah, one name stands out. That is Hunain Shah. 7.2 overs, 2 maidens, 26 runs and 6 wickets. Umaid also getting 1. Usman Qadir bowled really well, but only 1 wicket he could manage. Qasim Akram used for 5 overs, 23 runs, 1 wicket. Hussain Talat also getting a wicket after giving away 11 runs. As they wrap up things and bundle out Faisalabad on 147 inside 37 overs. Fantastic performance. A performance to be proud of. So wickets it was, and there is Hunain Shah. And the first one to go was Herrera, top edging it, closing the face of the bat, and then a great catch from Umar Siddiq at short mid wicket off Usman Qadir. And then Hunain Shah continued his merry way, targeting the pads of Niazi and get him at leg before. And then a loose stroke, first ball up, and then Asif Ali dragging one onto his stumps from outside the off stump. And then what a ball this. Salim was the man in form and he got the best delivery out of the lot. And then Qasim Akram cleaning up one, and Hussain Talat getting the prize wicket of Fahim Ashraf, trying to pull him and only succeeding in skying one. Then Umaid Asif again getting one off the bouncer, well caught at mid-on by Usman Qadir. And then to finish things off, Hunain Shah, a fitting end to his spell, took the last wicket. Brilliant, brilliant by Hunain Shah as he stands out between the two sides. 241 Lahore Blues, and in reply Faisalabad region all out inside 37 overs on just 147 runs. Hunain Shah taking 6 wickets, best figures for him at this level, and Lahore Blues winning the game by 94 runs. Best bowling figures at Rawalpindi Cricket Stadium, because this will be talked about. Hunain Shah 6 for 26, Zahid Saeed topping it 6 for 23. Some great names. Waqar Yunus also 6 for 29. Naveed Anjum 6 for 30. Big brother. Right, Ijaz Ahmed has got a special player with him. Ijaz, over to you. वेरी मच अली भाई, और हम इस वक्त मौजूद हैं आज के प्लेयर ऑफ द मैच के साथ, जिनकी परफॉर्मेंस की बदौलत लाहौर ब्लूज जो है वो आज की फतह हासिल करने में कामयाब हुई। सबसे पहले हुनैन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने अपने लिस्ट ए कैरियर की बेहतरीन फिगर्स हासिल किए आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। और ये बताइएगा कि जो इम्पोर्टेंस होता है किसी भी सरफेस का, कि जिस वक्त आपको जिम्मेदारी दी गई उससे पहले फैसलाबाद की टीम अच्छी जा रही थी, जैसा ही आप आए एकदम से गेम का पलटा जो है वो बदला और आपकी फेवर में आ गया। एफर्ट्स के बारे में बताइएगा आज की अपनी।
जी बिल्कुल ही, और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने आउट करवाए। और जिस तरह मैं जब आया तो सेट खेल रहे थे और मेरा यही है कि मैं हार्ड लेंथ को हिट करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वही से अगर आउट स्विंग इन स्विंग करता हूँ तो वही से करता हूँ, और अपने स्ट्रेंथ पे रहा और अल्लाह ने इज़्ज़त दी है और कोशिश कर रहा था कि टीम के लिए अच्छा करूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ। सरफेस का बताइएगा कि जो पिच था वो, चूँकि हमने देखा फ़हीम ने भी 3 आउट किए, आप भी, तो पेसर्स के लिए काफ़ी सूटेबल था। उसमें हार्ड लेंथ पे हिट करना था और आपको अच्छी एरिया में बॉल हिट करना था, तो वहाँ से सम टाइम आपको बॉल किक कर जाता था और स्विंग भी सीम भी मिल रहा था, तो आपको सिर्फ अच्छी जगह पे हिट करना था और बाकी पिच आप खुद ही कर रहे थे, तो अच्छा पिच था फास्ट बॉलर्स के लिए स्पेशली। एक अच्छी फतह, फ्यूचर के जो गेम्स है उसमें काफ़ी मदद मिलेगी, कॉन्फिडेंस बिल्डर है। जी, जब भी आप इस तरह की परफॉर्म करते हैं कि जब जिससे आपका टीम जीते तो वो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है, और इसी को कैरी ऑन करेंगे और कोशिश करेंगे कि जिस तरह बॉलिंग की अपने स्ट्रेंथ पे रहा और इसी तरह करता रहो पूरे टूर्नामेंट में, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह मदद करे। बहुत बहुत शुक्रिया हनैन, आपको बेस्ट ऑफ लक और फ्यूचर के लिए इसी तरह खेलते रहिए। Thank you वेरी so मच। ओवर टू यू एट कमेंट्री बॉक्स, अली। Thank you, Ijaz. Definitely a superstar in making. This is what we have. Coming up matches, Lahore Whites will play Rawalpindi here at Rawalpindi Cricket Stadium after the day's break. Then we'll have Peshawar playing Multan at Mirpur Cricket Stadium. Faisalabad will play their all-important game against Karachi Whites at Abbottabad. Fata will see Lahore Blues at Shoaib Akhtar Stadium, KRL. Right, that's it from today. From Rawalpindi Cricket Stadium, we shall see you after one day's break. Until then, take care and goodbye. Nicely clipped. This time he's found the gap. Wow, that is beautiful. और इस बार बोल्ड और फ्री हिट और इसे चलता कर दिया। Bowled beautifully. Beautifully played down the ground. In the air and taken. और ये अच्छी आवाज आई है। शानदार शॉट, बड़ा शॉट और उतना ही शानदार कैच। Loud shout, umpire raises the finger. और शानदार डिलीवरी और विकेट भी, और 5 विकेट हासिल करनी हुनैन शाह ने अपने कैरियर में पहली बार। उठा दिया इस गेंद को खूबसूरती के साथ फहीम अशरफ ने। In the air, is it the end of the game? Yes, it is!